Okay, the recording has begun, guys. I welcome you all to this marathon session of chemistry for IMUCET 2025. So, first of all, let me be very clear with the rules and what you can expect from this class. So, it will be a class in English. So, both Hindi and English will be taken care of. Hindi में ही बात होगी, English में ही बात होगी. I will the technical terms will be in English only, and the explanation will be English and Hindi mixed. Okay. So not purely English and neither purely Hindi. Okay. So dono audience ko will cater. Don't worry. Apart from that, recording will be provided. Okay. But I recommend to watch it live. I hope I am clearly audible and visible. Just give me a thumbs up if I'm audible and visible clearly. Yeah. So this thumbs up and thumbs down is going to be our thumbs up and hand raise is going to be our medium of communication throughout the lecture, okay, throughout the session. Whatever doubts you have, you can put it in the chat box. You can type it out. thumbs down मत करो, है ना, अभी शुरू किया मैंने, ठीक है. तो ये हो रहा है, क्लियर बात. Whatever you want to ask, you can put it in the chat box. ये हो गया first thing. Second thing, that this session is going to be of around 5 hours. So 5 plus, half an hour here and there. So at least 5 hours it's going to take. Don't worry, after every hour you're going to get a break of 5 minutes. If you're not getting a break of 5 minutes after an hour, then you will get a break of 10 minutes after 2 hours. Okay? Don't worry, adequate breaks will be given to you. Break मिलेगा आप लोगों को 1 घंटे पे 5 मिनट का. Don't worry about that, है ना. And फिर वही बात है, टाइम कम है हमारे पास, so I'm not going to repeat things again and again like we have done in the normal lectures. वहाँ बातों को repeat किया जाता है, but in this lecture, in this session, बातों को repeat नहीं किया जाएगा. Okay, so once be focused. हिंदी यूज कर लो. Okay, हिंदी भी यूज कर रहा हूँ, don't worry. Voice not coming properly. Is the voice coming properly? राजन के अलावा बाकी लोगों को वॉइस आ रही है ना? क्या राजन? ठीक है. Okay. So what I'm saying is, okay, for all these doubts, notes आएगा नहीं आएगा, recording कहाँ मिलेगा and everything like that, you can contact Sudipta sir. Okay, he'll take care of that. Clear? Next thing is, this is done. Don't unmute yourself throughout the lecture. And let me be very clear with you. These topics are the most commonly asked questions, topics and chapters. This is not the entire syllabus. I'm going to be very clear with you, because it is not possible to cover the entire syllabus in 5 hours. Okay. Okay. These are the most important, most frequently asked questions, topics and chapters. Okay. This will include some topics from class 8th, 9th also, basic topics, some topics from 10th, 11th, 12th also. So these are the most common ones. Clear? Am I clear with this? Okay. Nothing will be repeated more than once. एक बार मैंने बोल दिया उसको तो बोल दिया. फिर आपको अगर किसी पॉइंट पे इश्यू है, then you can watch the recording. Recording हम लोग इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. मान लो कि you have an issue at 12:30 PM, then you can refer to the recording at 2:30 hours. That time you will get the whatever the material you want. Okay. Stop spamming claps and everything. ठीक है, I got it. चलिए, so let's begin with the class. See, the first initial topics are very simple: physical and chemical changes, elements, mixtures and compounds. So we are going to move a little quickly through them. ठीक है, थोड़ा तेजी से मूव करेंगे.
क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, फिजिकल केमिकल चेंजेस किसने नहीं पढ़ रखे हैं, ठीक है, बट फिर भी हम रिवाइज करा रहे हैं ताकि बिकॉज दे आर ऑफनली आस्क्ड। ओके, दिस इज द इंडेक्स and this is what we're going to cover in this revision video or class session, whatever you want to call it. Okay, so you can go through all the topics here, you can see them. Now if I increase the screen size, then I won't be able to see your responses. That would be an issue. So is the screen size okay? Not okay? Okay then. Okay then. Now in this case, I'm not able to see your responses. Okay. So whatever you questions you have, you can drop it in the chat box. And remember, use it responsibly. We have given you the feature to use it responsibly. ये नहीं कि कुछ भी spam कर रहे हैं. Remember this. If you're spamming anything, then it would be put, आपको मैसेज तो आपको बाहर कर दिया जाएगा. ठीक है, ठीक है. Kindly maintain some etiquettes in the class. चलिए, चलो. First we have physical and chemical changes. First thing is physical changes. See, changes can be of two types, right? We have all studied this in the previous classes. बचपन में पढ़ रखा है हमने कि भाई चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल. एज फार एज केमिस्ट्री गोज, केमिस्ट्री के अनुसार चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइम्स. फिजिकल किसको बोलते हैं? यस अंकित, फिजिकल किसको बोलते हैं? जहां पे द मटीरियल, द पार्टिकल्स आर नॉट चेंजिंग. बेसिकली पार्टिकल्स मीन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो चेंज नहीं हो रहा है, ओनली देयर अरेंजमेंट इज चेंजिंग. ठीक है, कि इन द केमिकल चेंजेस दोस पार्टिकल्स इनहेरेंटली गेट चेंज्ड. मतलब कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग आइस, इफ यू आर टेकिंग आइस, ठीक है, आपने आइस लिया, यू मेल्टेड इट, यू गॉट वाटर. सो द पार्टिकल इन आइस वाज H2O. आइस का पार्टिकल वाज H2O. आइस में जूम किया, आपने क्या मिला? H2O मिलता है आइस में. आइस क्या होता है बेसिकली? फ्रीज्ड वाटर इज आइस. ओके, so it is H2O. The particle in ice is H2O. The particle in water is also H2O. ठीक है, जो आपने पानी लिया उसमें भी H2O है, और जो आपने आइस लिया उसमें भी पार्टिकल क्या है? H2O है. ठीक है, पार्टिकल जो है वो सेम रहता है. तो अगर पार्टिकल सेम रहता है चेंज होने के बाद भी, तो इट इज नोन एज फिजिकल चेंज. क्लियर? और अगर पार्टिकल ही चेंज हो जाए, आपने चेंज करा और पार्टिकल ही बदल जाए, कि पार्टिकल पहले था अब वो नहीं रहा, then that will be called a chemical change. इसको क्या बोलेंगे आप? chemical change बोला जाएगा. क्लियर है? तो physical changes are temporary and reversible. temporary and reversible. ये एक बार हो गया तो इसको रिवर्स करना पॉसिबल है. ठीक है, एक बार ये हो जाता है तो ये टेम्पररी है, मतलब एक बार हो गया तो रिवर्स करना पॉसिबल है फिजिकल चेंजेस को. एग्जाम्पल के लिए आपने आइस मेल्ट करा है, यू आर मेल्टिंग द आइस, यू कैन कन्वर्ट इट बैक टू आइस. आइस से वाटर बना, वाटर को आप वापस आइस बना सकते हो, यू कैन डू दैट. हेंस फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल. बेसिकली the composition of constituent of matter remains the same. Basically what they are saying is the particles inside the matter are the same. ये बोला जा रहा है. अगर वाटर में H2O है तो आइस में भी H2O होगा आफ्टर फ्रीजिंग, और अगर आइस को मेल्ट कर दोगे तो वाटर में भी H2O है और आइस में भी H2O. द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग, द कंस्टिट्यूएंट मैटर इज द सेम, कंपोजिशन सेम. ठीक है, अंदर में क्या है दैट इज द सेम, only the arrangement changes. In ice the particles are very closely packed, in liquid the particles are comparatively farther away, and in gas the particles are even more farther away. ठीक है, तो इन फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं वो केवल पार्टिकल का अरेंजमेंट बदलता है, वो कहाँ है कितने दूर पर है वो चेंज होता है, ना कि पार्टिकल्स. ठीक है, मान लो कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, मान लो क्या मेरा हाथ ही है, ठीक है, तो ये 4 फिंगर्स है मेरे, अभी ऐसे हैं, इनको मैंने ऐसे कर दिया, क्या चेंज हुआ? बस इनका अरेंजमेंट चेंज हुआ.
नॉट द फिंगर्स, फिंगर सेम है मेरा, वही वही फिंगर है, इंडेक्स वही है, मिडिल फिंगर वही है, रिंग फिंगर वही है, ठीक है। तो ये वही है, बट अरेंजमेंट कैसे अरेंज किए हुए हैं, कैसे अरेंज किए हुए हैं वो चेंज कर देना, ये फिजिकल चेंज, ये सब फिजिकल चेंज, ये सब फिजिकल चेंज। हाँ, अगर मैं उंगली तोड़ दूं अपना, ठीक है, तो वो परमानेंट चेंज हो गया फिर, है ना। तो वो दैट इज अ केमिकल चेंज, मतलब कि अरेंजमेंट में बदलाव हो, हाउ द पार्टिकल्स आर इनसाइड द मैटर उसमें बदलाव हो, मतलब समझे बात को। फॉर एग्जाम्पल, let me get to the chemical change page. Yeah. For example, if we have, let's say, CaO plus H2O, we mix them both, we get CaOH whole twice. This is called quicklime plus water, and this is called slate lime. Now, if you see, the nature of the particle has changed. Earlier, the particle was CaO. After adding of water, we are getting a new particle, completely new particle. The old particle is completely gone. Hence, this change of adding water to quicklime will be known as a chemical change. Clear? So, you have 2-3 parameters on which you can judge if a change is physical or chemical. आपके पास 2-3 पैमाने हैं जिनसे आप जांच सकते हो कि कोई चेंज फिजिकल है या केमिकल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर वो टेम्पररी है, रिवर्सिबल है, फिजिकल। अगर वो परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, तो केमिकल चेंज। क्लियर? नेक्स्ट, अगर कुछ नया नहीं बन रहा है, only the arrangement is changing, if nothing new is forming, only the arrangement is changing, so we call it physical change. And if something new is formed, then we call it chemical change. ठीक है, second point हो गया। third point is your something new, wait a minute, is the network okay from my end? Okay, okay. So mainly there are 2-3 parameters to judge. First is temporary and reversible, second is if anything new is happening or not, forming or not. अगर कुछ नया बन रहा है, केमिकल चेंज है, नया नहीं बन रहा है, फिजिकल चेंज। दैट्स इट, नो रॉकेट साइंस इन दिस केस। क्लियर? चलिए, सो you can read this whatever is written. One more important thing, that in a chemical change, identity of substance is lost. Like in this case, the CaO's identity is gone after formation of CaOH whole twice. आपने एक बार पानी मिक्स कर दिया CaO में, ठीक है, once you added water to CaO, the identity of CaO is completely gone. ठीक है, क्या बन चुका है? इट इज नो लॉन्गर CaO, इट इज नाउ CaOH whole twice. It is now CaOH whole twice. So identity of the old substance is completely gone. Okay. One more thing, that in chemical changes, energy is either absorbed or released. Like in this case, energy will be emitted. Delta means heat. In this case, whenever in a reaction you find delta written, तो क्या मतलब होता है उसका? हीट। क्लियर है बात? तो यहाँ पे एनर्जी इज बीइंग एमिटेड, तो या तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगा या रिलीज होगा। रिलीज, एमिशन, है ना, सेम थिंग। ठीक है, सो either energy is absorbed or emitted. If energy is absorbed, we call it endothermic reaction. ठीक है, if energy is released, we call it exothermic reaction. Okay, चलिए, next we have examples. First we have evaporation, distillation, sublimation, condensation and crystallization. See, what is evaporation? Everybody knows this.
इवेपोरेशन इज नो रॉकेट साइंस, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज नोन एज इवेपोरेशन। आपने पानी गर्म किया, भाप बन गया, क्या हुआ? वो इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन इज नो रॉकेट साइंस। Conversion of liquid to gas on application of heat is called evaporation. It is a physical change. Water is also H2O and your steam is also H2O. We'll get to that. Ravikant, wait. Okay. That is evaporation. Clear? Next we have distillation. Now distillation is a process where simultaneous evaporation and condensation take place. Distillation क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें एक साथ इवापोरेशन भी होता है एंड आपका कंडेंसेशन भी होता है। व्हाट इज कंडेंसेशन? लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट। ओके, व्हाट इज कंडेंसेशन? क्या होता है कंडेंसेशन? देखो, जब आपने नोटिस किया होगा, देखो फ्रिज से पानी निकाला है, बॉटल आपने, सब लोग निकाल रहे हैं इस मौसम में, आप बाहर रखते हो। आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स on outside of the bottle. Now where does that water come from? Okay, कहां से आता है वाटर? वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। There are water droplets, there are water vapors in the atmosphere roaming around. When they come in contact with that cold surface of the bottle, पानी का जो बॉटल है उसके cold surface से कांटेक्ट में आते हैं, then those water vapors convert into water droplets and they are seen on top of the water bottle. This phenomenon of conversion of water vapors or any kind of gas to liquid is known as condensation. Basically, the reverse process of evaporation. क्या होता है ये? Evaporation का उल्टा होता है condensation. Clear? अब आते हैं distillation के ऊपर. This process is the simultaneous evaporation and condensation. ठीक है, साथ में होता है evaporation और condensation, साथ में चलते हैं, and this is known as distillation. How this happens? See, everybody here has seen Bear Grylls Man versus Wild. Okay, everybody has seen that. Whenever he goes to a place where there is little to no water, fresh water, he takes whatever water he can find. जो पानी इसको मिल गया गंदा, whatever है ना, जितना गंदा पानी हो उसने ले लिया, उसको ले लिया उसने। एंड वो क्या करता है उसके बाद? एक सेकंड, क्या करता है उसके बाद? वो he makes a makeshift फायर बनाता है वो पहले। फायर के बाद फिल्टर तो करता ही है, बट नॉट फिल्टरिंग विल ऑलवेज नॉट हेल्प। फिल्टरिंग अपने आप में हमेशा हेल्प नहीं करता। फिल्टर करने से आप जर्म्स नहीं मार सकते। तो एक आग बना लेगा वो, ठीक है, एंड ही विल बॉयल द वाटर, या बिल्कुल बॉयल कर देगा उसको। बट बॉइलिंग से जो आपका क्या बोलते हैं पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स, दे विल इवापोरेट, ठीक है, बेसिकली दे विल इवापोरेट एंड द impurities they will stay in the container. ठीक है, अब we need to catch those rising steam. Okay, so what he will do, he will take any leaf, any long leaf, for example banana leaf, okay, and he will slant it over the pot wherever he is boiling the water. Okay, now when these pure water droplets or pure water vapors, they will come in contact with the comparatively colder leaf, they will condensate. समझो बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, हिंदी बोल देता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? गर्म पानी को गर्म किया उसने, आप क्लॉथ ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो गर्म आपने पानी ले लिया, whatever water he found, उसने ले लिया उसको, गंदा पानी whatever, उसको रख दिया उसने आग के ऊपर, ठीक है, आग के ऊपर रख दिया उसने, और वो अब वो वाटर उबल रहा है ना, उबल रहा है, बट वो उबल के उड़ जाएगा,
तो वी नीड टू कैच इट इन सम वे। तो क्या करेगा, उसके ऊपर वो केला का पत्ता, व्हाटएवर पत्ता यू कैन फाइंड, उस पर लगा देगा। एंड नाउ व्हेन द हॉट स्टीम comes in contact with a comparatively colder leaf, पत्ता तो ठंडा है comparatively, उसके contact में आएगा and it will condensate, you will get water droplets, and चूंकि वो slant पे है, ठीक है, water droplets will trickle down where he will collect it and have the water. So this was a practical application of distillation. Okay, I'll have to close the message now. Basically a practical application of distillation. Simultaneous, साथ साथ हो रहा है, evaporation भी चल रहा है इधर में and condensation भी चल रहा है साथ में, तो simultaneous evaporation and condensation are known as distillation. ठीक है. Next we have sublimation. Some solids convert from solid to gas directly. It is known as sublimation. For example, camphor. ठीक है. Camphor, kapoor, naphthalene balls. They convert to gas directly without converting to liquid first. It is known as sublimation. Next we have crystallization. This is the process of forming crystals from saturated solutions. For example, KMnO4. You keep on adding KMnO4 powder to water, है ना? Keep on adding, keep on mixing, okay, at a high temperature, and then let it cool. When it will cool down, you will find crystals of KMnO4. This process is known as crystallization. Okay? These are all examples of physical changes. Next we have chemical changes. Okay. So first is a burning of a candle is both a physical and chemical change. Now how, sir? See, when a candle burns, two things happen. दो चीजें होती हैं कैंडल जलने पे. कैंडल के अंदर एक तो वैक्स होता है जो मेल्ट करता है, एंड कैंडल में विक होता है, एक थ्रेड होता है बीच में, दैट इज कॉल्ड विक. सो व्हेन द विक बर्न्स, इट इज नॉट रिवर्सिबल. एक बार विक जल गया तो जल गया, इट इज नॉट रिवर्सिबल. But the melting of the wax is reversible. So candle burning has two aspects: the wick burning, which is a chemical change, and the wax melting, which is a physical change. Hence, burning of a candle is both physical and chemical change. Clear? Next, we have ozone is decomposed to oxygen in presence of UV light. O3, wait, we change the pen. O3, ozone. UV light, if you give UV light to it, it changes into O dot, O2 and O dot. What is O dot, sir? O dot is nascent oxygen. Nascent oxygen. Now this process is a chemical change. ये अपने आप क्या बोलते हैं? ये chemical change है, मतलब ये reversible नहीं. To reverse this, you have to apply one more chemical change. Okay? Chemical changes are reversible only when you apply one more chemical change to reverse them. Okay? They are not reversible by simple physical processes. ठीक है? Next we have mass, weight, density and volume. Now see, let's discuss mass and weight first. ठीक है? Mass is the amount of matter present in the body. एक बॉडी के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर जो भी अमाउंट प्रेजेंट है, मटेरियल मैटर, इज नोन एज मास. ठीक है? एंड वेट इज द फोर्स बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट. ओके, सो व्हाटएवर, सी, if somebody says their mass, their weight is 60 kilograms, they are basically wrong scientifically. Okay, because weight is a force, and a force can only be measured in newtons, not in kilograms. Kilograms is the unit for mass. तो साइंटिफिकली करेक्ट रहना है अगर आपको. Am I clearly audible and visible? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ऑडियो वगैरह में, वीडियो वगैरह में? तो what I'm saying is that mass and weight are not the same. Okay? Mass is the amount of matter that you have. Mass is constant. Mass will not change.
no matter where you are in the universe, mass is constant because the amount of matter inside your body is the same. I can see a lot of thumbs down from Ashwini Singh and Aman. What is the issue, Ashwini and Aman? Without any reason, if you are doing this, then I'll have no problem in finding you and throwing you out of the class. Don't spam this. Don't spam this. Don't spam reactions. Give me a thumbs up or thumbs down only when I ask you to. मजाक चल रहा है. 14 days 13 days में एग्जाम है, तुम लोग मजाक कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. सब्सटेंस के अंदर जो भी मटेरियल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी मास. एंड वो फिक्स्ड है. ठीक है. तुम्हारे अंदर जो मैटर है वो तो तुम्हारे अंदर है ना भाई. नो मैटर वेयर यू आर, आप धरती पे हो, चांद पे हो, है ना, कहीं पे भी हो, whatever inside your body is the same. So mass is constant. Mass is constant. Weight can change because weight is the force. Weight is the force. If you are on Earth, your weight is different. If you are on Moon, your weight is different because the gravitational pull of both the planets is different. Both the bodies, heavenly bodies, is different. Clear? So weight can vary depending upon the gravity. Mass is constant. Okay? Whatever you call your weight, 60 kilograms, is not your weight actually, it is your mass. Weight is different. So the relation between mass and weight is this: W equals to mg, where m is your mass and W is your weight, and g is the its value at the surface of the earth is 9.8 meter per second square. It is known as acceleration due to gravity. At the surface, this is the value of. Now coming on to volume. So see, if you are sitting somewhere, you are occupying some space in the 3D world. आप बैठे हुए हो तो आप 3D स्पेस में कोई ना कोई जगह तो ले रहे हो. आप वहां पे नहीं होते तो क्या होता? हवा होता कि नहीं? हवा होता. तो हवा की जगह पे आप बैठे हुए हो. ठीक है. हवा की जगह पे आप बैठे हुए हो. तो whatever air you are displacing on being at a particular place, ठीक है, आप वहां पे हो तो आप एयर को डिस्प्लेस कर रहे हो वहां से. am I right? एयर डिस्प्लेस कर रहे हो आप. तो एयर को डिस्प्लेस कर रहे हो आप, तो whatever amount of air you displace is actually your volume. Is actually your volume. In technical terms, we can say this, that amount of space occupied by a substance is known as its volume. It is measured in ml, which is equal to centimeter cube. Okay, clear? And it has units of length cube. जितना भी होगा length cube, millimeter cube, centimeter cube, okay, decimeter cube, all of those are units of volume. Now coming on to density. Density is nothing but amount of mass per unit volume. Density का symbol होता है rho, which is equal to m by b. Mass of the body upon the volume. The more dense the body is, okay, the more mass it has in a particular amount of volume. Okay, if I'm saying that a particular body is more dense than the other body, what I mean is that for a given amount of volume, the body A has more mass than body B. Clear? No rocket science in this case. एक बहुत बेसिक चल रहा है ना. चलिए. So with this we come to the end of this chapter. Moving on to elements, mixtures and compounds. ठीक है. So let me be very clear with this. Okay. See. See. We all know atoms now. Atom तो बताना नहीं पड़ेगा मुझे. Atom क्या होता है, molecule क्या होता है. You know that. So let's say I have an atom which has 6 electrons, 6 protons,
and 6 neutrons. I have this atom. Okay. Let's say I have a billion such atoms. मेरे पास 1 billion ऐसे atoms हैं. कितने बेटा? 1 billion. So if I have only one such atom, then I can very clearly or very easily say that I have one atom which has 6 electrons, 6 protons, and 6 neutrons. But if I have a billion atoms like this, then to keep on calling it like this, मतलब बार बार बोलूं उसको भी 1 billion atoms है, 1 billion atoms, 1 billion atoms. So it is very tedious and repetitive. Okay? To avoid this repetition, we came to a conclusion that similar kind of atoms, okay, and by similar I mean atoms with equal number of electrons, protons, and neutrons, they will be clubbed together and will be called an element. Like in this case, this atom, whatever atom has this configuration, will be called carbon, will be called the atom of carbon. So element is nothing but an umbrella to cover all identical atoms. Element is nothing but an umbrella to cover all identical atoms. Clear? Clear? Now, if you have, if I give you two different atoms, okay, let's say I give you this 6, wait a minute, please. Rohit, why is your hand up? You have any doubts? First, I am blocking you for spamming in the class. Okay. Okay, wait, I'll take it out straight. Okay. So now let's say you have two different atoms. Okay. Let me write the configuration for them. So electron, proton, neutron, 6, 6, 6. And this is atom A, and we have atom B. So wait. 6, 6, and 7. Now, are these both atoms of the same element or different element? So those who are saying that they belong to the same element, give me a thumbs up. Okay. So whoever is giving thumbs up is absolutely correct. They belong to the same element, and that is carbon. Because for judging if an atom belongs to an element or not, just check the number of protons, only the protons. प्रोटॉन अगर सेम है, ऑफ अगर दो एटम के प्रोटॉन सेम है, then they belong to the same element. They are the atom of the same element. Proton is like the roll number. ठीक है, रोल नंबर होता है. अगर यूनिक है वो, ठीक है, मतलब कि 6 प्रोटॉन अगर है तो वो एटम कार्बन का ही होगा, नो डाउट अबाउट इट. क्लियर बात? यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, and hence they will both be called isotopes because they will have different masses. We will discuss this in the next chapter, so wait for that. अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ और आइडेंटिकल काइंड ऑफ एटम्स. We call them elements. Clear? Call them elements. What are compounds? See, atoms of the same element or different elements
they combine together, they bond together to form compounds, to form molecules. Okay, for example, for example, CO2. Here, one atom of carbon and two atoms of oxygen have bonded together to form this molecule, CO2. H2O. Here, one atom of oxygen has bonded with two atoms of hydrogen element to give you this molecule of H2. Clear? So these are molecules. CO2, H2O are molecules. See, now like we had element for atoms, सेम तरह के एलिमेंट्स को साथ में कर दिया एलिमेंट, सेम तरह के एटम को साथ में कर दिया एलिमेंट बन गया। एक है बात कि सेम तरह के एटम को लिया साथ में किया एलिमेंट बना दिया, उनको बोल दिया एलिमेंट है ये। वैसे ही सेम तरह के मॉलिक्यूल्स को साथ में करके बोलते हैं कंपाउंड है ये। ठीक है, so if I have a billion CO2 molecules, I am just going to say that I have carbon dioxide, that's it। ठीक है, तो अगर मेरे पास I have a lot of different same kind of molecules, ठीक है, same kind of molecules, then we call them a compound। So element and compound is clear to you? Element क्या है, compound क्या है? Now coming on to mixtures, so mixtures are basically, as the name suggests, a mix of different elements and or compounds। मतलब या तो केवल elements साथ में मिला दो, only elements, let's say carbon plus your hydrogen, you can mix them together, or you can mix them along with different molecules or compounds, they will all be called mixtures, they will all be called। So you can mix elements or you can mix compounds or you can mix both, they will be known as mixtures। Very clear? Now coming on to matter, तो ये वो मैटर नहीं है जो आप लोग कर लेते हो, है ना, और बोलते हो भाई मैटर हो गया, बंदे लेके पहुंच, तो this is not that matter। So anything that occupies space and has mass is termed as matter। कुछ भी जिसके पास जो जगह लेता है, स्पेस लेता है एंड जिसका कोई वजन होता है is known as मैटर। ठीक है, तो हम तुम, ये लैपटॉप, टीवी, है ना, पानी का बॉटल, पानी, whatever is there inside, सब कुछ क्या है, मैटर। मैटर क्या नहीं है सर, तो वैक्यूम इज नॉट मैटर। जहां पे कुछ नहीं होता है ना, मतलब मान लो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है रूम में मेरे, है ना, खाली खाली लगता है, तो वहां भी हवा है, there is air, that is also not vacuum। वैक्यूम इज समवेयर जहां पे कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो, तो वैक्यूम बोलते हैं। क्लियर? तो वैक्यूम को छोड़कर whatever is there is known as matter। ठीक है, now matter can be of matter can be found in 3 states, although there are many more states, but till class 12th we have to study only 3 states। So we have solid, liquid and gas। See, in solids the molecules are very tightly packed, the molecules or the particles you can say, they are very tightly packed, बहुत ही पास है ना, बहुत ही चिपका कर पैक किया गया है, समझ रहे हो बात को? In liquids if you see, the particles are comparatively free, थोड़ा सा खुले खुले हैं। एंड गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स आर इवन मोर एक्सपेंडेड, और जरा खुले खुले ना, पूरा खुला खुला माहौल है। तो दीज आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच वी आर गोइंग टू स्टडी। इन सॉलिड्स, नोट करो इसको, सॉलिड्स हैव a fixed shape and a fixed volume। So they have a fixed shape and they have a fixed volume। ठीक है, liquids have a fixed volume
but not a fixed shape, no fixed shape. And gases have neither fixed shape and nor fixed volume. ठीक है, solids have fixed shape and fixed volume. Gases, liquids have neither fixed, liquids have fixed volume but not fixed shape, and gases neither have fixed shape nor have fixed volume. Also note this thing, that the volume of a gas is equal to the volume of its container. ठीक है, so different states of matter can transform into each other. ये ध्यान रखना, क्या होता है, they can transform. ऐसा नहीं कि solid जो है वो solid रहेगा जिंदगी भर, they can transform. So solids can convert to liquid, and this is called melting or fusion, also called as fusion. Okay. Liquids can convert to gases, known as vaporization or evaporation. Okay. And solids can convert to gas directly, known as sublimation. Sublimation. Reverse is also possible. Gas can convert to liquid, known process called condensation, and liquid can convert to solid, known as freezing. Okay. In as you move from solid to liquid to gas, you provide heat. So heat will be provided in this direction, and in this direction, heat will be removed. So basically, you are doing providing coldness. See, coldness is not provided. Coldness is a state where heat is not available. You can say that, or inadequacy of heat is there. Heat कम है, अगर heat कम होगा तो cold हो जाएगा. Cold कोई energy नहीं होता है, समझे बात को. Cold is absence of heat. Cold is absence of heat. Cold अपने आप में आप cold provide नहीं करते हो, आप heat खींचते हो. Heat खींचोगे तो cold बन जाएगा. Clear? And solid converting to gas is called sublimation. The reverse process of gas converting to solid is known as deposition. क्या बोलते हैं इसको? Deposition. Aditya, Rohit, you can type your doubts in the chat box. चलिए. Moving on, we have basically solids can also be of two types. Solid into gas, what? See, जितना आपसे रिकॉर्डिंग हो रहा है, जितना आपसे हो रहा है करते हुए क्लास के वक्त नोट्स करो, नहीं हो रहा है देन try to understand first. You can watch the recording later on, and then you can make your notes, short notes. Deposition is the reverse of sublimation. That's it. Conversion of gas to solid directly is known as deposition. Fusion is the melting of solids. अब ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को ना, ये बात रिपीट करने वाली नहीं है. नहीं अमन, ओके थैंक यू. ऑलरेडी दिखा चुका हूं ना क्लास में. ये तरीका होता है हर चीज का ना. पहली बार पढ़ रहे हैं. देखिए, नेक्स्ट वी हैव amorphous solids and crystalline solids. Let me show you a picture to make it very clear to you. See, both are solids. Both of for being solid, the only requirement is that the particles should be very closely packed. That's it. ठीक है. So ये भी solid है,
ये भी सॉलिड है एंड ये भी सॉलिड। दोनों में फर्क क्या आ रहा है कि हियर द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, हियर पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड, बट हियर दे आर वेरी टाइटली अरेंज्ड। यू सी अरेंजमेंट प्रॉपर है, यहाँ पे नो प्रॉपर अरेंजमेंट इज देयर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट इज देयर, यहाँ पे नो प्रॉपर अरेंजमेंट, नो प्रॉपर। So amorphous solids are solids with no proper arrangement of particles, and crystalline solids are solids with proper arrangement of particles. Clear? यही बात लिखा गया है amorphous के लिए। You can read this. ठीक है, do not possess क्या बोलते हैं an arrangement, a proper arrangement. Orderly arrangement. You can read this. You can learn the examples. Next, we have latent heat. Latent heat. See, whenever you give heat to a system or a body, two kinds of possibilities are there. First is that the heat is taken by the body and the temperature is increased using it. उसका इस्तेमाल करे body और temperature बढ़ा ले. That heat is called thermal heat. Okay. And the other is latent heat. In this case, the heat absorbed by a body is not used to increase the temperature, but rather it is used to change the state. मतलब इस heat से body क्या करता है, अपना state बदलता है, solid से liquid, liquid से gas जाता है। अगर आप बॉडी को हीट देते हो, दो पॉसिबिलिटी है, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, या तो अपना वो स्टेट बदलेगा। तो जब भी whenever the body uses the heat to change the state and only the state, केवल स्टेट चेंज करने के, not temperature, that heat is known as latent heat. उसको क्या बोलते हैं आप? latent heat. latent मतलब होता है इनविजिबल, जो दिखाई ना दे। लेटेंट टेक्स्ट था भी, आज दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो लेटेंट हीट वही होता है कि जो दिखाई नहीं देता है। व्हाई? बिकॉज थर्मोमीटर पे नहीं आएगा, वो थर्मोमीटर पे नहीं आता। ठीक है, वो आपको इट विल बी सीन इन टर्म्स ऑफ स्टेट चेंज। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। नाउ लेटेंट हीट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन what the process is. So let me get to that first. इसको रोक दो अभी के लिए, पहले आ जाओ latent heat of fusion and vaporization के। मैंने क्या बोला था आपको कि भाई जब भी melting होता है it is known as fusion. So amount of heat, okay, required to convert basically a unit mass of solid into liquid at its melting point is known as latent heat of fusion. सिंपल बात है, समझो, है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटर का जो latent heat होता है that is 334 किलोजूल पर केजी। इसका मतलब क्या है कि इफ यू हैव 1 kg of ice at 0 degree Celsius, so that 1 kg of ice will convert to 1 kg of water at the same temperature when you give this much of heat, and this amount is known as the latent heat of fusion. अब क्वेश्चन क्या बनेगा सर? क्वेश्चन ये बनेगा, बोल देगा कि this amount will be given to you and they will ask you that if I have, let's say, 2 kg of, या 3 kg, 4.5 kg, whatever the amount is, the mass is, this mass is m. They will give you the m. They will give you the LF. LF, what is LF, sir? Latent heat of fusion is called LF. The water के लिए कितना था? 334. तो क्या हो गया? LF of water हो गया. What is this? ये क्या है वैल्यू? ये है LF of water. तो ये वैल्यू पता होगा, ये वैल्यू गिवन होता है क्वेश्चन में, एंड द मास इज गिवन टू यू। मास किसका? मास ऑफ द आइस दैट इज नीड टू बी मेल्ट। मेल्ट होना है आइस को, तो मेल्ट होना है आइस को, वो गिवन होगा आपको। देखो क्या बोल रहा है, मतलब क्या है कि अगर मैं इतना हीट दूं तो 1 kg आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा, 1 kg वाटर बन जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये मतलब होता है। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा? बोलेगा भाई कि यू हैव 1.5 kg ऑफ ice to melt, how much heat will be required? So Q is the heat
m is the mass of the ice or any solid for that matter, and lf is the latent heat of fusion. So q equals to m into l. ठीक है. नेक्स्ट इज वेपराइजेशन, सेम केस, बट यहाँ पे क्या होगा, वेपर बनेगा. क्या बनेगा, वेपर. ठीक है. एल इज द सिंबल फॉर वेपराइजेशन लेटेंट हीट, एल. ठीक है, एलवी. तो यहाँ पे देखो, दिस इज एलवी ऑफ वाटर. मतलब इफ यू गिव दिस मच हीट and 1 kg of water at 100 degrees Celsius will convert into steam at the same temperature. Because this is the latent heat. ध्यान देना इसका. This heat will not be used in increasing the temperature. This will only be used in changing the state. Question क्या बनता है? Again, they will tell that you have 6 kg of water or 4 kg of water or whatever the mass of water, m will be given to you, mass of water will be given to you, or mass of any liquid will be given to you, and its LV will be given to you. So you just multiply them and get the total heat requirement. That's it. Clear? अरे भाई बहुत सिंपल है. क्या बोल रहे हैं, 1 kg वाटर को इस टेम्परेचर पे स्टीम बनाने के लिए इतना हीट का रिक्वायरमेंट है. तो 3 किलो के लिए कितना होगा मेरे भाई, 3 इंटू दिस मच, 3 इंटू दिस मच. ये कर लोगे. 3 क्या हो गया, 3 m हो गया. एलबी क्या, ये हो गया. 3 इंटू नहीं, 3 इंटू ये नहीं कर लोगे, कर लोगे. यही तो बोल रहा हूँ. ये फॉर्मूला बड़े बड़े हैं, सिंपल है कि एलबी इज द energy required to convert 1 kg of any liquid to a gas, to its gaseous. तो अगर 1 kg का पता हो तो क्या 4 kg 5 kg नहीं निकाल पाओगे. यही तो बोल रहा हूँ. जिनका भी डाउट है चैट में डालो यार, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए, बिना बात का नहीं. क्लियर है. चलिए, नेटवर्क इशू. अच्छे से नोट्स बनाकर समझाने का टाइम अब नहीं रह गया है. वॉइस अभी भी ब्रेक कर रहा है, अभी ब्रेक कर रहा है वॉइस. अब ठीक है. अब बताओ, अब बताओ अभी. ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं क्या बोल रहा हूँ कि latent heat of vaporization means the heat required to vaporize 1 kg of a liquid. ठीक है, 1 kg एक लिक्विड का है, तो उसको वेपराइज करने के लिए हाउ मच हीट विल बी नीडेड, दैट इज कॉल्ड एलवी. ठीक है. सो अगर एलवी पता है आपको, यू नो दिस, है ना, ये गिवन हुआ क्वेश्चन में आपको. एंड हिंदी तो बोल रहा हूं यार, देयर इज नो माइनस साइन, माइनस साइन नहीं है वो. उर्दू बोल रहा हूं मैं, अरबी बोल रहा हूं क्या. देखो मैं अब क्वेश्चन आप लोगों का लेना छोड़ दूंगा, ऐसा बिहेव करोगे तो. देखो, एलबी है ये वेपराइजेशन का लेटेंट हीट, मतलब इतना हीट दोगे तो 1 kg वाटर को स्टीम बना दोगे आप. तो अगर एलवी पता होगा क्वेश्चन में आपको, मास गिवन होगा, मास किसका, मतलब बोला गया कि 1 kg वाटर है ये, तो उसके लिए इतना हीट रिक्वायरमेंट है.
2.5 kg के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा? 2.5 इज द मास, तो LV यू हैव, M यू हैव, जस्ट मल्टीप्लाई देम बोथ एंड गेट द हीट रिक्वायरमेंट। यही तो बोल रहा हूं मैं, क्या रॉकेट साइंस है? ये माइनस नहीं है, जिनको लग रहा है माइनस है तो माइनस नहीं है भाई। वही सेम कहानी होगा विथ LF, ठीक है, वहां पे इट इज द हीट रिक्वायरमेंट फॉर कन्वर्टिंग 1 kg ऑफ आइस टू वाटर, 1 kg ऑफ आइस टू वाटर, ठीक है। तो बोला जाएगा कि अगर 1 kg नहीं तो 2 kg के लिए बताओ कितना होगा, तो 2 kg के लिए कैन डू द मैथ, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मास इनटू LF, ये नेगेटिव नहीं है अगेन, क्लियर? नाउ कमिंग बैक टू दिस, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम सॉलिड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। अच्छा, बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेनन, ध्यान देना। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग पूरे पूरे बॉडी में होता है। बॉइलिंग क्या होता है? पूरे बॉडी में होता है, मतलब मान लो पूरा वाटर है इतना, ठीक है, तो बॉइलिंग पूरे बॉडी में होगा। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन, ध्यान देना, इवापोरेशन केवल सरफेस पे होता है, ठीक है, एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेनन, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, क्लियर है? बॉइलिंग पूरे पूरे बल्क में होता है, एंड आपका बल्क मतलब पूरे मटेरियल में, मान लो पूरा पानी है तो 1 लीटर पूरे में होगा। इवापोरेशन ओनली सरफेस पे होता है, ठीक है, एंड अगर पानी में इंप्योरिटी है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बिकॉज सम हीट इज ऑब्जॉर्व बाय द इंप्योरिटीज देमसेल्फ, ठीक है, तो वो वाटर तक नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट वी हैव दिस मैटर का टाइप्स। फर्स्ट वी हैव प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, देखो मैटर बनता है पार्टिकल से, किससे बनता है? पार्टिकल से। तो अगर आपने जूम किया मैटर के अंदर और एंड यू फाइंड द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कैसे हैं? सेम काइंड, तो दे आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। और अगर मल्टीपल काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, ना पार्टिकल्स कैन बी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स कैन बी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो अगर सेम आइडेंटिकल काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस के अंदर तो वी कॉल देम प्योर सब्सटेंसेस। और अगर आपका मिक्सचर है, मतलब मल्टीपल, मतलब कि आपका जो पार्टिकल्स हैं वो सेम टाइप के नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है ना, उनमें मल्टीपल काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, एटम्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं, सब है उसके अंदर, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो वी कॉल देम मिक्सचर्स, ठीक है। अब प्योर में भी अगर आपका आपने जूम किया मैटर के अंदर और जो पार्टिकल्स आपका है वो सेम तरह का है, पहला बात तो, एंड सेम तरह का होने के बावजूद उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स है, सारे सारे क्या है? एटम्स है, और सेम तरह के एटम्स है, देन वी कॉल इट एलिमेंट। अगर आपके मैटर में सेम तरह के एटम्स है केवल तो वी कॉल इट एलिमेंट। और अगर सेम तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, सेम तरह क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स, तो क्या बोलेंगे उसको? कंपाउंड बोलेंगे। मान लो आपने जूम किया जूम किया जूम किया, आपको मिल रहा है केवल H2O मॉलिक्यूल्स, केवल क्या मिल रहा है? H2O मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या है? वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर इज अ, तो ये हो गया आपका प्योर सब्सटेंसेस। क्या करना है? जूम करना है आपको। अगर जूम किया आपने और सेम तरह के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो जो है वही एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है, तो प्योर सब्सटेंस। अगर कॉपी पेस्ट नहीं है तो मिक्सचर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये डिवीजन हो गया पहले, डिवीजन हो गया। उसके बाद प्योर में अगर आप जाते हैं, जूम करते हैं, ठीक है, और अगर सेम तरह के एटम्स हैं, सेम तरह के हैं बेटा? एटम्स हैं, तो वो मैटर जो है वो एलिमेंट है, मैटर क्या है? एलिमेंट। और अगर सेम तरह के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, H2O 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 H2O, तो मैटर क्या है आपका? कंपाउंड, ठीक है। अब आइए मिक्सचर के ऊपर। मिक्सचर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। अब मल्टीपल तरह के पार्टिकल्स हैं अंदर में, आपके आपने जूम किया मैटर में, मल्टीपल काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब व्हाट इज होमोजीनियस? आपने बनाया होगा नींबू पानी, कभी नींबू पानी बनाया है कभी? उसमें क्या होता है? नींबू होता है, चीनी होता है, नमक भी होता है, बहुत लोग डालते हैं नमक। तो आई एम नॉट आस्किंग फॉर द रेसिपी, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें क्या क्या होता है जनरली? वाटर, लेमन जूस एंड शुगर। तो उनका जो आप ट्राई क्या करते हो? व्हाट यू वांट द टेस्ट टू बी कंसिस्टेंट, कि भाई मैं अगर इफ आई एम मेकिंग लेट्स से 5 लीटर्स ऑफ लेमनेड, आई वांट द टेस्ट टू बी कंसिस्टेंट, भाई पहला बंदा जो पी रहा है एंड द लास्ट बंदा जो पी रहा है उसका टेस्ट इक्वल आए, वरना झगड़ा हो जाएगा, ठीक है।
So for maintaining that taste, we need to make sure that the ratio of the components water, sugar and lemon juice is the same, वो कांस्टेंट रहे. जो रेशियो पहले ग्लास में है वाटर शुगर लेमन जूस का, वही रेशियो लास्ट ग्लास में रहे. ठीक है, सही बात है. सो व्हेन द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स in a mixture is same throughout the mixture, we call such mixtures as homogeneous. ठीक है, like lemonade, like sugar solution, like sugar cane juice etc. और अगर वो रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, we call it heterogeneous mixture. अगर वो रेशियो सेम ना रहे, रेशियो डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या कहेंगे उसको? heterogeneous mixture. And solutions are a type of homogeneous mixture. तो ये हो गया आपका types of matter. ठीक है, अब मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, ये रीडिंग वाला पार्ट है, रीड कर लो, है ना, खास है नहीं इसके अंदर. ठीक है, चलिए. So with this we come to the law of combination and gas laws. So with this let's have a break till 11:07. ठीक है, don't leave the class, be here, just you can put your mic and camera off, mic तो off ही है, camera off कर सकते हैं आप, and have a break till 11:07.
Okay, so let's begin with the laws of chemical combination and gas laws. So first we have the law of conservation of matter. बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें कुछ. आपका मैटर कंजर्व रहता है, ठीक है. मैटर डज नॉट फॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म होता है. मतलब कोई अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें प्रोडक्ट्स जो बन रहा है दे विल बी फॉर्म्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द रिएक्टेंट. खत्म होगा तो प्रोडक्ट बनेगा. क्लियर? सो बेसिकली फॉर आवर पर्पसेस, है ना, वी नीड टू रिमेंबर दिस वन थिंग. The mass of reactants is equal to mass of products. मतलब अगर कोई रिएक्शन है A plus B gives C plus D, then mass of A plus B should be equal to mass of C plus D. यही ये लॉ बोलता है फॉर केमिस्ट्री और रिएक्शन पर्पसेस. अगर है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है. व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? सी द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर. मान लो आपने एक कंटेनर लिया, उसमें एक पर्टिकुलर गैस फिल कर दिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, व्हाटएवर इट इज. सो दैट व्हाटएवर प्रेशर दैट गैस क्रिएट्स इज नोन एज इट्स पार्शियल प्रेशर. वो उसका अपना इंडिविजुअल प्रेशर, उसको बोलते हैं उसका पार्शियल प्रेशर. क्लियर है? तो हो गया. अब मान लो कि यू आर एडिंग 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस. ध्यान रखना, केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए. अगर आप ऐसे गैसेस को ऐड करते हो, ठीक है, in a container, then the total pressure PT will be equal to the sum of the partial pressure. So P1 plus P2 plus P3, मान लो जितने भी गैसेस हैं, 3 है, 4 है, 5 है, whatever there are, उन सबको ऐड कर दोगे. Let's say there are 3-4 gases, let's say there are 5 gases. तो उनका अपना इंडिविजुअल कोई कुछ होगा प्रेशर. Add their individual pressures, add their partial pressures to get the total pressure of the container. Clear? Next we have gas laws. So first there are 3-4 gas laws, 3 gas laws basically. So first is Boyle's law. ठीक है. See, basically for any gas there are 3 parameters: pressure, volume and temperature. Pressure, वॉल्यूम एंड. ठीक गाइस, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट. ऑल्सो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन एड. आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है. चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, आवर मेंटर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू. सो फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन एंड लाइक दिस वीडियो बिफोर यू गो. टेम्परेचर, इन तीनों में खेलते रहना, ठीक है. फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ रिलेट्स pressure and volume, and when these two are related, temperature is kept constant. Similarly, Charles' law will relate V and T. In that case, pressure will remain constant. Okay, and Gay-Lussac's law will relate your P and T. In that case, V will remain constant. Okay, so these three will be integrated in 3 different laws. These are the formulas basically. Boyle's law. See, Boyle's law क्या बोलता है? Boyle's law that pressure and volume are inversely proportional. As you increase the pressure, volume will decrease, and as you increase the volume, pressure will decrease. यही बात. It is very understandable. आप समझ सकते हैं इसको very easily. अगर आप सोचो एक बार, you have a container like this. This is the volume. Okay, this is the volume V or V1, let's say. Pressure is P1 inside the container, and we are pushing the piston downwards. What will happen? The volume will decrease, right? Volume will decrease, V2 will decrease, and the P2 will be larger. Why? Because ये पिस्टन रुकता कब है? पिस्टन तब रुकता है
जब internal pressure and external pressure are equal. So since the piston has stopped here in this case, it means what? It means that, and the see applied pressure is more than P1, तभी तो move कर रहा था नीचे. सोचो एक बार, देखो ध्यान दो, ये piston है मेरा, तो there are 2-3 possibilities. या तो नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, ये ऊपर का, ये इक्वल होगा. अगर इक्वल है तो रुका हुआ रहेगा, ठीक है. और अगर ऊपर का ज्यादा है दबेगा, नीचे का ज्यादा है तो खुलेगा. क्लियर? तो अगर मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई करता हूं टू सप्रेस दिस P external, let's call this P external, है ना, and it stops at P2. P2 अंदर जब P2 हो चुका है तो ये रुक चुका है piston. It means that P external is equal to P2. Then only it can stop. The only possibility where the piston can stop is that when the pressures above the piston and below the piston are equal. So on decreasing the volume, if volume is decreased, pressure has increased, and vice versa. This is called inverse relation. और ये बॉयल्स लॉ का आपका एक्सप्रेशन होता है. When you remove the proportionality, you get a constant. So let's keep it K. Now solving it, we have PV equals to constant. It means what? If you multiply the pressure and volume, okay, of at any instant in a experiment, in a single experiment, that would always give you a constant value according to Boyle's law when you keep the temperature constant. टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए अगर आप P और B को किसी भी पॉइंट पे इंटू करते हो तो वैल्यू कांस्टेंट ही आएगा. यही फॉर्मूला. अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात, डोंट वरी, जस्ट लर्न द फॉर्मूला. P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. दैट्स इट. सवाल इसी भी बनता है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ भी सेम कहानी है, ठीक है. फॉर्मूला याद रखना है इसको. P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T. एंड किलोजैक्स लॉ सिमिलर होता है. P1 upon T1 equals to P2 upon. फॉर्मूला याद करो अभी. फॉर्मूला याद करो. Clear? If we combine these three, we get the combined gas law, which is the P1 V1 upon T1 P2 V1 P2. Combined gas law. मान लो कि कुछ कांस्टेंट आ रहा है. For Boyle's law we need temperature constant. For Charles law we need pressure constant. For Gay-Lussac's law we need volume constant. But let's say कि कुछ कांस्टेंट नहीं है, तीनों चेंज हो रहे हैं. So in that case we will use the combined gas law, which is P1 V1 upon T1 P2 V2. Okay. And if a gas follows all these three equations, okay, all these three equations under all conditions, then such gas is called ideal gas, and it will follow this equation, PV equals to nRT, which is called the ideal gas equation. So if any gas follows the Boyle's law, the Charles law, and the Gay-Lussac's law, all these laws, okay, at all conditions, then we call it an ideal gas, and then in that case we can apply this equation, which is known as the ideal gas. Clear? Sure. Next is the characteristic of an ideal gas. So it obeys the Boyle's law, Charles law, and the Gay-Lussac's law. At all conditions temperature pressure, है ना. एक और बात, for ideal gases there should be little to no attractive forces between the particles. ठीक है. उनमें क्या होता है, इसीलिए ideal gases are not very common. ठीक है. No gas is perfectly ideal. Why? Because there is always some attraction between the particles. For a gas to be perfectly ideal, there should be zero attractive forces between the particles. ये एक assumption है, ये true नहीं होता है. No gas can perfectly show this. That is why we have real gases, and these are called ideal gases. This is called the gas constant R. Okay. So these are the three values. You can keep it at 2. 1.987 is not required. You can just use 2 calorie per mole Kelvin. Okay. This R will be used in this value will be used in this chapter, and the remaining 2 will be used in thermodynamics. These are the graphs. Okay. So Gay-Lussac's law, pressure temperature graph.
Okay, Boyle's law graph is not correct, so let me correct this for you. Okay, so the graph here will be like this. Okay, okay. So next we have atomic and molecular and molar mass. See, first is atomic mass. Atomic mass. The mass of an atom is called atomic mass. Very clear. Now, if I want to get the mass of, let's say, any body or any particular object, then I can take the mass of the individual components inside the body and add them all to get the mass of the body. सही बात है. मैं उनके अंदर का सारे पुर्जों का मास अगर कर लूं तो पूरा जाएगा मेरे को. कॉमन सेंस है. तो एटम में क्या होता है? एटम हैज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है. तो अगर मैं इनका मास कर दूं then I can get the mass of the atom. So atomic mass is nothing but atomic mass is equal to mass of mass of protons plus mass of neutrons plus mass of electrons. सही है. अच्छा, is my audio video all clear? कोई दिक्कत? Okay. Okay. So this is the basic idea for getting the atomic mass. Now, you should know this, that the mass of proton and neutron is nearly the same. Their mass is nearly the same. But the mass of electron is nearly 2000 times less than the proton and the neutron. The mass of neutron is slightly higher than proton, but they are almost similar. But the mass of electron is very, very small. It is almost 2000 times less than that of protons and neutrons. So scientists decided what? That we can neglect the mass of electrons. Scientists decided that while getting the atomic mass, we can neglect the mass of the electrons. So what they came up with is this. Basically, the mass of the neutrons and the mass of the protons. Just that. Okay. Now, theoretically, we cannot get the atomic mass directly. Okay. For getting that, we need to get the atomic mass number first. Atomic mass number. मतलब कि आप डायरेक्टली एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते हो थियोरेटिकली. हम लोग को पहले एक नंबर निकालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर. कैसे निकालेंगे सर? ये आपको जो एटम निकालना है, जो भी एटम का मास निकालना है, उसका पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लो एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लो, उनको ऐड कर दो. You add them both and get the atomic mass number. For example, if we have carbon, okay, so 6 protons, 6 neutrons, we get 12. Okay. If we have sodium, then 11 protons and 12 neutrons, we have 23. We have 23. So this is how you get the number. Okay. So atomic mass number, the symbol is A. So A for sodium came out to be 23. Okay. For carbon it was 12. For let's say potassium it is 39. These are just numbers. Okay. These are not masses. आपका मास 60 किलोग्राम होता है ना, 65 किलोग्राम होता है, राइट? इट इज नॉट 60, इट इज नॉट 35, इट इज नॉट 45, इट इज 45 kilograms, it is 60 kilograms. So you have to attach some unit to it. मास बनाने के लिए एक नंबर को मास क्या बनाता है? 60 को मास क्या बनाएगा? केजी लगाने पे मास बनता है वो. So we need to attach some unit to the number to get the atomic mass. So atomic mass number में we need to apply some unit. Basically unit लगा देंगे तो काम हो जाएगा. ठीक है. Now you can apply gram, you can use gram for measuring atomic masses, but it was seen that the values that were getting were very small. और छोटे वैल्यू आ रहे थे. ठीक है. और छोटे वैल्यू आ रहे थे.
तो हमने क्या करा, वी डिसाइडेड कि वी विल डिस्कवर वन यूनिट, एक यूनिट बना देंगे पूरा, जिसका काम ही होगा टू मेजर द एटॉमिक मासेस. ओके, एंड वी कॉल दैट यूनिट एज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास शॉर्ट में बोले AMU. And the value of one AMU was decided. How much, sir? 1/12 of C12 mass. Carbon के there are 2-3 isotopes, C12, C13, C14. So C12 लिया हमने, उसका मास कर लिया. अब कैसे किया, that is not our concern. वो मास किया हमने और उसका 1/12 बोल दिया. This amount is 1 AMU. This amount is 1 AMU. And AMU was discovered for this purpose only, for measuring the atomic mass of neon. Yeah. So 1 AMU is clear to you. C12 का मास किया, उसका 1/12 को AMU बोल दिया. That's it. That's it. Now, sir, I have got atomic mass number. How do I convert it to atomic mass? Because number लेके मैं क्या करूँगा? So for converting atomic mass number to atomic mass, just do this. Add AMU at the end. 23 AMU, 12 AMU, 39 AMU. Now this is the atomic mass. This is no longer the number. This is the atomic. So 23 AMU is the mass of one atom of sodium. 12 AMU is the mass of one atom of carbon. 39 AMU is the mass of one atom of potassium. Clear? Am I clear? So for getting the atomic mass, just do this. Get the atomic mass number and add AMU at the end. That's it. That's it. How will you get the atomic mass number? Add the number of protons and neutrons. That's it. Okay. And now I'll give you a list of the most common atomic mass numbers. Using that, you need to learn that basically. Learn कर लोगे उसको तो easy रहेगा. I'll give that. Wait for it. Now, coming to molecular mass is again very easy. So molecule किससे बनता है सोचो? Molecule बनता है atom से. So let's say I have a molecule like H2O. So if I add masses of 2 hydrogens and 1 oxygen, will I get the mass of H2O? सही बात है ना? Right. So 2 hydrogen mass is 2 into 1 and 1 oxygen is 16. So basically 18 AMU is the molecular mass of H2O. Similarly, you can do the same for CO2. So 1 carbon plus 2 oxygen. 1 carbon is 12 and 2 oxygen is 2 times of 16. So 32 basically. So 44 AMU is the molecular mass of CO2. Means 1 molecule of CO2 will weigh 44 AMU. Okay? 1 molecule of H2O will weigh 18 AMU. So atomic mass, molecular mass is clear to you. Clear to you. Okay. Now coming to molar mass. Okay. For molar mass, we need to define mole first. I have discussed this already. We need to define mole first. What is mole, sir? What is it? Molar mass is the mass of 1 mole of a substance. Molar mass is the mass of 1 mole of any substance. Now, what is 1 mole? Okay. So let me take this blank page for you and describe the problem. See, 1 mole of any substance, and by any I mean any substance, is equal to 6.022 10 power 23 particles of that substance. Okay. Now substance can be element also and compound also. If your substance is element, then the corresponding particle will be atom. And if substance is compound, the corresponding particle would be molecule. Okay. So for explaining this, let me take an example.
So if I take 1 mole of, let's say, sodium, 1 mole of sodium means what? This much, this number into this numbers of, now the substance is the element. Sodium is an element, is an element. So the particle would be atoms. Means if I say that I have 1 mole of sodium, what I'm actually saying is I have these many atoms of sodium. Okay, clear? Okay. Now for molecules, 1 mole of CO2, if I say I have, then what I mean is I mean this many molecules of CO2. Molecules of CO2. Clear? Because the corresponding substance is a compound. Compound है, compound के लिए corresponding particle क्या? Molecule होगा. And this number is called Avogadro's number. क्या बोलते हैं इसको? Avogadro's. Symbol is Na. N and capital A in subscript. Clear? This is what 1 mole means. Am I clear to you? Okay. Now, if I ask you, okay, any molecules. Now, since I have 1 mole of CO2, if I ask you how many moles of or how many atoms of carbon would be present in this sample, let's say I have a sample of 1 mole of CO2, and I ask you how many atoms of carbon will be there. So see, 1 molecule of CO2 contains 1 carbon. So Na molecules will contain Na carbon. So Na atoms of C atoms. Sorry, Na atoms of C already लिख दिया मैंने. ठीक है, क्लैरिटी है बात का? समझ रहे बात को? एक molecule CO2 was containing 1 carbon. So Na molecule will contain Na carbon. Any doubt regarding this? Now, if I ask about oxygen, then 1 molecule would contain 2 oxygen atoms. CO2 के एक molecule में 2 oxygen है. तो पूछूं कि एक मोल में कितना होगा? Okay. तो अगर एक में 2 है तो Na में 2 Na होगा. तो शब्द तो अगर ऑक्सीजन का बात किया जाए तो Na में तो इसमें कितना होगा? 2 Na atoms of oxygen. कोई इश्यू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एक लिखो. फर्स्ट फॉर्मूला इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Avogadro's नंबर. Number of moles का फर्स्ट फॉर्मूला, एंड दिस विल बी वैलिड फॉर ऑल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, सबके लिए वैलिड रहेगा. ठीक है, हो गया. चलो अब मोलर मास क्या है सर? 1 मोल डिफाइन कर दिया मैंने, 1 मोल डिफाइन कर दिया. तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज इट्स मोलर मास. द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज इट्स मोलर मास. एक मॉलिक्यूल होगा या एक एटम होगा. देखो, मोलर मास इज डिफाइंड फॉर बोथ एलिमेंट्स आल्सो एंड कंपाउंड्स आल्सो. Atomic mass is defined for atoms only. Molecular mass is defined for molecule only. But molar mass is defined for both elements also and compounds. इतना क्लियर है? तो मोलर मास कैसे निकालेंगे सर? तो you have the molecular mass and the atomic mass. You have this. H2O के लिए 18 AMU, CO2 के लिए 44 AMU, sodium के लिए 23. You have the atomic and molecular masses. Just do one thing. Remove the AMU. AMU हटाइए, AMU हटाइए, AMU हटाइए, एंड आपका ग्राम लगाइए.
round up. 23 gram is the molar mass of sodium. Means 1 mole of sodium will weigh 23 grams. 12 gram means it is the molar mass of carbon. Means 1 mole of carbon will weigh 12 grams. 39 gram is the molar mass of potassium. Means 1 mole of potassium will weigh 39. Similarly for compounds also, H2O ka 1 mole is 18 grams. CO2 ka 1 mole is 44 grams. Clear? So just remove the AMU from the atomic and molecular mass and add gram. Add gram to get the molar mass. Clear? Chali. This is done. Okay. Before we get to molality. One more formula for number of moles is given mass upon molar mass. Again, applicable for all solid, liquid, and gases. Second formula for moles. Okay. Done. Now take a screenshot real quick. Take the screenshot of this. These are the most common, most important elements and the atomic masses. Using this, you can get the molecular or molar mass of anything. That is important. Okay. Okay. Done, Ajit? Chalo. Now we have this formula. One more thing important notice. The volume of 1 mole of any gas at STP. STP matlab standard temperature and pressure. Standard temperature, that is 298 Kelvin, and 1 atm pressure. 1 atm pressure. The volume of 1 mole of any gas, and by any I mean any gas, neon, oxygen, ozone, whatever the gas is. 1 mole of any gas at this temperature and pressure, the volume would be 22.4 liters. This is called molar volume. Molar volume, capital V. So one formula for number of moles, or let's write the example first. Okay, 22.4 भी हो सकता है, and it can also be 22.7. तो कौन सा मानेंगे? Check the options. अगर options इससे कट रहा है, तो use this. इससे कट रहा है, तो use this. अलग-अलग books अलग-अलग बोलते हैं. Clear? Example के लिए if you take 1 mole of O2 gas at STP, volume would be 22.4. 1 mole of CO2 gas, 22.4. H2 gas, 22.4. Does not matter कितना बड़ा गैस है, कितना भारी गैस है, does not matter. Volume इतना ही. So one important formula for number of moles, which is applicable only for gases at STP, is given volume upon molar volume. For gases at STP. Clear? We have 3 formulas for number of moles. Clear ki nahi? So, coming back to molarity and molality. So, see, these two are called concentration terms. क्या बोलते हैं इनको? Concentration terms. Molarity is represented by capital M and molality by small m. Molarity, capital M, molality, small m. The formula is, along the formula basically, number of moles of solute upon solution in volumes of solution in liters. Okay? So molarity is number of moles of solute by volume of solution in liters. This is molarity. And molality is the
numerator is the same, number of moles of solute, by mass of solvent in kilograms. This is the unit. The dependence here is only on the mass of the solvent, but since here the denominator is volume, volume denominator mein hai, so it will depend upon temperature also. Note this thing, that molarity is temperature dependent, molality is temperature independent. Capital M is temperature dependent, small m is temperature independent. Clear? Now there are most commonly used 3 scales of temperature. Your Fahrenheit, Kelvin, and Celsius. So you can convert them all into each other using the formulas. There is nothing to explain here. Moving on, we have explained this: mole and molar mass, molar and molar particles, molar volume, molarity. So sometimes you need to convert molarity into molality and vice versa. This is the formula. If you have this, small m is equal to m into density of solution by 1 plus molarity into molar mass of solute. This is the formula. And for the opposite case is this. You can just remember one formula and then do the rest of the math. I'm writing the formula if you want to learn. Small m means molality, capital M means molarity. Clear? Now, coming to stoichiometry and limiting reagent. What is stoichiometry? See, N2 plus 3S2 gives 2NS3. Okay. The numbers here, 1, here we have 1, 3, and 2. These are called stoichiometric coefficients. They are called stoichiometric coefficients. They established molar relationships. This मतलब क्या होता है? This means that 1 mole of N2 reacts with 3 moles of H2 to produce 2 moles of NH3. Before I get into this, one thing is important. यहाँ पे देखो इस पेज में. While solving questions, you will often find that आपको mass दे दिया है and you are asked the number of particles. ठीक है. आपको volume दे दिया है and you are asked the mass. You have been given the volume and you are being asked the and vice versa. एक तीन में से एक देके कोई दूसरा पूछ ले रहा है. ये चल रहा है. ठीक है. So most of the time students क्या करते हैं? Directly formula याद करते हैं. इन दोनों में. But not needed. Just use mole as a junction. Volume given है, mole पे आइए. Formula दिया है आपके पास. उससे mole पे आइए. Then from mole go to particles or wherever you want to go. So use mole as a junction when you want to travel from any of the parameters to any other parameter. Clear? यही बात बोलना था आपको. You can learn the direct formulas, but I am not teaching that. I never teach that because extra burden होगा आपको. अभी देखो ना, पढ़ा रहा हूँ ना, कितना फॉर्मूला आएंगे. So this is what the equation means. ये मतलब इसका यही होता है. This is what it means. Okay. अब सिंपल बात है, यही रेशियो जो है ना 1:3:2 का यही रहेगा. मान लो if I have half moles of N2, कितना हाफ, तो 1 से 2 बन रहा था, तो हाफ से बनेगा 1. सिंपल. यही स्टोइकियोमेट्री है. दिस इज स्टोइकियोमेट्री. ठीक है. मान लो यहाँ 3 से 2 बन रहा था, मान लो वो 6 मेरे पास, कितना मोल्स? 6 मोल्स. 6 से कितना बनेगा? 3 से 2 बन रहा था, 6 से 4 बन जाएगा. सिंपल यूनिटरी मेथड. पढ़ा है बच्चों ने यूनिटरी मेथड?
एम आई ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली? सब दिख रहा है आप लोगों को? अरे यूनिटी नहीं पढ़ा है। यूनिटी मतलब अगर दो लोग मिलकर 4 रोटी खा रहे हैं तो सेम स्ट्रेंथ एंड बिल्ड के 4 लोग कितनी रोटी खाएंगे, यही तो है यूनिटी। 2 लोग 4 खा रहे हैं तो 4 लोग 8 खाएंगे यार। इसके लिए अभी पढ़ाना पड़ेगा क्या? चलिए, तो ये हो गया, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। वही क्वेश्चन लेते हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव 4 moles of N2, give me the number of moles of NH3। वेरी इजी। N2 और H2 NH3 में क्या रेशियो है? 1:2 का, मोल मोल वाइज। 1 से बनता 2, तो 4 से कितना बनेगा? 8 बनेगा। 8 मोल बन गया इसका। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपको 8 मोल ना मांग के बोलेगा कि भाई गिव मी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 8 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 8 यानी पार्टिकल्स होंगे। या बोलेगा कितना मास होगा उसका, तो 8 टाइम्स मोलर मास। मोलर मास निकाल सकते हैं, N का 14, H का 3, 17 हो गया। क्लियर है बात? ये हो गया स्टोइकियोमेट्री। जरा कुछ नहीं है, आपको मोलर रेशियो है बस। मोल्स का रेशियो निकाल लिए, समझ गए मोल से। उसके बाद उसके बाद उसके बाद वट एवर जिस भी फॉर्म में मांगना है, पार्टिकल फॉर्म में मांगा है, पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, है ना। यूज द रिलेशन, पढ़ाया ना भाई 3 रिलेशन आपको। यूज द रिलेशन, कन्वर्ट इनटू द डिजायर्ड फॉर्मेट, डिजायर्ड फॉर्म। अब आता है एक बात, लिमिटिंग रिएजेंट का। वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। देखिए सेम क्वेश्चन में रन कर दो। इसका 2 मोल है, इसका आई हैव लेट्स से 6 moles at the beginning of the reaction, t equals to 0। ठीक है, तो at the end t equals to t पे मैं बोलूंगा, what will be the amount of NH3 produced। ये 0 था शुरू में, कितना बनेगा ये बताऊंगा। तो सर किसका माने? अब ये 1 से 2 बनता है तो 2 से 4 बनेगा, या 3 से 2 बनता है तो 6 से 4 बनेगा, क्या कितना बनेगा? इसको कर देते हैं 6, नहीं 6 नहीं कर देते, करते हैं 3। अब समझिए बात को, every 1 mole of N2 required 3 mole of H2, बट N2 कितना है? 2 मोल। तो every 2 mole of N2 will require 6 moles of H2। सही बात है, बट H2 क्या 6 moles है हमारे पास? नहीं, N2 is not, H2 is not 6 moles, H2 is 3 moles only। So if a particular reactant is less than its requirement, then that reactant is known as limiting reagent। क्या बोलेंगे उसको? limiting reagent। So H2 here is limiting, it will limit the amount of production। बीच में खत्म हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा? बीच में ही खत्म हो जाएगा। क्लियर? सो वन स्मॉल वे टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पर, लेकिन बार बार नहीं दिखता है। तो फॉर दैट केस just divide the number of moles by the stoichiometric coefficient। so 2/1, यहाँ पे 2/1 करो, यहाँ पे 3/3 करो। 2/1 is 2, 3/1 is 3/3 is 1, which is lower? कौन सा लोअर बताओ तो? 1 लोअर है, hence LR H2 will be the LR limiting reagent। H2 क्या होगा? लिमिटिंग reagent। जिनको भी दिक्कत होगा ये पार्ट समझने में, प्लीज रिकॉर्डिंग देखिएगा उसके लिए, इट इज वर्थ इट टू वॉच द रिकॉर्डिंग फॉर दिस पार्ट। ठीक है, नाउ H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये कम है, रिक्वायरमेंट से कम है, तो दिस विल डिसाइड हाउ मच NH3 विल बी फाउंड। ठीक है, सो नाउ 3 से बनता 3, 3 से बनता 2, और है कितना? 3, तो कितना बनेगा? 2, तो 2 बना दो। 2 moles of NH3 has formed, 2 moles of NH3 has formed। क्लियर? 3 से बनता 3, 2, तो 3 से अब है कितना है? H2 3 ही है, तो 2 बनेगा उससे। ठीक है, और ये 3 खत्म हो जाएगा पूरा, कंप्लीटली गॉन। N2 भी बचेगा, देखो जो जो भी LR नहीं होता है ना रिएक्टेंट, वो बचता है, बच जाएगा वो।
ठीक है, कैसे बचेगा सर? देखिए, फॉर एवरी 3 moles ऑफ H2 वी नीडेड 1 mole ऑफ N2, बट है कितना? 2। 1 रिक्वायर्ड था, है कितना? 2 है, तो 2 में से 1 यूज हो गया और 1 बच जाएगा। तो इन द रिएक्शन मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर, there will be 2 moles of NH3 and plus 1 mole of N2 also. Plus 1 mole of N2. इस पार्ट को दोबारा you can rewatch this, ठीक है, for limiting reagent. It is very very important. You can read all of this. Coming to atomic structure, ठीक है, atomic structure. First we have EM radiation. Okay. Before going to EM radiation and everything, let me show you a picture of what EM radiation is. This is the picture of light, electromagnetic wave. You study this in detail in physics. Okay, I'm dealing in a shorter manner. See, let's assume this to be light. Light is also a kind of electromagnetic wave. Light भी क्या है? A kind of electromagnetic wave. तो अगर light इधर travel करता है ना, in this direction, ठीक है? So a corresponding electric field and magnetic field will travel perpendicular to it. ठीक है? उससे perpendicular एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करता है। अगर मान लो कि ये आपका लाइट चल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर लाइट ऐसे चल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्लियर? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? जो एनर्जी, द एनर्जी व्हिच द ईएम वेव्स कैरी विद देमसेल्व्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। यही बात बोला गया है। अब देखो, क्योंकि ये वेव है, क्योंकि है तो ये वेव ही, तो वेव को ऐसे शो करते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉम हियर टू हियर वी आर गेटिंग 1 साइकिल ऑफ अ वेव। क्या है? 1 साइकिल। क्या हुआ? एंड द लेंथ कवर हुआ है कुछ ना कुछ। दिस लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा। दिस लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा। अब there should be a time taken for covering this length. That time taken is known as time period of the wave. Time period of the wave. Time period and आपका wavelength. What is frequency, sir? Frequency is 1 upon time period. Frequency is 1 upon time period. Now frequency can be written as f also and mu also. F also and mu also. F also and mu also. This is mu. बी ऐसा होता है, थोड़ा घुमा रहता है, म्यू बोलते हैं। एफ बाय म्यू नहीं है, एफ स्लैश म्यू फ्रीक्वेंसी। द यूनिट इज कॉल्ड हर्ट्ज। तो वेवलेंथ डन, आपका टाइम पीरियड डन, फ्रीक्वेंसी डन। नाउ नोट दिस दैट द स्पीड ऑफ एनी वेव v, any wave, not only electromagnetic but mechanical wave also, speed of any wave v is equal to frequency times wavelength. Speed of any wave is equal to frequency times wavelength. Now note this thing that for EM waves, the speed is equal to speed of light. The speed is equal to speed of light. So putting this value here, we're getting this. C equals to mu lambda. Mu and F are used interchangeably. This is one relation. Okay, this is one relation. Okay. Now, if mu is the frequency of a wave, then that wave carries some energy. I told you, radiation. What is the energy, sir? That energy is equal to h mu. What is h, sir? H is called Planck constant. Planck's constant. Value is 6.626, 10 power minus 34 joule second. ठीक है, तो put the frequency h से multiply कर दो, get the energy of the wave, get the energy of the wave. Now if you get the mu from here, mu निकालो, यहाँ पर कितना आएगा? c by lambda आएगा. Put c by lambda here, so E equals to hc by lambda. Let's say you don't have the frequency but you have the wavelength of the wave, then the energy of that wave is equal to this. So what to learn, sir? From here learn this formula.
this formula and this. Clear? Now, this I have explained, both I have explained. E equals to quanta. इस E को quanta बोलते हैं. जो E मैंने लिखा है ना, quanta बोलते हैं. ये हो गया है. Done. Now, fundamental constants are there. This is also done. E equals to h mu h c by lambda. Some fundamental constants are given to you. You don't need to learn them. Okay. This is, you can assume this to be 3. Okay. Just if you want to learn them, just to be safe, if you want to learn them, just learn up to 2 digits after decimal. So up till here, up till here, up till here. Okay. So next we have the Bohr model of the atom. Bohr model क्या बोलता है कि electrons, first of all we have a nuclei at center, okay, and electrons are located in defined shells. Shells defined है, ये बात है Bohr model का. डिफाइंड शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ऐसे डिफाइंड शेल्स हैं, पहले तो बने बनाए घर हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ये फिक्स्ड है. इनका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से तय किया हुआ है ऑलरेडी. इससे ना आगे ना पीछे वो लोग एग्जिस्ट करते हैं. इनके बीच में एग्जिस्ट करना अलाउड नहीं है. ओनली एंड ओनली ऑन दीज शेल्स दे आर अलाउड टू एग्जिस्ट, नॉट इन बिटवीन. क्लियर? इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन दीज शेल्स, ओके, and they can jump to a lower shell or to a higher shell. Okay. If they want to jump to a higher shell, they will have to gain the energy gap, and if they want to jump to a lower shell, they will have to release the energy gap. See, each shell has its own energy. Third shell का अपना energy. ठीक है? The E of nth shell, energy of nth shell, is equal to आपका minus 13.6 n square electron volts, and this is for hydrogen atom. EV is what? Electron volts, which is the unit for energy of electron. N is the shell number. Let's say you want to get the energy of the first shell of hydrogen atom. Then this is put 1 here. For second shell, put 2 here. For third shell, put 3 here. Clear? This is how you get the En. So each shell has its own energy. Okay. So let's say an electron wants to jump from second to fourth shell or third shell. Then it will have to gain that energy gap. उसको एनर्जी गैप कहीं से गेन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो. और अगर वो लूज करना, अगर वो मान लो कि लोअर एनर्जी शेल में आता है तो उसको लूज करना पड़ेगा एनर्जी. ऐसे नहीं कि वो अपना एनर्जी लेकर के आया और कहीं भी रहने उसको मिल जाएगा, नहीं. टू एग्जिस्ट इन अ शेल, इलेक्ट्रॉन विल हैव टू मैच द एनर्जी ऑफ द शेल, एंड फॉर मैचिंग आइदर गेन करो या लूज करो. ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा पास है न्यूक्लियस के, दे आर मोर स्टेबल बिकॉज दे आर लो ऑन एनर्जी. अब ध्यान दो, यहाँ पर जितना पास होगे, जितना ये एन लोअर होगा, उतना एनर्जी नेगेटिव में ज्यादा है. फॉर एग्जांपल E1 निकालोगे, इट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E2 निकालोगे, इट विल बी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन. So as you are moving away from nucleus, the charge is getting more and more positive, and more positive means energy is increasing, and increase in energy is always not stable. Lower energy means more stable. क्लियर है बात? अब सर जंप करेंगे तो क्या एनर्जी होगा, कैसा होगा? ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप एनर्जी को. मान लो कि फोर्थ शेल से सेकंड शेल में कूदे हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला. where NF is the final shell number, Ni is the initial shell. फोर्थ से सेकंड में कूदे हैं तो ये होगा Ni is 4. तो यहाँ पे R is called the Redox constant. इसका वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको, तो बोलते हैं Redox constant. क्लियर है बात? क्लियर है. अच्छा, जब एनर्जी मान लो कि 2 से 4 में जंप करोगे, लोअर से हायर जंप करोगे, ठीक है, इन दैट केस एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, एंड उल्टा जंप करोगे 4 से 2 मान लो, तो उतना ही एनर्जी एमिट होगा. सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एमिटेड. एमिटेड इन व्हाट फॉर्म सर? एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. इस फॉर्म में सर फोटोन फॉर्म. व्हाट इज फोटोन? भाई पढ़ रहा नहीं? फोटोन. Photon is the particle of light. Particle of charge 0, resting mass 0. Energy कितना होता है? Energy is
एच न्यू। जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू होता है उसका एनर्जी एच न्यू होगा फोटोन। तो इट ओनली हैज एनर्जी, ठीक है, तो वो उतना एनर्जी लेके अपना बाहर चला जाएगा। तो अब्सॉर्ब होगा तो कहां से होगा, देयर विल बी वेव्स, वेव्स आएंगे एनर्जी देंगे उसको, नो वरीज। जब एमिट होगा तो किस फॉर्म में होगा, इन फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन क्या होता है, पार्टिकल ऑफ लाइट, चार्ज जीरो, मास जीरो, एनर्जी कितना, एच म्यू। क्योंकि लाइट है तो फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगा उसका, फ्रीक्वेंसी इज म्यू, तो एनर्जी निकाल सकते हैं वहां से एच म्यू लगाकर। क्लियर, क्लियर कि नहीं? Am I clearly audible and visible? सबको समझ में आ रहा है, सब कुछ चल रहा है? ओके, गिव मी अ थम्स अप। नेक्स्ट वी हैव द डी ब्रोए हाइपोथेसिस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भाई waves can also behave, your matter can also behave like waves. Matter मतलब normal particles can also behave like waves. So उन्होंने बोला कि वेव है, तो लोगों ने बोला बताओ वेवलेंथ बताओ, तो he said what कि matter waves have wavelength lambda, dB बोलते हैं, lambda dB, ये ब्रोए वेव, h by mb या h by p, h by p is the linear momentum. If a body has mass m and velocity v, then its de Broglie wavelength equals to h by mv. बस इतना ही जानना है और कुछ। नेक्स्ट वी हैव हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बोला कि भाई द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। मतलब कि अगर आप पोजीशन निकालते हो इलेक्ट्रॉन का विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, एब्सोल्युटली एक्यूरेसी, देन मोमेंटम का आपको कोई आइडिया नहीं। अगर आप मोमेंटम निकालते हो विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, देन पोजीशन कोई आइडिया नहीं होगा। So if x is the position and p is the momentum, then delta x is the error in position and delta p is the error in momentum. This product will always be more than h by 4 pi. या तो more than होगा या in best case equal होगा, इससे कम होना possible नहीं। Now momentum is m into v and mass is known to us. Mass में कोई change, कोई error नहीं होता है, तो mass we can put the mass here and one more formula is obtained from Heisenberg's uncertainty principle. This is the main formula. Clear? Next we have the, अच्छा इसको बोलते हैं ऑबो प्रिंसिपल। हेडिंग खराब हो गया, क्या है ये ऑबो? अब देखो, you should know this that electrons जो होते हैं शेल के अंदर there are सब shells. In like I told you in Bohr model, there are shells, and within those shells there are subshells. Okay, so one has only one subshell, 1s, 2 has 2 subshells, 2s and 2p, 3 has 3s, 3p and 3d, and 4 onwards they have 4 subshells each, 4s, 4p, 4d and 4f. Each s can store 2 electrons at max, each p can store 6 electrons at max, each d can store 10, each f can store 40. Okay, so now where do the incoming electrons go first? मान लो इलेक्ट्रॉन आया तो पहले कहां जाएगा, उसके लिए we have something called the Aubau's principle. Now the Aubau's principle means what? Basically that the electrons will fill the lower energy orbitals first. These 1s, 2s, 2p, 3s, they are all called orbitals or subshells. So the lower energy orbitals will be filled first. Now how do we define lower energy, sir? So for that we have something called the n plus l rule. N plus l. What is n? N is the shell number. So 1s के लिए shell number is 1, 2s के लिए 2, 3s के लिए 3, 2p के लिए 2, 3p के लिए 3. Whatever the number is there in front of the orbital is known as the n, the shell number. L is what? L is, so L is 0 for s, L is 1 for p, L is 2 for d, L is 3 for f.
समझ रहे बात को? कोई भी एस हो, वट एवर एस, 1s 2s 3s 4s 5s, वट एवर एस, एल विल बी जीरो फॉर दैट. उसका एल कितना होगा? जीरो. कोई भी पी हो, वट एवर पी, 2p 3p 4p 5p 6p, एल इज 1, एल विल बी 1. डी के लिए एल विल बी 2. कोई भी डी हो, 3d 4d 5d 6d, डी विल बी, डी के लिए एल विल बी 2. एफ के लिए डी विल बी, एफ के लिए एल विल बी 3, no matter what f it, what f it is. Now you know the L, you know the N. N and L are known to you. Now get the N plus L. Lower N plus L means lower energy. Electron will go there first. For example, N plus L for 1s is 1 plus 0, 1. For 2s, 2 plus 0, 2. So since the N plus L is lower for 1s, electron will fill 1s first. Then 2s. Okay, then 2s. For 3s, the N plus L is 3. 3 plus 0. For 2p, N plus L is again 2 plus 1, 3. So they have tied. In case of a tie of N plus L, the orbital with lower N will have lower energy and hence electron will go there first. You can check the arrow direction. Arrow पहले 2p से पास हो रहा है, फिर 3s पे जा रहा है. Okay. Hence electrons will fill the 2p first and then 3s. ठीक है. So N plus L, जिसका lower, उसका energy lower, electron will fill that orbital first. But अगर tie हो जाए, then जिसका N lower है, उसमें electron पहले जाएगा. If you check, इनमें 3p and 4s, N plus L 4 आएगा. 3d 4p 5p, N plus L 5 आएगा. इनके लिए 6, इनके लिए 7, इनके लिए 8. But the arrow shows 3d first, then 4p, then 5s. Why? Because for 3d the N is lower. Okay, check N only when N plus L ties. Okay, ऐसे नहीं check करना. Go for N plus L first. N plus L अगर आपका रिजल्ट दे रहा है, टाई नहीं हो रहा है, then lower N plus L, lower energy, वो सबशेल पहले भरेगा. ठीक है. बट अगर N plus L टाई हो गया between two subshells, then in that case go for N. Lower N means lower energy, and that subshell will be filled first. Clear? Clear? So you can learn this. If you want, you can learn this. You can learn this order, and you have to learn this. Practice का हो जाएगा बस. चलिए. So with this, we come to the end of this chapter. Okay. We have a break till 12:10. Okay. We'll see you at 12:10.
Okay. Am I audible clearly? Audible and visible? चलिए शुरू करते हैं. Periodic classification of elements. Okay. First is blockwise classification. See, if the last electron goes in the S subshell, जो मैंने बताया आपको कि electrons will go in different subshells, 1s, 2s, 2p, 3s, and all that. So if the last one goes in S subshell, okay, in S, 1s or 2s, 3s, whatever it is, then that element will belong to S block. So S block बोलेंगे. Block होते हैं in periodic table. Okay. This is a periodic table. These are blocks. So S block is here. P block is this. Okay. This is the D block, and this is the F block. F block should have been here, but इसको यहाँ निकाल कर अलग कर दिया गया. These are groups. These are groups. Okay. Each column is one group, and each row is one period. Okay. There are three kinds of division in a periodic table, in the monoperiodic table. That first is blockwise division. This is blockwise division. Next we have the group-wise division. Then we have the period-wise division. Clear? Okay. So first is, wait a second. So first is blockwise division. If the last electron goes in S orbital, no matter which S, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, then we call that element as S block element. क्या बोलेंगे उनको? S block element. अगर last electron goes in the P block, okay, in the P subshell, no matter which P, 2p, 3p, 4p, 5p, then we call that element belonging to the P block. अगर last electron D में आता है तो D block element, अगर F में आया तो F block element. Clear? Now, one common question is asked about group number and period number. Okay. So, see, this, if you are asked sodium, let's say, sodium नहीं पूछा रहेगा फिर, whatever number is here in front of it, यहाँ पे जो लिखा है ना, यही period number होता है, ये period number है, यही shell number है. मतलब last electron for sodium has gone in the third shell. It has 3 shells. तो यही पीरियड नंबर है, यही शेल नंबर है, जो भी है. मान लो कि लेट्स से वी हैव जर्मेनियम हियर. जर्मेनियम के लिए पीरियड नंबर इज 4, शेल नंबर इज 4. ब्लॉक नेम इज P, ग्रुप नंबर इज 14. ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. तो ये जो नंबर होता है, नंबर इन फ्रंट इज बेसिकली द पीरियड नंबर. पीरियड नंबर और द शेल नंबर, सेम थिंग. पीरियड नंबर, शेल नंबर इज द सेम थिंग. क्लियर? नाउ one more important question that can be asked is the group and period of the F block elements. Now there are two kinds of F block elements, lanthanides and actinides. Lanthanides are these guys, and these are actinides. Okay. So for them, for lanthanides, the period number is 6. For actinides, the period number is 7. But the group number for both of them is 3. दोनों के लिए ग्रुप नंबर क्या है? 3. ठीक है, 3 ही ग्रुप नंबर है, ध्यान रखिएगा. मेक श्योर दे वर ऑल सपोज टू बी हियर ओनली. इनको यहाँ होना था, बट क्योंकि ये बहुत सारे हैं एंड दे हैव अ फ्यू डिफरेंट फीचर्स, जिसके वजह से इनको अलग हम लोग कर देते हैं इन अ ब्लॉक. क्लियर? ठीक है. S block elements are mostly metallic. They are mostly metallic. D block elements are also metals. F block elements are also metals. Okay? And P block elements consists of metals, non-metals, and metalloids. What are metalloids? Metalloids are those elements which show the behavior of metals and non-metals both. दोनों का behavior show करते हैं. आप ये देख रहे हो staircase दिख रहे हैं यहाँ पे staircase. जो भी staircase के आसपास है ना, they are all metalloids. Basically, silicon, germanium, Sp, As, all of them behave like metalloids. These guys. Clear? One more thing, that the D block elements are known as transition metals.
except group 12, इनको छोड़ करके all of them are called transition metals. Why? Because they have partially filled d orbitals. इनका write the configuration if you write, तो D1 से लेके D9 तक आएगा, D10 नहीं होगा, D10 इनका, these are D10s, these are all D1 to D9, hence they are known as transition metals. Clear? इनको बोलते हैं हम लोग inner transition metals, inner transition metals. One more thing, that D is always one behind the period number. Whatever period is there, उससे D हमेशा एक पीछे रहता है. मतलब कि if period is 4, then in the fourth period 3D series will be going on. This series is the 3D series. ठीक है. अगर पीरियड नंबर 5 है तो 4D सीरीज चलेगा उसके अंदर. अगर पीरियड 6 है तो 5D सीरीज, पीरियड 7 है 6D सीरीज. D एक पीछे चलता है, ऑलवेज वन बिहाइंड द पीरियड. क्लियर? एंड द F इज ऑलवेज 2 बिहाइंड द पीरियड. यानी कि ये वाला जो है ना, फॉर लैंथेनाइट्स, फॉर लैंथेनाइट द पीरियड नंबर इज 6. सो यहाँ पे 4F चल रहा होगा, 2 पीछे. कितने पीछे? 2 पीछे. पीरियड नंबर फॉर एक्टिनाइट्स इज 7, तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा? 5F. क्या चल रहा होगा? 5. मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल हो रहे होंगे? 5F में फिल हो रहे हैं इन केस ऑफ एक्टिनाइट्स. इन केस ऑफ लैंथेनाइट्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल हो रहे होंगे? 4F में फिल हो रहे हैं. सो S and P go along with the period number, but D runs 1 behind and F runs 2 behind. तो एक पीछे चलता है D and 2 पीछे चलता है. अगर आपके पास 4th पीरियड का D ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा होगा. ध्यान रखिएगा. Okay. So if you want to write the general configuration of elements of different blocks, you can write them as this. For S block element, या तो वो होगा, या तो होगा जो भी पीरियड नंबर है n नंबर, पीरियड नंबर इज n नंबर. उसके बाद S होगा, या तो ऊपर 1 होगा या 2 होगा. दैट्स इट. ये हो गया आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर S ब्लॉक एलिमेंट्स. और P ब्लॉक एलिमेंट्स NS2 होगा, साथ में NP1 to 6 होगा, because P can hold 6 electrons. D के लिए ND के लिए होगा NS2, NS1 to ND1 to 10. ये होगा इसके, सॉरी नॉट ND, N-1 एक पीछे होता है ना, N-1 में. ये हो गया the general configuration for D block elements. For D block elements. For F block elements, again NS1 to N-2F. One to 4. Clear? Now, before I get to the properties, एक बार इसको read कर लीजिए. ठीक है? S block elements are also called the representative elements. Why? Because they start, basically they are the opening batsmen of their respective periods. जो period में होते हैं उनका opening करते हैं, तो they are called representative elements. Okay. You can read this. Think nothing fancy here. I explained this already. S block element versus P block elements. Okay. S block elements have the last electron, valence electron. Valence means last. Valence means last. So valence shell बोला जाए, valence electron बोला जाए, इसका मतलब है last electron and last set. ठीक है? The last electron will go in the S orbital. S block elements के लिए. For P, last electron will go in the P orbital. Okay. They have the charges of 0, +1, +2 oscillation states. They have -3 to +5. They can vary. They will form only metallic and ionic bonds. Bonding explain करूंगा मैं bonding के अंदर. ठीक है? And these can form only covalent and ionic bonds. They are metals, non-metals and metalloids.
या मेटल भी होते हैं, they are comparatively less electronegative. What is electronegative, sir? Electronegative means the ability of an element to pull electrons towards themselves is known as electronegativity. तो S ब्लॉक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, वहीं P ब्लॉक एलिमेंट्स में the En electronegativity is comparatively higher. यहाँ रिपीट किया गया सेम बात. P ब्लॉक एलिमेंट्स वही बात, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन द D शेल, n-1 एनर्जी लेवल होता है इसका, ठीक है. तो D ब्लॉक F ब्लॉक लेवल, F ब्लॉक. You can read this. I've already explained all of this. Properties के लिए D block elements have high melting and boiling points because they have strong metallic bonds. Metallic bond क्या होता है explain करूँगा आने वाला है. They conduct heat and electricity. You can read this now. There's nothing to explain. Catalyst की तरह you will find them. D block elements will often either D block elements or their compounds. They will be often seen as catalysts. For example, zinc होगा, silver, or their compound zinc oxide, okay, Cr2O3, and all of this will be C. They can form both ionic and covalent compounds. They can form complex compounds like Ag, NH3 plus Cl minus. They can form coordination compounds, I say like this. ये D block elements का बात. For F block elements, they are metals. They are highly reactive, high density, variable valency, means variable charges. They can show. Valency means charges for metals. They are colored in nature, and their ions are paramagnetic in nature. What is paramagnetic? Magnetically, substances can be of three types. Okay. So diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic. Dia means when a particular species is slightly repelled in the magnetic field, it is known as diamagnetic. When a species is slightly attracted in the magnetic field, it is known as paramagnetic. And when a species is getting strongly attracted in the magnetic field, it is known as ferromagnetic. Okay. They also form complex compounds. They are reactive in nature. They have high electropositivity because they have low ionization energy. What is ionization energy? I'll explain. So electropositive means that they are opposite of electronegative. They don't want to gain electrons. They want to lose electrons. Electronegativity means they want to gain. They want to attract electrons. Electropositivity means they want to lose electrons. They want to give out electrons. They generally form ionic compounds. Before noble gases, let's discuss the properties, periodic properties. Okay. So first we have atomic size. Okay. So as you can see, there are two kinds of variations. Either down the group, is an assay, okay, comparing elements in a particular group, or you can compare the elements in a particular period, like this, along the period, left to right. Okay. First is atomic size. Let me take a periodic table. ठीक है, देखिए, first is atomic size, down the group. Let's take this group. With every element down the group, one more shell is being added. First has one shell, second has two shells, third has three shells, fourth has four shells, five has five shells. So with every shell, the size is increasing. So down the group, size will increase. Simple. Size will increase. Along the period, if you see, size will decrease slightly. Decrease slightly. Why, sir? See, the shell number is not changing. For a particular period, if you see, the shell number is the same. So all of them have the same shell. But the thing is that the number of electrons and protons is increasing with every element. हर element के साथ साथ number of electron proton बढ़ रहा है. Example के लिए आप देखो, compare these guys. They all have two shells each. उनके पास दो shell है. But boron has only five electrons and 5 protons, whereas fluorine has 9 electrons and 9 protons. So the net attraction between the electrons and the
nucleus will be more in fluorine than in boron. And since due to this attraction, the electrons come close to the nucleus. Hence, the size will decrease slightly along the period. Clear बात? इसको एक और बात बोलते हैं Z effective. क्या होता है? Effective nuclear charge के बढ़ने के वजह से साइज जो है वो slightly decrease. Clear बात? You can understand this as Z effective, or you can understand this as net attraction between the electrons and the nucleus. Next point of comparison is ionization. Let's compare metallic reactor first. Okay, metallic reactor means, see, the more easily electron is lost by a particular metal, the more metallic it is. Simple. ठीक है, जितना आराम से एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना मेटालिक होता है. ठीक है, ठीक है. तो कमिंग डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज बढ़ रहा है, साइज इज इंक्रीजिंग, so it is getting easier for the atom to lose the outer electron. Okay, and hence the metallic factor will increase. The factor will increase. And if this will increase, the non-metallic factor will decrease. Non-metallic factor will increase. Coming along the period, if you see, as I have told you, the size is decreasing. Hence, तो न्यूक्लियस का जो पकड़ है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ रहा है. पास हो गया ना, पहले दूर था, पास आ चुका है. पास आने की वजह से क्या हो रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो ग्रिप है होल्ड बढ़ जाता है. बढ़ने की वजह से इट बिकम्स लेस इजी. It becomes less easy or more difficult for it to lose electron. Hence, the metallic character will decrease. And if this will decrease, NMC, non-metallic character will decrease. Simply, down the group, MC will increase, along the period, NMC will increase. Simple. And vice versa. Understood? Next thing is, this is done. Now, ionization energy. See, what is ionization energy? The energy required to extract an electron from an atom is called ionization energy. So, coming down the group, the size is increasing. It is getting easier to extract electron. And by easier, I mean that the electron can be extracted with lower energy. Okay. So the IE will decrease coming down the group, and along the period IE will increase. Simple. IE will increase. Next thing is the electron affinity. Okay. Now the electron affinity, electron negativity, the trend is going to be the same. The trend is this. Down the group, both En and Ea will decrease. Along the period, En and Ea will increase. Okay, but the thing is, what is the difference, sir? Electron affinity, electron negativity is the ability of an atom to pull the electron towards itself. Electron को खींचने का क्षमता को बोलते हैं electron negativity. Electron affinity is the ability to pull the electron and keep it with yourself. It's called electron affinity. तो ये फर्क होता है. अब जो ट्रेंड है, कॉमन ट्रेंड एक पूछा जाता है, तो ट्रेंड ऐसा है फॉर ग्रुप 17 एलिमेंट्स. द ट्रेंड इज दिस FClBri. ठीक है, FClBri ये ट्रेंड होता है फॉर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. बट फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द ट्रेंड चेंजेस अ लिटिल बिट. Cl then F then Br then I. Why this change, sir? Because F has the most electronegative. It is the most electronegative element in the entire periodic table. F is the most electronegative, and cesium is the most electropositive element. Clear? तो electronegative तो है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा है, बट खींच के होल्ड करना अलग केस होता है. फ्लोरीन ऑलरेडी इज वेरी स्मॉल and it already has 9 electrons. One more incoming electron will lead to inter-electronic repulsion. Okay, so it will become less stable. Whereas chlorine has more space. Okay,
सो इट आल्सो हैज द एबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खींचने का एबिलिटी भी है उसके पास, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन खींच के रखने का भी जगह उसके पास है. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लोरीन विल विन. सो मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिट एलिमेंट इज क्लोरीन. क्लियर? ध्यान रखना, ग्रुप 17 एलिमेंट में ये ट्रेंड होता है फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन. चलिए, next we have this, your noble gases. ठीक है, तो फर्स्ट noble gas compound was this XZPTF6. Okay, found by N Bartlett and 62. These elements are colorless, tasteless, odorless gases. ठीक है, they are present in atmosphere except radon. इसको छोड़कर बाकी सब एटमॉस्फेयर में है. ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन. इनका एटॉमिक नंबर शुड आल्सो बी लर्न. ओके, 2, 10, 18, 36, 54 and 86. They are monatomic and their size increases with the increase atomic number. Very simple. They have zero electron affinity. Electron का कोई चाहत इनको नहीं होता. They are not willing to. They are not very commonly seen forming compounds except your xenon. ये बनाता है compounds, but इनके अलावा बाकी compounds जल्दी नहीं बनते. Here. Next we have acid resistant salts. Okay. See, any species which releases H plus in aqueous medium, मतलब पानी में घोलने पे अगर H plus रिलीज करता है उसको एसिड बोलते हैं. अगर पानी में घोलने पे वो रिलीज करता है OH माइनस तो उसको बोलते हैं बेस. एंड व्हेन दीज एसिड एंड बेसिस कंबाइन दे फॉर्म सॉल्ट्स. इसके ऊपर आएंगे हम लोग. ठीक है, अभी आ जाओ पहले. तो एसिड क्या होता है? दे जनरली हैव सावर टेस्ट. सारे एसिड सावर टेस्ट नहीं करते हैं और सारे एसिड को हम टेस्ट कर भी नहीं सकते हैं. These acids basically you can remember acids like this. Species which leave or lose H plus in aqueous mediums, okay, are known as acids. ठीक है, they will turn blue litmus into red. Blue litmus होगा ना, litmus पेपर होता है, दो तरह का होता है. There are two kinds of litmus papers, blue and red. So it will turn blue into red. ठीक है, now acid can be of two types, strong acids and weak acids. ठीक है, तो those acids which dissociate completely, मतलब अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं एसिड के और 100 के 100 टूट जाएं, ऐसे हो जाएं, 100 के 100 ब्रेक कर जाएं एंड दे गिव यू H plus. Okay, they are known as strong acids like HCl, like H2SO4, okay, like HNO3, like HClO4, like HClO3, all of them. They are strong acids. Okay, weak acids are those which dissociate partially, मतलब इनको पानी में डालोगे अगर 100 तो 30 टूटेगा, 40 टूटेगा, 10 टूटेगा, 20 टूटेगा, 100 नहीं टूटेगा. ठीक है, ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड्स. क्या बोलते हैं इनको? मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं. एंड वीक को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं. मिनरल बोलते हैं और इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं. इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. एज अ रूल ऑफ थंब, if you remember this, अगर एसिड में कार्बन दिखता है आप, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन का सी. इफ अगर आपके एसिड में कार्बन दिखता है आपको, इट इज अ वीक एसिड. इट इज अ वीक एसिड. अगर एसिड में कार्बन नहीं है तो स्ट्रॉन्ग एसिड. क्लियर? क्लियर? ठीक है. अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, एक बात ध्यान देना, देखो एसिड जब H plus लूज कर देगा, whatever is left is called conjugate base of that acid. एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूं HF को, ये अगर एसिड ये जो है H plus लूज करता है, क्या बनेगा? H plus and F minus. जो F minus है ना, this is called the conjugate base of this acid. And remember this, more stable conjugate base means better acid. बात समझ करें, ठीक है, more acidic strength of that acid. क्लियर है बात? So basically
यहाँ पे आपको मिलेगा F माइनस कॉन्जुगेट बेस, यहाँ मिलेगा Cl माइनस, यहाँ मिलेगा I माइनस. You can also include Br here. ठीक है, Br माइनस यहाँ पे, and then आपका you will get HI minus. Basically, we need to compare the stability of the conjugate base. If you notice this, all the conjugate bases here belong to a particular period. एक particular period से आते हैं. तो अगर आपका conjugate base एक period से आता है, then just see that the bigger the conjugate base, better the acid. Bigger conjugate base, better the acid. Simple. अगर आपका conjugate base एक particular group से है, then bigger the conjugate base, better the acid. Simple. Simple. ठीक है. And अगर आपका जो एसिड है उसमें सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम लाइक इन दिस केस CH4, लाइक इन दिस केस NH3, H2. यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन कौन है? देखो, सेंट्रल एटम हियर इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. If you have these elements, okay, or any elements where the central atom, okay, in this means आपके एसिड जो है उनका सेंट्रल एटम जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड का. If you see here CNOF, atomic number 6, 7, 8, 9, they belong to a particular period, okay, and we know along the period En will increase. En will increase. So you need to compare them on the basis of En. Higher En means better acid. Higher En means better acid. So HF will be a stronger acid than H2O, then NH. So then CH4. So this is the basic understanding that if you are even to compare acids where conjugate bases belong to a particular group, then compare them on basis of size. Then compare them on basis of size. If the central atoms of your acid are the parts of a particular period, एक पीरियड का बात है, ग्रुप का बात है तो साइज, चेक द साइज. अगर बात है पीरियड का, then check the electronegativity. Higher En means better acid. Clear? चलो, नेक्स्ट वी हैव ये आयनिक बॉन्ड का हेडिंग दे दिया है छोटा. ये आपका कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं and their sources. Okay, so you need to learn them. Take a screenshot and learn them. Next we have bases and the classification. So on the basis of see base क्या करता है? Base will lose OH minus. So if your base dissociates completely, okay, then it is a strong base, and if it does not break down completely, it is a weak base. Okay, so for your purposes, KOH and NaOH, they are both strong bases. Anything apart from that is a weak base. So MgOH whole twice, NH4OH, NaCO3, COH whole twice, all of them are weak bases. Clear? These are some important uses of bases. Okay. Sodium hydroxide is manufacturing of soap and everything. You can read this. One more important thing is the MgOH whole twice is known as milk of magnesia. This is used in making antacids. This is used to neutralize the excess acid HCl in the stomach. Okay. Now, some important indicators. Okay. Indicators are what? These are substances which behave differently with acids and bases and will help you identify that if a particular substance is an acid or a base. Okay. First is turmeric solution. Okay. It is yellow in color, we all know. In presence of acid, it will remain yellow. Okay. But in presence of base, it will turn purple brown. Next is dry turmeric paper. It is again yellow in color and it will remain yellow in presence of acids. But in case of bases, it will turn into red. Okay. याद करना पड़ेगा इसको. Make a table and learn this. There is no other way of this. Phenolphthalein, it is colorless. Phenolphthalein is colorless.
ओके, नॉर्मल पानी से दिखता है, फिर अपना ठीक है. It will turn purple if your solution is very basic, and if it is acidic, it will remain colorless. Colorless will remain colorless in acidic solution. In basic solution, it will turn purple. Next, we have red cabbage juice. It is red. Normally, it is purple. Okay, red cabbage juice indicator. It is purple in color. It will turn red in acidic medium and greenish yellow in basic medium. Next is cabbage paper. Okay, कैसे बनता है? कैबेज जूस का पेपर बनाते हैं. कैबेज जूस पेपर को कैबेज जूस में सोक करते हैं और फिर इसको ड्राई करते हैं. ठीक है, दैट्स हाउ वी गेट कैबेज पेपर. सो इट विल टर्न green in presence of bases and pink to red, basically red in presence of acids. Okay. Next we have salts. So see, when acid and base will react, they will give you salt and water. This is called neutralization reaction. Okay. So let me see, let me take a page. So acid plus base will give you salt plus water. This is known as neutralization reaction. Okay. For example, HCl plus NaOH will give you NaCl plus H2O. Very common. Very common. Now, these salts can be of basically 4 types. Okay. Depending upon what acid or base you have used. Okay. If you take a strong acid and a strong base, like in this case, the salt will be neutral salt. Neutral salt. Okay. If you take a strong acid and a weak base, the salt will be a acidic salt. Salt कैसा होगा? Acidic salt. If you take a weak acid and a strong base, then you have a basic salt. Okay. And if you take both weak, then the reactions oftenly won't take place. But if it takes place, then the pH would be, means it will have a formula, which is not needed for us for this case. So not required in this case. Now, this salt is okay, no problem. But these two salts can show a phenomenon which is known as salt hydrolysis. हे गाइस, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट? और जो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन एड. आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो. Our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you go. Salt hydrolysis. These salts can react with the water. जो water साथ में बना होगा ना इनके, उससे साथ react करके they can convert back to the parent acid and bases. That process is known as salt hydrolysis. So a neutral salt found by strong acid and strong base will never undergo salt hydrolysis. These salts can react with water and convert back to the parent acid and bases, which is known as salt hydrolysis, also known as a reverse neutralization. Reverse like clear. Now you can read this. The same thing written. Next we have chemical bonding. Okay. First is, it is an attractive force which holds various constituent atoms, ions together. Okay. During formation of a chemical bond, energy release होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा. See, next is valency. Okay. Valency. Valency is the combining capacity of an element. एक element एक बार में कितने bonds बना सकता है, उसको बोलते हैं valency. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? Wait a minute, please. उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं. So let me give you a picture. Yeah, this is a picture of most common ions and their charges. आपको याद करना है.
There's no way out of this. I'm moving the screen. Take a screenshot. I'll take a full page first. Take a screenshot first. हो गया? हो गया? डन है? हम सब लोग डन है तो ठीक है. चलो, इसको याद करना पड़ेगा आपको. ऑल दीज चार्जेस. How do we use these charges, sir? Let's say I ask you to make. Okay, let's say I ask you to make a compound called magnesium phosphate. अब बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे होंगे जिनको पता नहीं होगा फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीशियम फॉस्फेट. तो वो लिस्ट में गिवन है. मैग्नीशियम का चार्ज इज +2 Mg2+ and phosphate is PO4 3-. So how to use this, sir? यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए 3. कैंसिल हो रहे हैं दोनों? नहीं हो रहे हैं. क्रॉस देम. Mg के नीचे 3 आएगा एंड PO4 के नीचे 2 आएगा. तो PO4 होल ट्वाइस. This is the formula for magnesium phosphate. That's how you use the charges to get the ionic compounds. Clear? For example, let's say we have potassium. Potassium oxalate. Okay. You see potassium is K+, oxalate is C2O4 2-. 1 here, 2 here. Can we cancel them? No. Cross them. K2 C2O4 potassium oxalate. Clear? Iron 2 oxide. Iron 2 is Fe2+. Oxide is O2-. 2 2. Can we cancel them? Yes, we can cancel them. 2 2 gone. 1 1. Cross them. Fe 1 is not written. FeO is iron 2 oxide. Iron 2 oxide. Clear? That's how you use the charges to get the ionic compound. Clear? Now, these charges basically are valencies. Some elements will show variable valencies like copper, like iron, like silver, like mercury. All of that has been given in the list. Sub list में given है. देखो, copper has 2 charges, +1 and your +2. Copper has 2 charges, +1 and +2. Iron has +2 and +3. Okay, so all of them have been given here. Okay, to learn them and study them so that you can use them like this to form compounds. Next, we have their valence, some important valencies, so you can again learn them. Monovalent means valency 1, divalent means valency 2, trivalent valency 3, and tetravalent valency 4. Next, we have type of chemical bonding. So there are mainly 3 kinds: electrovalent or ionic, covalent, and coordinate. One more is there, metallic bonding. I'll explain that. Okay. In ionic bonding, what will happen? Basically, transfer of electrons will take place. Okay. Like NaCl is formed. For example, Na has how many electrons? 11. 2, 8, 1. And chlorine has 2, 8, 7, 17. Both want to attain a noble gas configuration. They both want that their outermost shell is fully filled. Okay. So for sodium, it wants to lose 1 electron, and chlorine wants to gain 1 electron. So they will transfer. एक यहाँ चला जाएगा. ठीक है. 1 electron will go here. What will happen? Na will become Na+. Cl will become Cl-. They have become stable now. But there will be attraction between them. Okay? There will be attraction between them. And this attraction is called ionic bond. The attraction is called ionic bond. Remember this. Ionic bond is not a true bond. ये केवल attraction होता है. ठीक है? समझ गए बात को? Generally, it will happen between a metal and a non-metal. ठीक है? जो एक्सेप्ट करता है नॉन मेटल होता है, जो डोनेट करता है वो मेटल होता है. यहाँ ध्यान रखिएगा, आयनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस.
एक बार इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो चला गया, वो अब आप मेटल में काउंट नहीं करेंगे उसको, ठीक है, तो मेटल में काउंट नहीं करेंगे, तो नॉन मेटल का हो चुका है कंप्लीटली। ट्रांसफर बोलते हैं इसको। पैसा अगर ट्रांसफर कर दिया आपने तो वो आपका नहीं है, नो लॉन्गर आपका है, जिसका है वो उसका है। दैट पर्सन होल्ड्स द कार्ड्स। चलिए एग्जांपल के लिए जो मैंने बताया आपको, जितना भी आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयंस बन रहे हैं, ये सारे सारे आयनिक हैं, ये भी आयनिक है, ये आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी सब आयनिक है, सारे आयनिक। जितने भी आयंस, जिनमें आयंस यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, जिनमें भी आयंस क्रॉसिंग कर रहे हैं आप, ये सारे आयनिक कंपाउंड। चलो नेक्स्ट वी हैव कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट क्या होता है? शेयरिंग होता है। फॉर एग्जांपल देखो, लेट्स टेक Cl2 गैस, ClCl कैसे बना होगा देखो, Cl287, Cl287 दोनों को एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, बट इस बार कोई सोडियम नहीं है, देयर इज नो सोडियम टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, ओके, दे विल डू व्हाट, दे विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे वो आपस में। एंड नाउ दिस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक अ बॉन्ड। ऐसे ये बॉन्ड क्या होता है? दिस बॉन्ड मींस वन इलेक्ट्रॉन बाय ईच मेंबर, ऐसे ऐसे ये बॉन्ड होता है। दैट्स व्हाई यू नेवर शो बॉन्ड लाइन नोटेशन इन केस ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक में कभी ट्रांसफर तो हुआ नहीं है कि आप ऐसे शो करो। नेवर शो NaCl लाइक दिस, नेवर शो, ऑलवेज शो NaCl लाइक दिस, प्लस माइनस, और सिंपली लाइक NaCl लाइक दिस। ऐसा शो करना गलत होगा, बिकॉज दिस बॉन्ड मीन्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which only takes place in covalent bonds and not ionic। यहाँ ट्रांसफर, यहाँ पर शेयरिंग होता है। now this shared pair will be counted for both, A के लिए भी काउंट करेंगे दोनों को, और B के लिए भी काउंट करेंगे दोनों। ट्रांसफर में क्या हो, ट्रांसफर चला गया, गॉन, कंप्लीटली गॉन, ठीक है, बट यहाँ क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। जनरली इट टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल्स, बिटवीन टू नॉन मेटल्स, और बिटवीन मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, बिटवीन टू नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, उनमें ये जनरली होता है। नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इनसाइड कोवेलेंट बॉन्ड एक तरह का खास बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे भी शेयरिंग ही होता है, यहाँ भी बॉन्ड जो है, एटम जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, बट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द एटम्स। दोनों कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, एक कोई कंट्रीब्यूट करता है। जैसे यहाँ पे इसने कंट्रीब्यूट करा है और इसने एक्सेप्ट करा है, बट अगेन एक्सेप्ट मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ है, ध्यान देना, शेयरिंग हो रहा है, नॉट ट्रांसफर कंप्लीट, ध्यान देना। ये एक, दिस बॉन्ड इज लाइक अ मिक्सचर ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट। यहाँ शेयरिंग होता है लाइक कोवेलेंट, बट कंट्रीब्यूटर एक होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है इसको, है ना, एंड दिस इज फाउंड। This two bonds will be counted for both, इसके लिए भी काउंट करोगे, इसके लिए भी काउंट करोगे, बट कंट्रीब्यूशन एक नहीं किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भाई दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों में काउंट होगा। इट्स लाइक दोनों पार्टनर हैं, दोनों अर्न कर रहे हैं, दोनों खर्च कर रहे हैं। इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्या है? दोनों पार्टनर में से एक कमा रहा है, एक अर्न कर रहा है, दोनों खर्च कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट पे ये होता है। तो एग्जांपल के लिए देखिए आप, अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे NH3 ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया BF3 को। व्हाई सर? बिकॉज B हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, 2 2 4 2 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो N ने क्या करा? अपना लोन पेयर को डोनेट किया। दिस इज कॉल्ड अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड। नेक्स्ट वी हैव अमोनियम आयन। यहाँ पे क्या है? अमोनिया अगेन लोन पेयर लेकर बैठा हुआ है, HCl being an acid will release H+, we release H+. Now H+ is electron deficient, so क्या करेगा? N will donate the lone pair to H+, okay, and this plus charge will come on to N now। बता दो प्लस चार्ज कहाँ किस पे आएगा? N पे आ जाएगा। एक बात नोट करना हमेशा, whenever N will form 4 bonds, it will gain a plus charge। N 3 bonds all okay, 4 bonds plus charge, okay। Oxygen 2 bonds all okay, 3 bonds plus charge।
and if O has one bond only, then negative charge. नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका this arrow shows the coordinate bond that the electron has been donated by N to H. And by donation I don't mean transfer. By donation I don't mean transfer. तो इसका मतलब होता है कि ये मैं दे रहा हूं आपको, आप भी यूज करो, मैं भी यूज करूं, ऐसा है, ठीक है। घरेलू बातचीत है। यहाँ पे आ गया हाइड्रोनियम, देखो ओ भी, ओ ऑल्सो हैज लोन पेयर्स, ओ के पास दो लोन पेयर होते हैं ऐसे करके, ठीक है। वाटर के पास भी दो लोन पेयर होते हैं ऐसे करके। अगेन HCl being an acid will release H+, तो H+ निकल गया यहाँ से। Now H+ has electron deficiency, so this O will donate the lone pair and it will form this. Since H has gained the electrons from O, the plus charge of H will be आ जाएगा, ये बन गया आपका हाइड्रोनियम आयन H3O+, and ये आपका है अमोनियम आयन NH4+। Clear? So these three are the most common examples of coordinate bonding. Metallic bonding क्या होता है सर? Metallic bonding देखता था। This happens in case of metals, okay? So metal में क्या होता है कि metals are called metals because they are electropositive, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूमते हैं बहुत सारे। तो ये जो अंदर में है ये कर्नल्स हैं। कर्नल क्या होते हैं? When metal atoms lose electrons, whatever is left it is called kernel। अभी कर्नल KERNEL है, कर्नल वो कर्नल नहीं है, COLONEL, ये हो गया आपका कर्नल। और इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं, यहाँ पर फ्री में इलेक्ट्रॉन्स भी बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत फ्री हैं मेटल्स के अंदर। तो क्या होता है कि these metals and the kernels have attraction, like this electron इससे अट्रैक्ट होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, इससे इन सब से अट्रैक्ट होगा। this electron will be attracted by this। so there is a jelly like arrangement है, jelly like, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक नदी बना देते हैं अंदर, इतना फ्री है वो कि एक नदी बन जाता है। और एंड दे आर वेरी वेरी टाइटली पैक्ड, मतलब वो बहुत ही अच्छे से इनसे बॉन्डेड रहता है। मेटल कर्नल्स इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन कर्नल से, ईच इलेक्ट्रॉन्स विद डिफरेंट कर्नल्स, ईच कर्नल्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। ये तो 2D बनाया मैंने, ऐसे 3D में होगा। सोचो, इमेजिन दिस, एक कर्नल के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के आसपास बहुत सारे कर्नल्स, उनमें क्या अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। Clear? Stronger the metallic bond, stronger the metal, harder the metal. Clear? Okay. So with this we come to the end of this chapter. Now we have redox and electrochemistry. So before that, let's have a break of 5 more minutes, or let's take a break till 1:05. Okay, 1:05. Stop spamming, or else I will put you out of the class.
Okay. So welcome back. Am I audible and visible clearly? Chalo. So next we have redox reaction and electrochemistry. Let's understand redox first. Redox मतलब एक ही reaction में जब reduction and oxidation takes place simultaneously, we call it redox reaction. Okay. What is reduction? What is oxidation? For oxidation, the 4 points are: number 1, gain of oxygen. Gain of oxygen. Okay. Number 2, loss of hydrogen. Number 3 is loss of electron. Number 4 is increase in oxidation number. Oxidation number means charge basically. Okay. Okay. For reduction, just reverse everything. Reduction के लिए just reverse everything. Okay. So number 1 is loss of oxygen. Number 2 is gain of hydrogen. Number 3 is gain of electrons. And number 4 is oxidation number may decrease. Okay. Like in this case, if you see, one more thing, that any element in their elemental state, in their most abundant form, their oxidation number or their charge is taken to be 0. Okay. Mg का most abundant state, elemental state is Mg itself. Oxygen के लिए it is O2. Okay. So in their elemental state, their charges is 0. 0 charge दिया गया है. Their oxidation number is 0. Clear? For now, I'm hiding this agent thing. Get to this. Wait. Now, if you look closely, observe Mg only. For Mg going from 0 to +2, what changes can you observe? First of all, Mg has gained oxygen. Earlier, it did not have any oxygen. Now it has gained oxygen. Next is Mg has increased its oxidation number from 0 to +2. So gain of oxygen and oxidation number increase. Also, how will it increase the oxidation number? For going from Mg to 0 to +2, it will have to lose electrons. Obviously, for getting plus charge, any species has to lose electrons. So loss of electron has also taken place. Okay. So 3 out of the 4 parameters are checking out. Okay. It means that we can conclusively say that Mg has undergone oxidation. Mg has undergone oxidation. See, oxidation के लिए इन चारों में से कोई भी एक होगा ना, कम से कम कोई एक भी होगा, तो भी क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ. क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हुआ. ठीक है. रिडक्शन के लिए इन चारों में से कोई एक भी होगा ना, तो बोलेंगे रिडक्शन हुआ है. एक से अधिक हो, अच्छी बात है, अच्छी बात, बट कम से कम एक तो होना ही चाहिए. इफ यू ऑब्जर्व ऑक्सीजन, ठीक है, it is going from 0 to -2. Going from 0 to -2. So gain, so oxidation number is decreasing, correct? For decreasing the oxidation number, one species has to gain electrons, right? 0 से नेगेटिव जाने के लिए इलेक्ट्रॉन तो गेन करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन तो गेन करना पड़ेगा. तो gain of electrons has also taken place. You can conclusively say that O2 has been reduced. O2 has been reduced to O2 minus. O2 has been reduced to O2 minus. Yeah. Now this reaction is the oxidation half reaction, and this reaction is the reduction half reaction. You add them both, you will get this. How, sir? Add them both. 2 Mg on the left, here O2 on the left, plus 4 electron on the left. Okay. There again on the right, 2 Mg 2 plus. Okay. Plus 4 electron plus 2 O2 minus.
4 electron on both sides gone. 2 Mg2 plus 2O2 minus, they will combine together to form 2 MgO. So 2 Mg plus O2 gives 2 MgO, correct? Absolutely correct. So this reaction will be called a redox reaction. Why? Because reduction and oxidation are taking place simultaneously. Now, coming to the reducing and oxidizing agents. Okay. So, see, Mg is getting oxidized, correct? Now, who is helping Mg getting oxidized? Mg को help कौन कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में? Oxygen कर रहा है. So, O2 is facilitating the oxidation of Mg. Hence, O2 will be called oxidizing agent. Similarly, Mg is facilitating the reduction of O2. So, Mg will be called the reducing agent. सिंपल भाषा में बोलूं तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिंपल बात, नो बकवास. जो खुद होता है ऑक्सीडाइज वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद होता है रिड्यूस वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर? अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, ये एक आयनिक इक्वेशन लिखा गया है. जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस gives zinc 2 plus and copper. So zinc is going from zinc to zinc 2 plus. So साफ oxidation is taking place. Copper is going from +2 to 0. साफ reduction is taking place. ठीक है. Now, so zinc 2 plus is formed after oxidation. So it will be called the oxidized product. And copper Cu0 is forming after reduction. It will be called the reduced product. Clear? Since copper Cu2 plus is getting reduced, it will be called oxidizing agent. And since zinc is getting oxidized, it will be called reducing agent. And this reaction on as a whole will be called redox reaction. Clear? Next, we have electrochemistry. Electro means electricity, chemistry means chemical reactions. So basically, there are two kinds of reactions, okay? Spontaneous reactions and non-spontaneous reactions. Okay. Spontaneous reactions take place on their own. Okay. In this reaction, chemical energy is converted to electrical energy. And for non-spontaneous reaction, we use electrical energy to make the reactions happen and convert them into chemical. देखो इस चैप्टर में दो चीज होगा, या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल बनेगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल बनेगा. ठीक है. व्हाट इज केमिकल एनर्जी? द एनर्जी बाय व्हिच अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है मतलब रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है, मतलब इट हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी. तो वी विल यूज दैट केमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होगा? वहां पे तो अपने आप होगा नहीं रिएक्शन, मतलब दैट रिएक्शन डज नॉट हैव sufficient chemical energy, so we will provide electrical energy and we will convert that into chemical energy for that reaction to take place. So chemical energy convert to electrical energy. This will take place in a cell called galvanic cell. क्या बोलते हैं इसको? Galvanic cell. And this will take place in a cell called electrolytic cell. ठीक है. And these two cells, when under an umbrella term, are called electrochemical cells. मतलब both galvanic and electrolytic cell are called electrochemical cells. Electrochemical. ठीक है. एक बात ध्यान रखिएगा, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव. ठीक है. इन एनी सर्कमस्टांस
एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एंड कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, नो मैटर व्हाट द सेल इज। क्लियर है बात? चलो, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा था आपको, कैन रीड दिस। एक और बात है यहाँ पर, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल का। देखो यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज गिवन है आपको, एनसीईआरटी का पेज है। ये जो वैल्यू है ना, इट इज कॉल्ड दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और द रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि जिसका वैल्यू जितना ज्यादा, इसका वैल्यू इतना ज्यादा, the more that species wants to get reduced, the more that species wants to get reduced। जितना लो वैल्यू मतलब the more that species wants to get oxidized। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जो जितना रिड्यूस होना चाहेगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब कि हायर द स्पीशी इन दिस ऑर्डर द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड लोअर मींस बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस टेबल में जो जितना ऊपर है वो उतना खुद चाहता है रिड्यूस होना, एंड वो खुद अगर रिड्यूस होगा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, एंड हेंस इट विल बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड जो जितना नीचे है, उल्टा कर दो उसको, जितना नीचे है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। व्हाई? बिकॉज इट वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। क्लियर है बात? तो टेबल आप लोग अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ। वैल्यूज याद नहीं करनी है आपको, वैल्यू याद नहीं करनी है, बस नो दिस फैक्ट। जितना ज्यादा वैल्यू होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उतना ज्यादा वो बॉडी, वो सब्सटेंस खुद चाहता है कि वो रिड्यूस हो जाए, एंड जब वो खुद रिड्यूस होगा तो क्या करेगा? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? Next we have battery. So there are two kind of batteries, primary battery and secondary battery। अगर आपका बैटरी नॉन रिचार्जेबल है, एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड प्राइमरी बैटरी। एग्जांपल के लिए ड्राई सेल, इलेक्ट्रॉनिक सेल भी बोलते हैं, मरकरी सेल, नाम है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी ये होता है रिचार्जेबल, इसको आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं। फोन बैटरी, लैपटॉप बैटरी आर ऑल सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, दे कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। अच्छा, दे कैन बिहेव बोथ एज गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बता रहा हूँ कैसे। एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, जितने भी आजकल चलते हैं इलेक्ट्रिक रिक्शॉस, उनमें लेड स्टोरेज होता है। इवन जो ईवी चलते हैं, जितने भी ईवी सब में यही होता है। ठीक है, गैल्वेनिक कैसे? देखो, सेकेंडरी बैटरी, जब बैटरी डिस्चार्ज होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टेट्स इन विच अ रिचार्जेबल बैटरी कैन बी इन। ठीक है, पहला है कि व्हाइल चार्जिंग, एंड सेकेंड इज व्हाइल डिस्चार्जिंग। जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, when you are using the battery, it is discharging, है ना? You are basically using the chemical energy stored in the battery to convert it to electrical energy to power your device, and this conversion takes place in galvanic cell। कहाँ होता है ये? गैल्वेनिक। ये रिचार्ज करते हो तो क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हो ताकि उसका केमिकल एनर्जी को आप रिप्लेनिश कर पाओ। Once you have discharged the battery, the chemical energy has depleted। To replenish that chemical energy, we use electrical energy। So this transfer, this takes place, this transformation takes place when you are charging the battery, and this transformation represents electrolytic cell। Hence, a secondary battery will behave both as galvanic and electrolytic cell। Next, we have Faraday's law of electrolysis। There are basically two laws of Faraday। Faraday's law of electrolysis। First law,
फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि डिपोजिशन जो होता है मास ऑफ द मेटल, जब इलेक्ट्रोलाइज करते हो ना, व्हाट यू आर डूइंग इज, आप एक रॉड लेते हो इन एन इलेक्ट्रोलाइट, पानी में, ऐसे पानी नहीं होता है, वो एक लिक्विड होता है जो करंट पास करता है, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, एंड देयर आर इलेक्ट्रोड्स लाइक दिस, इलेक्ट्रोड लाइक दिस। ऐसा होता क्या है कि एक जगह डिपोजिशन होता है, एक जगह से रिमूवल होता है। मेटल मान लो कि यहाँ पे आपने ले लिया, जैसे जिंक ले लिया आपने, यहाँ पे आपने कॉपर ले लिया, तो ऑल्सो डिवाइड कर दिया, शॉर्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि एक जगह से मेटल या फिर कोई भी जो आपने लगा रखा है इलेक्ट्रोड, वो टूटता है, एक जगह डिपॉजिट होता है। तो जो डिपॉजिट होता है वो कितना डिपॉजिट होगा, उसके लिए वी हैव टू लॉज ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है। पहला लॉ क्या बोलता है कि द मास डिपॉजिटेड, ठीक है, ऑफ द मेटल इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास, जितना चार्ज पास करोगे उतना मास डिपॉजिट होगा, यही फर्स्ट लॉ है। And we know that Q equals to IT. I is current and T is time. Because I equals to Q by T, पढ़ रखा है हम लोगों ने। Q कितना होगा, I into T, तो ये हो जाएगा M proportional to IT. Now when this proportionality was removed, okay, we got a constant which was called Z. Z. Now this Z, when solved, we got this E by F. E by F. नोट कर लो इतना पहले। Now this E is what? E is the equivalent mass of the metal being deposited. Metal being deposited. एक बात और ध्यान रखिएगा, not always the metal is deposited. Sometimes gases are liberated. Okay? So in that case, gas जो liberate हो रहा है उसका mass डालना है। How to get equivalent mass, sir? Equivalent mass is equal to molar mass upon n factor. What is n factor? बताता हूँ। n factor is equal to number of total net charge transfer. Net charge transfer. लिख लो टोटल चार्ज ट्रांसफर। एग्जांपल देखो हमारा समझ आ जाएगा, नेट चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, इसको n फैक्टर बोलते हैं। एग्जांपल अगर मान लो आपके पास AgCl है, AgCl इज द यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, AgCl है, ठीक है, एंड या फिर ले लेते हैं AgI ले लेते हैं, ठीक, AgI है। कौन डिपॉजिट होगा यहाँ पे, Ag डिपॉजिट होगा, Ag विल बी डिपॉजिटेड। सो सोचो एक बार, Ag कैसे डिपॉजिट होगा, Ag ब्रेक करेगा इनटू Ag प्लस एंड I माइनस, ये कैसे हुआ होगा, ट्रांसफर हुआ चार्ज का, इलेक्ट्रॉन एक Ag से निकला होगा, I के पास गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम Ag प्लस टू I माइनस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ Ag से I जा रहा है, इसलिए n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो E कैसे निकालोगे, मास ऑफ Ag 108 होता है, मोलर मास ऑफ Ag, एंड n फैक्टर इज 1 इन दिस केस, ये हो गया आपका हाउ टू गेट द इक्विवेलेंट मास। यहां से E मिल गया आपको, F इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नियरली इक्वल टू 96500 कूलम ऑफ चार्जेस, फैराडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैराडे। तो F इज कांस्टेंट, ठीक है, I करंट है, T टाइम है, एंड E इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड और गैस बीइंग लिबरेटेड। इससे यू कैन गेट द मास ऑफ द whatever gas is being liberated or your metal is being deposited। क्लियर है बात। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ फैराडे का,
सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर मैं चार्ज कांस्टेंट करूं, अगर मैं चार्ज को कांस्टेंट कर दूं, तो मेरा जो मास डिपॉजिटेड है वो डिपेंड करेगा ओनली एंड ओनली अपॉन द इक्विवेलेंट मास। बिल्कुल सही बात है। कैसे सर? ये फॉर्मूला देखिए, F इज ऑलरेडी कांस्टेंट एंड बाय मेकिंग चार्ज कांस्टेंट यू आर मेकिंग I एंड T कांस्टेंट। तो अगर ये पूरा कांस्टेंट कर दोगे तो M किस पे डिपेंड करेगा? E पे करेगा। सेकेंड लॉ का जरूरत था ही नहीं वैसे, फिर भी तो ये आपका ME हो गया। मतलब कि अगर हमारे पास दो अलग अलग मेटल्स है, अलग अलग मेटल डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, जिनका मास डिपॉजिट हो रहा है M1 M2 और इनका जो इक्विवेलेंट मास है वो E1 E2 है, सो वी कैन कंक्लूड दैट M1 अपॉन E1 इज इक्वल टू M2 अपॉन E। गिवन की चार्ज जो है, गिवन की Q जो है कांस्टेंट है फॉर बोथ, कांस्टेंट है फॉर एक सेकेंड। मेनली यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला, इससे सारा काम होगा। इसी से फर्स्ट लॉ भी आ जाएगा। फर्स्ट लॉ कैसे आएगा सर? फर्स्ट लॉ आएगा जब आपने बोला कि करंट पे डिपेंड कर रहा है केवल चार्ज पे, तो इन दैट केस आपका E कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप अलग अलग नहीं ले रहे हो, मेटल्स को डिपॉजिट नहीं करवा रहे हो, एक ही मेटल डिपॉजिट करवा रहे हो एट डिफरेंट चार्जेस। E कांस्टेंट F कांस्टेंट, M विल डिपेंड ओनली अपॉन IT, ओनली अपॉन Q। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ के लिए क्या बोल रहे हो कि भाई इस बार हम IT कांस्टेंट कर देंगे, F ऑलरेडी कांस्टेंट है, M किस पे डिपेंड करेगा? E पे। सेकंड लॉ ये बोल रहा है। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, रीड कर सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट वी हैव corrosion. Corrosion is a process of oxidative deterioration. ऑक्सीडेशन होता है। corrosion मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब आयरन है तो आयरन है, ये रिएक्ट करेगा विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, एंड विल गिव यू रस्ट। क्या मिल गया? रस्ट मिल गया। तो क्या हुआ यहाँ पर? बेसिकली ऑक्सीडेटिव ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब होता है कि डीके, तो मतलब क्या होता है? डीके, खराब होना। खराब तो हो गया भाई, लेकिन कैसा हुआ? यूजिंग ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन की मदद से हुआ, उसको बोलते हैं आपका रस्टिंग। तो मेटल का रिएक्शन होगा जब एनवायरमेंट में जो एयर है, मॉइस्चर है, उससे यू विल गेट कोरोजन। ठीक है, आयरन के कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं। रस्ट जो होता है, इट इज, ये रस्ट है आपका, ये क्या है आपका? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे वाटर है। ठीक है, आयरन 3 क्यों बोला? बिकॉज आयरन इसमें +3 फॉर्म में। ठीक है, देखो Fe3 प्लस O2 माइनस 3 2 क्रॉस करो, क्या बनेगा? Fe2O3। आयरन किस फॉर्म में है? इसमें T फॉर्म में, इसलिए आयरन 3 बोला गया। क्लियर है बात? ऐसा नहीं है कि बाकी करोड, बाकी चीजों का कोरोजन नहीं होता है, सिल्वर भी कोरोड करता है। ठीक है, आपका बाकी चीजों को कोरोड करता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर के लिए ध्यान रखिएगा, Ag2O बनता है सिल्वर, इसको आपका सिल्वर 1 ऑक्साइड बोलते हैं। ब्लैकिश होता है। ठीक है, चलो, so with this we come to the next chapter, non-metal and their compounds. In this chapter we have some important non-metals and their compounds, उनका प्रॉपर्टी कुछ है। नाउ अब आगे बहुत थ्योरेटिकल होगा। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको जहां जहां एक्सप्लेन करना होगा करूंगा, बट आपको यहाँ पे याद करने का काम शुरू हो गया। याद तो पहले भी करना था, अब और सारा याद करना पड़ेगा। पहला है हाइड्रोजन, तो इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पहले पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस। कोई ना टेस्ट होता है, ना कलर, ना स्मेल। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में स्लाइटली घुलता है, बिकॉज इट इज नॉन पोलर। जो यहाँ समझाने का बात है, रिमेंबर दिस, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर पोलर सब्सटेंस है, इफ अगर पोलर सब्सटेंस पोलर, तो वो पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व होगा। अगर नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, सोलवेंट।
लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वैसे में घुल जाता है, ठीक है, संगति का बात। तो आप देखिए वाटर, टू सी वाटर, O and H ये बॉन्ड पोलर है, O is pulling the electrons because it is more electronegative than H, ऐसे करके पुल कर लेता है। तो देयर इज स्लाइट पोलैरिटी, O पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, H पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, सो देयर इज पोलैरिटी हियर, नेगेटिव पॉजिटिव तो पोलैरिटी है। वाटर इज पोलर, सो एनी पोलर सब्सटेंस जहां पोल्स बन रहे हैं वो वाटर में अच्छे से घुलेगा। और अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है लाइक H2 गैस, नॉन पोलर है, कोई पोल नहीं बन रहा है, नो पोल्स आर हियर, तो नॉन पोलर है। बीइंग नॉन पोलर दिस विल नॉट डिसॉल्व वेल इन वाटर, hence H2 is slightly soluble in water because H2 is non-polar whereas water is polar. अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे लाइक बेंजीन इज नॉन पोलर, बेंजीन ऐसा होता है नॉन पोलर, केवल C और H होता है इसमें, ये बेंजीन नॉन पोलर है तो इसमें H2 ढंग से डिसॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, सो डाइहाइड्रोजन मींस H2 gas, it's quite stable due to high bond association energy and thus not reactive। तो ध्यान देना, समझने का बात है फिर से। High BDE means the energy required to break a bond, to dissociate a bond is called bond dissociation energy। अगर एक बॉन्ड का BDE बहुत हाई है मतलब इट इज वेरी स्टेबल, वो तुरंत टूटेगा नहीं, है ना, अंबुजा सीमेंट का जोड़ है, टूटेगा नहीं, क्लियर है। तो अगर वो टूटेगा नहीं तो रिएक्टिव नहीं होगा, है ना। वो चीज रिएक्शन कब करता है, इन सर्च ऑफ बेसिकली बॉन्ड के सर्च में रिएक्ट करता है ना। अब ऑलरेडी बॉन्डेड है बढ़िया से, वो इट इज ऑलरेडी स्टेबली बॉन्डेड, तो वो रिएक्टिव नहीं होगा। H2 गैस इज न्यूट्रल टू लिथियम पेपर, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता है लिथियम पेपर के सामने, ठीक है। इट फॉर्म्स कंबाइंस विद सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम टू फॉर्म हाइड्राइड्स। व्हाट आर हाइड्राइड्स, जहां पे H हैज नेगेटिव चार्ज। व्हेन H कंबाइंस विद, listen to me carefully, when H combines with S block elements, what S block elements, ठीक है, it forms hydrides, मतलब कि there H has negative charge, NaH, CaH2, है ना, KH, this is called sodium hydride, calcium hydride, potassium hydride, and these bonds are ionic in nature. Here Na is in plus, H is in minus, Ca2 plus, H minus, K plus, H minus. Next we have water. A major part of all living organisms is made up of water. Humans are about 65% water. Some plants are 95% water. Reading का बात है। Rainwater is the purest form of water theoretically. Yes. हाँ, एक important बात. Presence of calcium and magnesium salts mainly. Calcium, magnesium and iron salts in presence in form of hydrogen carbonate. अब देखो, कैल्शियम सॉल्ट्स मतलब Ca2 प्लस होगा, मैग्नीशियम सॉल्ट्स यानी Mg2 प्लस होगा, आयरन मतलब Fe2 प्लस भी होगा एंड Fe3 प्लस भी होगा, एंड इन फॉर्म ऑफ व्हाट फॉर्म, इन HCO3 माइनस हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लिस्ट में दिया हुआ है, चेक द लिस्ट, Cl माइनस एंड सल्फेट्स SO4। तो इन दीज फॉर्म्स मतलब कि कैल्शियम का 3 सॉल्ट बनेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे। सिमिलरली मैग्नीशियम also have 3 salts combining with these 3. Fe will also have 3 salts combining with these 3, Fe2 plus, then Fe3 plus. So in short, we'll have 12 salts. These 12 salts make water hard. Water को कैसे करते हैं, hard कर देते हैं, ठीक है। And hard water will never form lather with soap. साबुन के साथ वो झाग नहीं बनाए, ठीक है। And you should remember this, that झाग बनना is very important for cleansing of clothes. आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, वही झाग बनना is very important for cleansing. Hard water झाग नहीं बनाएगा, it will form a precipitate with soap, okay? And it is therefore unsuitable for laundry. Next we have fuel. Fuel can be of 2 types, primary fuel and secondary fuel. जो fuel आपको directly मिलता है from the nature, like wood, petroleum, coal, they are all primary fuels. जिन fuels को आप obtain करते हो from primary fuels, they are known as secondary fuels. For example, petrol, diesel, kerosene, they are all obtained from petroleum, hence they will be called secondary fuels. Coal gas is obtained from coal, so secondary.
Next we have ozone. Ozone is basically O3. Ozone is O3. ऐसा होता है ozone. This is how ozone looks. So ozone is highly unstable triatomic allotropic form of oxygen. Allotropic form है मतलब कार्बन का होता है ना allotrope. ग्राफाइट हो गया, डायमंड हो गया, इनमें कार्बन प्योरली कार्बन है. वो ग्राफाइट भी प्योरली कार्बन है, डायमंड भी प्योरली कार्बन, बट उनमें अरेंजमेंट कैसा है, डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट फॉर्म्स आता है, उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2 गैस इज लाइक दिस. ये भी पूरा ऑक्सीजन है, ओनली ऑक्सीजन. ये भी पूरा क्या है, ऑक्सीजन, बट इनमें अरेंजमेंट अलग अलग. दैट्स व्हाई दे आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड दे आर कॉल्ड एलोट्रोप्स. इट इज डार्क ब्लू इन कलर. It is heavier than air and slightly soluble in water. पानी से हवा से भारी होता है, पानी में slightly soluble. Ozone is diamagnetic. मैंने बताया था आपको कि magnetically substances can be of three types: dia, para, and ferro. Dia means slightly repelled by magnet. Ferro means para means slightly attracted by magnet, and ferro means strongly attracted by magnet. Ozone क्या है, diamagnetic. मतलब वो आपका slightly attract, slightly repel होता है. मरकरी क्या करता है, अपना मेनिस्कस यूज करता है ओजोन के साथ. ओजोन पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. ब्लीचिंग फैब्रिक्स, ऑयल, स्टार्च, कैम्फर बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में. नेक्स्ट वी हैव यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन. तो इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम साइनामाइड. और ये साइनामाइड CaCN, इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड. साइनाइड होगा. लिक्विड नाइट्रोजन हमको पता होता है कि भाई लिक्विड नाइट्रोजन इज वेरी वेरी कोल्ड, टू बी यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ठंडा करने के लिए चीजों को. बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, मतलब मान लो कि DNA एविडेंसेस होता है फोरेंसिक्स में, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, खून जमा करना है, खून स्टोर करना है ना, बाल, हेयर सैंपल्स, है ना, आपका नाखून का सैंपल्स, है ना, सलाइवा सैंपल्स स्टोर करना है, तो यूज लिक्विड नाइट्रोजन. फ्रीजिंग फूड स्टफ, providing inert atmosphere in iron and steel industry. देखो N2 गैस इज वेरी वेरी इनर्ट, वो ज्यादा कुछ करता नहीं है. N2 गैस ना प्रमोट करता है ज्यादा रिएक्शंस को, ना उसको स्टॉप करता है. N2 गैस हमारे एटमॉस्फेयर में 78% N2 गैस है, बट ज्यादा कुछ वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है. अच्छी बात है, हर चीज में कंट्रीब्यूट करना जरूरी होता भी नहीं. तो व्हेनेवर वी नीड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, जहाँ पे ज्यादा कुछ ना हो रहा हो, ठीक है, तो वी विल यूज नाइट्रोजन गैस. तो इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वी नीड इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो वी यूज आपका N2 गैस. और गैस फिल थर्मोमीटर बनाते हैं हम लोग फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर. वी यूज गैस फिल थर्मोमीटर. व्हाई? बिकॉज मान लो टेम्परेचर मरकरी के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर मेजर करना है, तो मरकरी थर्मोमीटर आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो वी विल यूज गैस फिल थर्मोमीटर. एंड इन दैट केस N2 इज वन ऑफ द मेजर components of that. Next we have some important chemical compounds. First we have cleansing agents. वही आ गए साफ सफाई के ऊपर. ठीक है. तो देखो पहली बात तो क्या, फॉर क्लीनिंग समथिंग वी नीड टू, मान लो कि कोई कपड़ा है साफ करना है, तो वी नीड टू गेट इनटू द फैब्रिक ऑफ द क्लोथ. ठीक है, फैब्रिक में जाना जरूरी है. एंड वन मोर थिंग, दैट व्हाई डू वी नीड दिस क्लींजिंग एजेंट्स. द थिंग इज दैट दोस the dirt generally, oil and grease, they are oily in nature, and water and oil do not mix. Hence water is not able to get hold of the oil. ठीक है, water क्या करता है, उस oil का hold नहीं कर पाता. मान लो कि I want to remove this phone from here, okay, so what I should be able to do is that get hold of it, तो पकड़ के मैं हटा पाऊँ. But water जो है वो oil and dirt का hold ही नहीं कर पाता. It is not able to get hold of it. So we need something in the middle that will help us do it. So for that purpose, we will use cleansing agents like your soaps and detergents. Okay. So basically, they do what? They reduce surface tension. Am I clearly audible and visible? Okay. तो क्या होता है कि देखो, मान लो कि कपड़े पे गंदगी लगी हुई है, ऑयल एंड डॉट है इसके ऊपर, तो ऑयल को रिमूव करने के लिए क्या, आई मस्ट बी एबल टू ग्रैब द थिंग. मान लो कि आई वांट टू रिमूव एनीथिंग, यू वांट टू रिमूव एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, यू मस्ट बी एबल टू ग्रैब इट, राइट? वाटर इन इट्स ऑन इट्स ओन इज नॉट एबल टू ग्रैब द ऑयल, तो पकड़ नहीं पाता.
So it needs something that is able to grab the oil. Okay, so that's where the surfactants, basically the soaps, the detergents come into play. They basically do what? They reduce the surface tension of the solution. पानी क्या होता है? There is some attraction between the water particles, and that is called surface tension. ठीक है, surface tension में आपस में फोर्स होता है. अब इस फोर्स को कम करने से क्या होगा कि they will be able to get into the fabric of the cloth more easily. कपड़े के फैब्रिक में वो एंट्री ले पाएंगे. आप ट्राई करना खुद, एक नॉर्मल वाटर लो, उसमें हाथ डालो, ट्राई टू मूव योर हैंड अराउंड, okay, and then put a good amount of, let's say, detergent in it, and then mix it, and then try to move your hand around. You will feel that बहुत easy होता है हाथ को मूव करना smoothly when आपने उसके अंदर अच्छा खासा detergent ऐड कर दिया. Why? Because the surface tension has decreased, and now the water will be able to get into the fabric of the cloth and clean the dirt and oil very, very easily. Clear? So let's understand the working of the, first of all, how are they made? Okay, so generally we use oils and fats. Oils और fat का इस्तेमाल करते हैं हम लोग. In India generally oil is used, fat is not used because of religious sentiments. So oil में mustard oil, moa oil, coconut seed oil, olive oil or animal fat is used in different times. Fillers, see, so not everything in the soap is meant to clean. Some things are added just to add weight and volume to soap. Sodium silicates, powdered pumice, sodium carbonate, starch, etc. Caustic soda, NaOH is called caustic soda, is used for making hard soaps. What are hard soaps? Washing soaps. कपड़े धोने का, बर्तन धोने का सोप को बोलते हैं hard soap. Caustic potash, KOH, is used for making soft soaps. Okay, and the process by which we make soaps is called saponification reaction. Perfumes are also used to make the soap pleasant smelling. Lemongrass oil, rose, sandalwood, etc. Next, we have the working of the soap. Now, be very careful. Listen very carefully. See, a soap molecule looks like this. ये soap का एक molecule है, one molecule of soap. Now this zigzag what you are seeing here, each point of this zigzag is a carbon. ये carbon है, ये carbon है, ये carbon है, ये carbon है, all this is carbon, and they are bonded with hydrogens. Hydrocarbon है, पूरा क्या है? Hydrocarbon. This is called the head, and this entire thing is called the tail. So this entire tail is called hydrocarbon tail. क्या बोलते हैं इसको? Hydrocarbon tail, because it is made by hydrogen and carbon. This is called the ionic head. क्या है ये? Ionic head. Now see, this ionic head is polar in nature, plus minus, clearly polar in nature. Ionic head is polar in nature, whereas this hydrocarbon tail is non-polar in nature. It is non-polar. So this head will be water soluble or water attracting. कैसा है ये? Water attracting, or also called as hydrophilic. Philia means love. Okay, so it is water loving. The head is water loving, whereas the tail is hydrophobic. कैसा है ये? Hydrophobic. ये non-polar है, hence it is hydrophobic. ठीक है? Head hydrophilic है, tail hydrophobic है. Now what else is hydrophobic? The oil, the grease is hydrophobic. This part, ionic head, will attract the water, and this tail part will attract the oil. ठीक है? तो यहाँ पे oil आ जाएगा, यहाँ पे water आ जाएगा. Now if you see, this water directly was not able to get hold of the oil, but using the molecule of the soap, the oil हो गया, the water हो गया. This water is bonding with this head, and this oil is bonding with this tail. Now this water is able to get hold of the oil. बात समझ रहे हैं आप?
पहले डायरेक्टली होल्ड नहीं कर पा रहे ना हम, तो हम कुछ तरीके से होल्ड करेंगे. आई विल यूज सम मीडिएटर. नाउ दिस सोप इज मीडिएटर. दिस सोप इज मीडिएटर. एंड ये एक तरफ से नहीं करेगा. देयर विल बी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ दीज सोप मॉलिक्यूल्स. ओके, सो दे विल फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर लाइक दिस. 2D में शो किया गया है. लेट मी शो यू इन 3D ऑल्सो. सी, दिस इज 3D. सी, दिस इज द ऑयल इन बिटवीन. ये ऑयल बीच में है ना, और इसको है ना कीड़ा मकोड़ों तरह घेर रखा है. ऑयल बीच में है और यहाँ पूरा कीड़ा तरह घेर रखा है. दिस इज द आयनिक हेड. ये आयनिक हेड है एंड ये हाइड्रोफोबिक टेल. ठीक है. नाउ व्हेन यू वॉश द क्लोथ, जब आप क्लोथ को वॉश करोगे तो क्या होगा? ये आपका एजिटेशन करोगे, विल एजिटेट. दिस ऑयल विल बी टेकन, हेल्ड बाय द माइसेल. माइसेल क्या होता है? माइसेल, द लैदर दैट यू सी, लैदर दिखता है ना आपको, झाग. वो झाग इज नथिंग बट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ दीज माइसेल्स. झाग देखते हो ना आप. इसलिए मैंने बोला था लास्ट चैप्टर में कि झाग बनना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर क्लेंजिंग ऑफ फ्लोस. अगर झाग नहीं बन रहा है मतलब कि माइसेल नहीं बन रहा है. माइसेल नहीं बन रहा है मतलब कि सफाई. क्लियर? So these soap molecules, the ionic head will hold the water, and the hydrophobic tail, the hydrocarbon tail, will hold the oil, and millions and billions of this will surround the oil droplet, forming a micelle. And millions of billions of this micelle will be seen as lather. When you agitate the cloth, रगड़ोगे उसको, पानी मारोगे, चला जाएगा, साफ हो जाएगा कपड़ा आपका. That's how soaps and detergents work. Clear? Any issue? Next we have fertilizers. Okay. See, there are a few nutrients in the soil. Okay, already there are nutrients. When you keep farming on the soil repeatedly, okay, क्या होता है कि those nutrients get depleted. क्या होता है? They get depleted. So we need to add them externally. So how do we add them externally? In the form of chemical fertilizers. So chemical substances which are added to soil to increase its fertility by providing essential nutrients to the soil which are lost due to continuous cropping are known as chemical fertilizers. They are added to the soil during the sowing season. What is sowing season? When you are basically going to put the seed into the soil. That is called sowing season. We put the nutrients to avoid starvation of the plant, to ensure healthy crops. ताकि वहां पे खाना हो, सीड जा रहा है उसके लिए खाना तो होना चाहिए ना. That खाना is what? Fertilizers, the nutrients. About 16 elements are needed for the healthy growth of a plant. 16 elements चाहिए होते हैं. Among these, the NPK, they are the most important nutrients, and they are needed in high quantity. Example के लिए यूरिया, NH2CO, NH2. इसमें भी N का मात्रा अच्छा खासा है. You see, by mass if you take out, let's take the mass of this. 14 plus 2, 16, 16, 32, 32, and then we have 12, 44, 44 and 16, 60. So 60 is the net mass, and 28, nearly 50% of the mass of the urea is nitrogen. Okay, that's why urea is commonly used. Because half of the mass of urea is basically nitrogen, which is one of the most important nutrients for. Next we have biofertilizers. Okay, they are organisms which bring soil enrichment. मतलब इनके होने से ही soil enrichment होता है. इनका जो waste होता है ना, the waste that they produce when they are in the soil, they produce some waste. That waste basically is rich in nutrients. So main we have bacteria, cyanobacteria and fungi. They are the common sources of biofertilizers. Okay. So with this we come to the end of this chapter. Next we have the basics of organic chemistry, and अब organic chemistry left है. ठीक है. So पहले basics पढ़ाऊंगा and then उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे. So let's have a break of 10 minutes now. Okay. We'll meet at 2 o'clock.
ओके, सब क्लियर, ऑल सेट। चलिए फिर फर्स्ट थिंग, केमिकल रिएक्शन, वेरी इजी, सब पता होता है लोगों को क्या होता है केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, केमिकल फार्मूला, स्टेट ऑफ मैटर। आई थिंक टू एक्सप्लेन हियर, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला होता है एडिशन रिएक्शन, जहां पे कुछ ऐड हो रहा हो, सिंपल बात है। ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में बात करें हम लोग, तो एडिशन रिएक्शन कैसे बोल सकते हैं हम लोग, मान लो कि वी हैव दिस CH4 plus Cl2, okay, or let's say not this, but let's take this, okay. Let's take this CH2 plus Cl2, ठीक है। एक, अब इसमें क्या होगा, 1 Cl will attach here, 1 Cl attach here, we get CH2 Cl, CH2 Cl, यहाँ पे two things combine to form one thing, तो क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, there will be substitution, this 1 H will be replaced by 1 Cl, so we'll get this CH3 Cl plus HCl, यहाँ पे 1 Cl has replaced or substituted 1 H, so we call it substitution reaction, clear। नेक्स्ट वी हैव एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे कुछ रिमूव होगा, एलिमिनेट होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए यू कैन टेक द रिमूवल ऑफ वाटर, सो अल्कोहल लेते हैं कोई भी, लेट्स टेक एनी अल्कोहल, so this is the alcohol CH3 CH2 OH, you add concentrated H2SO4 and heat, this will remove water from here, so OH and H from here, OH from here and H from here will go away, and you will get this CH2 double bond CH2 and water, it has been removed, elimination reaction taken place. And redox I have explained just here. These are the kind of reactions we will come across in this chapter. Next is chemical species. So when you study organic chemistry, you study nucleophiles and electrophiles. See, file मतलब होता है लवर, कुछ लोग खुश हो गए, लवर मतलब ऐसा नहीं, पढ़ाई करो। न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, इसको प्रेम न्यूक्लियस से, इससे हो, इससे हो, न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस से कौन प्यार करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से प्यार कौन करता है, नेगेटिव करता है। तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, वो दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, मतलब दे विल हैव आइदर नेगेटिव चार्ज और दे विल हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब लोन पेयर होगा ऐसा खुला, ऑक्सीजन पे ऐसा लोन पेयर, नाइट्रोजन पे ऐसा लोन पेयर, तो इनको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। जिन भी स्पीशीज के पास नेगेटिव चार्ज होगा, या तो खुला नेगेटिव चार्ज हो या फिर उनके पास लोन पेयर हो, उनको क्या बोलेंगे आप, न्यूक्लियोफाइल्स बोलेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। ये है इलेक्ट्रोफाइल्स। अगला है इलेक्ट्रोफाइल्स, ये इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन। अब कोई इलेक्ट्रॉन को प्यार क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कोई खुद ब खुद अगर पॉजिटिव हो तब तो नेगेटिव को प्यार कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जनरली पॉजिटिवली चार्ज, क्या होता है। ठीक गाइस, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा नहीं, राइट, ऑल्सो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन एड। आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, our mentors are always there for you, so fill the form in the description and like this video before you go. पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अच्छा, या तो ये आपको साफ साफ प्लस चार्ज दिखाएंगे ऐसे करके, या फिर ये बॉन्ड होगा, CO बॉन्ड, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या है जी, ये कार्बोनिल ग्रुप, और ये बॉन्ड दिखने में लगता है कि कुछ नहीं है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बट ये बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड है छुपा रुस्तम। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है, तो खींचता है इलेक्ट्रॉन को, ये खींच लेगा अपनी तरफ, O पे नेगेटिव एंड C पे पॉजिटिव, और जब भी आएगा C पे पॉजिटिव तो दिस विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, पूरा ग्रुप विल बिहेव लाइक, ठीक है। अब देखो, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहते हैं, दे वांट टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब खींचना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और EWGs। और जो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, डोनेट, तो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और EDGs। क्या बोलेंगे उनको, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या विड्रॉ करते हैं। कैसे पहचानना है सर,
अगर किसी स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अगर उस पर प्लस चार्ज है या कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है कार्बोनिल ग्रुप, प्लस चार्ज नहीं भी दिख रहा है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप दिख रहा है आपको, तो क्या होगा वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। क्लियर है बात? am I क्लियर? चलिए अगला है आपका कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। पहले हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन शांति से नहीं बैठता है ना कि चिल बैठे हुए अपना आराम से, ऐसे नहीं बैठता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर ही अंदर घूम फिर रहा होता है। तो होता क्या है कि व्हेन यू हैव सिग्मा बॉन्ड्स, मान लो कि ये मेरे पास ऐसा स्पीशीज, हाइड्रोजन लगा लेना अपने से ना, हाइड्रोजन का चुनिए। द एक्स इज लेट्स से हैलोजन, ठीक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो क्या होगा देखो यहाँ पर, ये क्या होगा ना, ये एक्स जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचता है ऐसे करके, ऐसे खींचता है। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया भाई, तो ये अगले वाले खींचेगा, पर तो उतना स्ट्रांगली नहीं खींच पाएगा, तो थोड़ा कम स्ट्रांगली खींचेगा। अब ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो ये भी खींचेगा, बट ये थोड़ा और कम खींचेगा। ये वाला भी खींचेगा बट थोड़ा और कम खींचेगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोलराइजेशन मतलब कि पुलिंग, पोलराइजेशन मतलब होता है खींचना, पोलराइजेशन मतलब होता है खींचना, ठीक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं एंड थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड खींच रहे हैं। बड़े सिग्मा बॉन्ड देखो ध्यान में, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में पहला सिग्मा दूसरा पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में फर्स्ट सिग्मा बाकी दो पाई होते हैं, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, यस रोहित, व्हाट इज योर डाउट, क्या डाउट है आपको? चैट ओपन है, वहां लिख सकते हो आप। चैट ओपन नहीं है क्या? चैट ओपन कर देता हूँ, लिखो लिखो क्या डाउट है, से परेशान हो, लिखो। तब से इतनी बार हैंड रेस किया इसने ना, क्या बोलूंगा? 1 more hand raise from you, रोहित, थोड़ा बाहर जा रहा है। तब से हैंड रेस चैट भी ओपन किया कि आस्क डाउट, वहां भी कुछ नहीं पूछा है, 5 बार हैंड रेस कर दिया पिछले 10 सेकंड में, इसका बिन द क्लास। तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है किसमें, एक्स और सी में, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, पोलराइज हो रहे हैं, ठीक है, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। एंड आई इफेक्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट इफेक्ट, मतलब ये नहीं कि किसी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को देख कर ये इफेक्ट होता है, किसी बाहरी की वजह से इफेक्ट नहीं होता है, बाहर से कोई आया या गया उससे फर्क नहीं पड़ता इस इफेक्ट, ठीक है। ये अपना अंदर परमानेंटली होते रहता है, जब तक ये एक्स यहाँ पर रहेगा ये इफेक्ट परमानेंटली होते रहेगा। ऑल्सो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब जितनी दूर जा रहे हैं आप इसका इफेक्ट कम होती जाएगा, इफेक्ट कम होती जाएगा। देखिए पहले वाले पे मैक्सिमम इफेक्ट है, दूसरे वाले पे थोड़ा कम, तीसरे पे थोड़ा कम, चौथे पे और कम, पांचवे पे और कम, ठीक है। अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं फ्रॉम द कार्बन चेन यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। बहुत बार क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पुश होंगे इन द चेन, ठीक है, उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। अब ध्यान देना इस बात पे
अगर माइनस आई इफेक्ट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। ध्यान रखने का, याद कर लो। बेसिक में उल्टा कर देंगे, बेसिक में उल्टा कर देंगे। ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अब प्लस आई माइनस आई के लिए ये ग्रुप्स हैं आपके पास, ये ग्रुप्स हैं, दे विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ माइनस आई एंड प्लस आई। कौन कितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करता है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग प्लस आई शो करता है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। आई एम मार्किंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है, जिनको आपको याद करना है, ये सब याद कर लेना, इनका ऑर्डर याद कर लेना, जो कॉमनली सीन होते हैं, इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये इनको याद कर लेना कम से कम, बाकी आप छोड़ सकते हो। यहाँ पूरा याद करना ऑर्डर प्लस आई। हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट इज डन। लेट्स कम बैक टू आपका रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? देखो, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, पाई मतलब वही सिग्मा के अलावा जो होता है ना, पाई पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है बहुत ही अनस्टेबल। तो अनस्टेबल नहीं बोलेंगे उसको, बहुत ही चंचल स्वभाव का, मतलब उसको घूमना फिरना पसंद, ठीक है। तो इट वांट्स टू डीलोकलाइज, इट वांट्स टू डीलोकलाइज। तो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस इज द delocalization of pi electrons due to conjugation, due to conjugation। conjugation मतलब होता है मुहूर्त। व्हाट इज conjugation सर? मुहूर्त। शादी तभी होगा जब मुहूर्त बनेगा, ठीक है। मान लो कि घर का हाउस वार्मिंग सेरेमनी करना है, कब होगा? मुहूर्त पे। ये कब होगा? मुहूर्त। सब कुछ मुहूर्त पे होता है हमारे समाज में, सब मुहूर्त पे होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस कब होगा? मुहूर्त पे होगा। मुहूर्त तो क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन। मुहूर्त तो क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसा कैसा किस टाइप का होता है सर? जैसे मुहूर्त भी होता है ना, बहुत तरह का मुहूर्त होता है कि आज तो पूर्णमासी है, आज ये है, फलान दिन का। तो कॉन्जुगेशन भी बहुत तरह का होता है। पहला है पाई सिग्मा पाई। अगर पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बैक टू बैक आ जाए तो कॉन्जुगेशन बनता है। दूसरा, अगर पाई सिग्मा लोन पे आ जाए बैक टू बैक तो कॉन्जुगेशन बनता है। पाई सिग्मा वेकेंट पेयर बाइटम क्या होता है सर? प्लस चार्ज तो बोलते हैं, ये रिपीट कर दिया दोबारा। और आपका लास्ट में लोन पेयर सिग्मा प्लस चार्ज, ये बैक टू बैक, ये चारों अगर हो जाए, चारों में से कोई भी एक हो जाए तो क्या बोलेंगे? उसको कॉन्जुगेशन। और तब रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करेगा। कैसे करेगा सर? दिखाता हूं तुमको, एक दिखाए। ऑल्दो अब तक आपने देख लिया होगा, फिर भी देख लीजिए। तो लेट्स टेक क्लोरोबेंजीन, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। अब क्या होता है देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, कंटिन्यूड कॉन्जुगेशन। तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदेगा, इसके यहाँ कूदते ही दिस कार्बन विल हैव, दिस कार्बन क्या बोलते हैं, विल हैव 5 बॉन्ड्स नाउ। तो पॉसिबल नहीं है, तो दिस पाई बॉन्ड विल मूव हियर। तो क्या बनेगा देखो, क्या बनेगा देखो, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे प्लस चार्ज, ऐसे हो गया। नाउ अभी भी रुकेगा नहीं, देखो अगेन लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन तो अभी भी है, कॉन्जुगेशन तो अभी भी है। यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, क्या होगा देखो, यहाँ पे नेगेटिव, फिर देखो अभी भी कॉन्जुगेशन तो है ही, पाई सिग्मा पाई है, लोन पेयर सिग्मा पाई है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये जम जम करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, एंड नाउ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं मैं, ये तो यहाँ पे आया है ना, डबल बॉन्ड तो आएगा नहीं। नाउ दिस विल मूव हियर एंड दिस विल गो बैक टू वेयर इट वाज। क्या मिलेगा हमको?
जो था वही मिल जाता। These structures are called canonical structures और resonance structures। क्या बोलेंगे इनको? Canonical structures और resonance structures। क्या है ये? Resonance। ध्यान दीजिएगा, more resonance structures means more stability and vice versa। मतलब अगर दो स्पीशीज है जिनमें से एक के पास मान लो कि 3 RF है, एक के पास 5 RS है, 5 वाला इज मोर स्टेबल देन। क्लियर? क्लियर? तो यही आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, व्हाट इज रिलीज इफेक्ट, भूल जाओ इनको, मैं लिखा दिया। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है सर? मेसोमेरिक इफेक्ट इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में पुश करना या रिंग से कुछ पुल करना, रिंग या चेन। मान लो इसे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन में क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में पुश कर रहा है। क्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में पुश कर रहा है। कैसे? देखो यहाँ पर कैसे, यूजिंग रेजोनेंस पुश कर रहा है ना जी। कैसे कर रहा है? यूजिंग रेजोनेंस कर रहा है। तो इस ये क्या है? इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। नाउ मेसोमेरिक इफेक्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, प्लस एम एंड माइनस एम। अगर कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इन द रिंग तो प्लस एम बोलेंगे उसको, पॉजिटिव मेसोमेरिक। और अगर वो पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द रिंग और द चेन तो बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट। एंड ऑन दिस बेसिस वी हैव 2 काइंड्स ऑफ ग्रुप्स, प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप्स। वहां पे लग गया भाई लिस्ट। ये प्लस एम प्लस आर एक ही बात है, ये ग्रुप्स हैं। लर्न देम, याद करना पड़ेगा इनको, याद करना पड़ेगा, याद कीजिए। ये आपका प्लस एम एंड प्लस आर एक ही बात है, प्लस आर हो या प्लस एम हो एक ही बात है। इनको लगाओगे यू विल सी की इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया जा रहा है इन द रिंग रेजोनेंस के थ्रू। इनको लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे ये लोग फ्रॉम द रिंग रेजोनेंस का यूज करते हुए, वैसे ही घुमा के 5 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया। नेक्स्ट वी हैव हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका एक और नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या होता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे होता है आपको दिखा देता हूँ। रेजोनेंस आ जाइए, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम टॉलिन का। टॉलिन क्या होता है? टॉलिन इज बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा होता है, टॉलिन बोलते हैं। CH3 एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन टू टेक प्लेस, ध्यान रखना, देयर शुड बी आपका अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? देखो, द कार्बन नेक्स्ट टू द मेन नेक्स्ट द रिंग, रिंग के बगल का कार्बन या फिर प्लस चार्ज माइनस चार्ज के बगल का कार्बन, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं उसको? अल्फा। ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, अपन को अल्फा हाइड्रोजन मांगता, ठीक है, क्लियर? ये होना ही चाहिए, नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। क्यों चाहिए सर? देखो बता रहा हूँ। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा? देखो, अभी रेजोनेंस कहाँ हो रहा है? अंदर अंदर हो रहा है, अंदर अंदर हो रहा है, घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन को लालच आ गया, बोला भाई इससे बहुत स्टेबिलिटी मिलता है रेजोनेंस से। एक काम करता हूँ, इस हाइड्रोजन को गोली मार देता हूँ, तो इसको भगाओ यहाँ से, ये मेरा बॉन्ड फ्री होगा, इससे मैं अंदर भेजकर इसको इस रेजोनेंस का हिस्सा बन जाता, क्योंकि उससे आता है इमेंस स्टेबिलिटी, बहुत स्टेबिलिटी मिलता है रेजोनेंस से, ठीक है। क्या होगा? इमेंस स्टेबिलिटी मिलेगी। क्लियर है? तो ये क्या करता है? ये बोलता है कि भाई हाइड्रोजन थोड़ा साइड साइड हटो तुम, लेट मी एंगेज माई सेल्फ इन द ब्यूटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन।
क्या होगा देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया CH2 और ये होगा प्लस, बिकॉज अपना इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया बेचारा। अब इसके यहाँ पे आने से इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद गया इसका, ठीक है, जस्ट लाइक इन द प्रीवियस केस। और यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन अभी बेचारा यहीं घूम रहा है, मालिक हमको क्यों निकाल दिया, बट मालिक इज नॉट बॉदर, मालिक इज एंजॉयिंग द रेजोनेंस। अभी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, वही वही सेम कहानी, अब रिंग में वही होगा जो पहले हुआ था। वही होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। नाउ ये वाला यहाँ पे आया, ये वापस चला गया जहाँ पे, व्हाट वी गॉट पहले था वही वापस मिल जाएगा, यही वापस मिल गया पहले था, बट मिल तो गया, बट ये सब कुछ करने के बाद तो रेजोनेंस हुआ, 5 डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, और इसके वजह से इमेंस स्टेबिलिटी। अब ये काम तो एक किया है अकेला, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो 15 बार ये होगा, तो 15 डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ध्यान रखिएगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन मतलब मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब मोर स्टेबिलिटी, ध्यान रखें। क्लियर बात। अब ये थ्योरी यहाँ पे गिवन है, आप पढ़ सकते हैं इसको। अब आइए फंक्शनल ग्रुप्स पे, अब ये लिस्ट वगैरह दिया है यहाँ पर, ऑल्दो मेरे पास एक और लिस्ट है, ये देखिए, इस फंक्शनल ग्रुप्स हैं सारे प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें ज्यादा प्रेफर्ड ये वाला है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये वाला, इस ऑर्डर में गिवन है। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, ठीक है, ठीक है, ये सब आप रीड कर सकते हो ना, गो थ्रू दिस। नेक्स्ट है आपका सिस ट्रांस आइसोमर्स, ध्यान देने का, सिस ट्रांस देखो, ये देखो, इसको बोले ए, इसको बोले बी, और देखो, इसको सी बोला, इसको डी बोला। अब पहले बात, कंपेयर करो ए और बी को, ए एंड बी फर्स्ट। आर ए एंड बी द सेम और डिफरेंट, बताओ। जिनको लगता है कि ए और बी सेम है या डिफरेंट है, इनको लगता है डिफरेंट है, गिव मी थम्स अप। जिनको लग रहा है कि डिफरेंट है,
गलत लग रहा है, गलत लग रहा है आपको? सेम है, दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम। क्योंकि देखो ऐसा मानो, देखो ये दोनों CH3 है ऐसे करके, ठीक है, दोनों CH3 ऐसे, ये A हुआ, दोनों CH3 ऊपर ऊपर। अब सुनो मेरा बात, हो गया रिस्पॉन्स देख लिया मैंने, लिसन टू मी, लिसन टू मी। अब मुझे A से B करना है अगर, तो सिंपली मैं ऐसे रोटेट करूंगा, A से B हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? A से B हो गया। बट अगर C है मान, अच्छा तुम बताओ, C एंड D किनको लगता है कि सेम है? हम सब करो। जिनको लगता है सेम है, आप गलत हो। अब सुनो बात, A एंड B आर सेम, बट C एंड D आर नॉट सेम। कैसे? देखो A एंड B, टू कन्वर्ट A into B, टू कन्वर्ट A into B, जस्ट नीड टू रोटेट दिस बॉन्ड लाइक दिस। घुमा दिया आपने, A से B बन गया। बट क्योंकि C एंड D में डबल बॉन्ड है यहाँ पर, आप रोटेट करने जाओगे टू कन्वर्ट C टू D, ये ब्लॉक हो जाएगा। You see here, you're not able to rotate this. So the double bond, pi bond allows partial rotation. Pi bonds allow partial rotation. Sigma bonds allow complete rotation. Single bond allow complete rotation. Pi bonds, double bond allow partial rotation. And that's why C and D are not the same. Even though their IUPAC name will be exactly the same. ये दोनों completely same है, identical, identical. But these two are not identical. They are known as geometrical isomers. Geometrical isomers. They are both geometrical isomers. दोनों का नाम जो है, the both will have same IUPAC name, which is butene. निकाल लो चाहो तो, दोनों का नाम butene होगा। बट ये वाला जो है, इसके इक्वल नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग सिस ब्यूटूइन। क्या बोलेंगे इसको? सिस। और इसको बोलेंगे ट्रांस। सिस क्यों सर? बिकॉज सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन दी सेम साइड, सेम साइड पे। और अगर आपका सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड पे हैं, तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। अगर आपके डबल बॉन्ड को काटो बीच से, ऐसे डबल बॉन्ड को ऐसे काट दो बीच से, अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हैं, देन वी कॉल इट सिस आइसोमर। अगर अपोजिट साइड में है तो बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। तो ये क्या है? ट्रांस ब्यूटूइन है ये वाला। D इज ट्रांस ब्यूटूइन एंड C इज सिस ब्यूटूइन। ये होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस एंड ट्रांस। नेक्स्ट वी हैव सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अगर आप कंपाउंड में ऑल सिंगल बॉन्ड्स हैं, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, देन उसको अल्केन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन अगर है तो अल्केन बोलेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल, if all carbon carbon bonds are single, then we call it saturated compound. अगर एक भी बॉन्ड डबल है या ट्रिपल है, कार्बन कार्बन का बात कर रहा हूं, then we call it unsaturated compound. Clear? Next is catalysts. Catalyst क्या करते हैं? Catalysts are used to increase the rate of the reaction. अगर रिएक्शन हो रहा है ना, मान लो 10 सेकंड में हो रहा है, तो 5 सेकंड में करवा देंगे। कैटलिस्ट ऐसा नहीं करता है कि रिएक्शन नहीं हो रहा है उसको करवा दें। कैटलिस्ट कैन ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है देखो, फॉर एनी रिएक्शन ये होता है ग्राफ इसका। ये रिएक्टेंट है, एनर्जी लेवल, एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, और ये रिएक्शन हो रहा है, जैसे आगे बढ़ रहा है रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट सीधा। कोई बोलेगा सर आराम से इजीली हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं सिंपल, बट ऐसा होता नहीं। वी हैव टू क्रॉस एन एनर्जी बैरियर, इसके बाद यहाँ पहुंचते हैं। दिस बैरियर इज कॉल्ड
एक्टिवेशन एनर्जी EA, ये विदाउट कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट लगा दोगे ना तो कैटलिस्ट क्या करेगा पता है, कैटलिस्ट विल लोअर दिस एनर्जी बैरियर। तो यहां से बोलेगा ठीक है वी हैव टू गो, बट थोड़ा ऊपर कम जाना पड़ेगा, बोलेगा ठीक है यहीं से गाड़ी घुमा लो। इट विल गिव यू एन ऑल्टरनेट पाथवे विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक जो है ना, नीचे कर दो। दिस रेड वन इज विद कैटलिस्ट, ग्रीन वन इज विदाउट कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट क्या करते हैं, दे विल प्रोवाइड यू एन ऑल्टरनेट पाथवे with lower activation energy and thereby reducing the speed, thereby reducing the time of the reaction. And catalyst will themselves remain unchanged. खुद ब खुद कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन का, कैटलिस्ट नेवर गेट कंज्यूम, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर ऐसे ही आपको जैसे आपने डाला था वैसे आपको वापस मिल जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आपका एक कॉमन सा क्वेश्चन लेते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे। आपका ये हो गया, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल मतलब क्या, एक क्वेश्चन लेते हैं आईयूपीएसी के ऊपर, जिससे आपको मैं रिवाइज कराता हूँ आईयूपीएसी नहीं कैसे। देखो, फॉर नेमिंग एनी आईयूपीएसी एनी कंपाउंड there is a format is secondary prefix, then we get the primary prefix, then we get the word root or root word, then we get the primary suffix, and then we get the secondary suffix. Each part has its own role to play. First, let's come to this secondary prefix. This will tell you about the substituents. What are these? I'll explain later. This will tell you if the compound is cyclo or not. Cyclic or not. Cyclo or not. Cyclo or not. This will tell you the number of carbon atoms in the main chain. अब तो पता होगा भाई मेन चेन खोलना पड़ता है एक नेमिंग करने के लिए, मेन चेन में कितने कार्बन है वो बताएगा आपको वर्ड। प्राइमरी सफिक्स विल टेल यू अबाउट सैचुरेशन, कि ऑल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, एक डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। एंड देन कम्स द सेकेंडरी सफिक्स, दिस विल टेल यू अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। सबका अपना पार्ट है, अपना काम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड रूट की बात कर लेते हैं। वर्ड रूट के लिए इफ यू हैव ओनली वन कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन का बात हो रहा है, और यहाँ पे वर्ड रूट। वन के लिए होता है मिथ, टू के लिए होता है इथ, थ्री के लिए होता है प्रॉप, फोर के लिए ब्यूट, पेंट, एक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, then we have 12 पे dot. That will be it. This अधिक requirement नहीं होगा. You can take a screenshot if you want. Be quick. तो word root हो गया. Now functional group के लिए the secondary suffix is given in the list. यहाँ पे you can see the list for secondary suffix. यहाँ पे देखो सब लिखा है, all, whole, on, सब लिखा हुआ मैंने. Oic acid, oic anhydride, सब लिखा है. You can check the list for the secondary suffix. ये हो गया, ये आपको लिस्ट से मिल जाएगा, ये मैंने आपको दे दिया है, ये वाला ऑलरेडी क्लियर है। ये साइक्लो लगाना नहीं लगाना है, ये साइक्लिक कंपाउंड है तो लगाओ, ये तो मत लगाओ, ठीक है, ये भी क्लियर है। ये वाला अभी
एग्जांपल करते हुए दिखा, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, ठीक है, इसको नेम करते हैं। देखो पहला काम, फर्स्ट थिंग इज टू गेट द मेन चेन। मेन चेन के लिए यू मस्ट रिमेंबर दैट यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप and try to introduce or try to include as many double bonds and triple bonds as possible while keeping the chain the longest. सारा काम करना है, ठीक है। First priority is always given to functional group, always, both while choosing the longest chain and while numbering the longest the chain, the numbering the main chain. Functional group will always be getting the highest priority. Then priority will be given to double bond, triple bond, and then priority will be given to locants. What are locants? Let me explain. So ये हो गया पहला बात, तो इसको तो इंक्लूड करना ही करना है। ये वो नंबर 1 होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है आपको, देयर इज नो अदर लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबिलिटी हियर। तो लेट्स नंबर इट ऑन द स्पॉट। सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Whatever is not there in the main chain is known as substituent or locant. ये सब नहीं है, ये नहीं, इनको क्या बोलेंगे आप? locant बोलेंगे। So always remember this, while choosing the main chain always choose the functional group, okay, and उसको होना ही होना पड़ता। and while numbering make sure that the functional group gets the lowest number। यहाँ पे 1 मिल सकता था, लोएस्ट 1 दिया, ठीक है। अगर मान लो 2 लोएस्ट मिल सकता है, 2 लोएस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि इफ द फंक्शनल ग्रुप डज नॉट हैव अ कार्बन लाइक OH, तो वो जिस कार्बन से लगा हुआ है, OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन को लोएस्ट आपको देना है। दैट कार्बन बिकम्स इंपॉर्टेंट, दैट कार्बन इज द प्रायोरिटी। तो फंक्शनल ग्रुप इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी both while choosing the main chain and while numbering also. Numbering is done now. Let's now see. First thing is to name the substituents, the secondary prefix. So at 5 we have ethyl, at 3 also we have methyl. 5 we have ethyl, this is called ethyl. Methyl, sorry, 5 पे methyl, 3 पे methyl and 2 पे ethyl. Why ethyl? 2 carbons, okay, 2 carbons and basically substituents. So ethane नहीं बोल सकते हैं उसको, ethyl बोलेंगे, because ethane is C2H6. This is not C2H6, this is C2H5. If you see here, ये CH2 है, ये CH3 है, तो C2H5 बनेगा, not C2H6. तो इथेन नहीं है, इथाइल है। तो 2 पे इथाइल and then 3 and 5 पे मिथाइल। So 2 पे इथाइल and 3,5 dimethyl. Also note this thing, while writing the locants, substituents, locant and substituent mean the same thing. Locant and substituent means the same thing. Okay? So while writing the locants, okay, make sure to write them in the order of their alphabet. Write them in alphabetical order. E पहले आता है M से, तो मुझे लगा D पहले आता है। Di, tri, tetra, है ना? When we are using these prefixes, di, tri, tetra, they will not alter the alphabetical order. Note this. Di, tri, tetra are not the part of alphabetical order. They will not alter the alphabetical order. So compare M with E. Which comes first? E comes first. So E will be written first. So 2 ethyl, 3,5 dimethyl, 2 methyls. Now we are done with this part. We are done with the secondary prefix part. Coming to primary prefix. Okay. There is no cyclo here, so no cyclo will be written. There is no primary prefix here. Coming to word root, 8, so oct.
Coming to primary prefix, primary suffix, sorry, we have two double bonds, one at 3, next at 6. Note this, if double bond is between 3 and 4, then it is counted as at 3. तो 3 पे मानते हैं हम लोग, ठीक है. So we have 3 पे and we have 6 पे double bonds. So we have two double bonds. So we write diene. Again, di, tri, tetra will not disturb the alphabetical order. Now we have the secondary suffix, functional group. The word root, the suffix for COOH is basically, you see here, is oic acid. Oic acid. So we will use this oic acid. So oic acid at 1. So 1 oic acid. Okay. Now note this thing that 1 is optional. You can either keep 1 or remove 1. So this is optional. Keeping 1 is optional. Not only in this case, in any case. अगर 1 आ रहा है तो you can remove 1. Keeping 1 is optional. But remember this thing that these 6 letters A, E, I, O, U and Y, these 6 will not come back to back. They will never come back to back in a organic name. Okay. If you see here, E and O are coming back to back. This is not possible. This is not correct. So remove this E. Always remove the before one, the earlier one, the preceding one. तो जो पहले आ रहा है उसको हटा दीजिए. जब भी ये 6-7 में दिख रहा है आपको, पहले वाले को रिमूव कर देना. Okay. So 2-ethyl 3,5 dimethyl oct 3,6 dienoic acid. 1 you can keep or you can remove. It is optional, completely optional. But removing this E is compulsory because these 6 letters will never come back to that. पहले वाले को जाना पड़ेगा always. Clear है बात? This is one example of how to name organic compound, and this is a very decent example. Not very tough, not very easy, a very decent example. Okay. These are all the rules written. You can go through them once you have the PDF. Okay. Next, we have the important chemical reaction. So now we are going to discuss the named reactions. अब बात आ गया named reaction. हमारे पास we have a few named reactions to discuss. By few I mean 36 in total. 36 in total. So before we get to that, we will have a short break, and that will be the final session of our final leg of our session. Okay. I have already written the reactions. I will just go through them, and then I will provide you the reactions. These are the reactions. I have written them already. Okay. I'll provide you with the. I'll explain it to you all of this, and then I will provide you this PDF along with this PDF. ये PDF भी मिल जाएगा आपको, इसमें मैं सब कुछ लिखा है मैंने. ये भी मिल जाएगा आपको, ये भी मिल जाएगा आपको. Don't worry, सब मिल जाएगा. But listen to me carefully. There are a few reactions which have been done differently in the PDF, in the main PDF. So you can prefer my PDF, this written 100 PDF for organic reaction. Reaction के लिए आप इस PDF को prefer करेंगे, ठीक है? ये कहीं-कहीं पे printing error हो गया है in this PDF. So all the reactions in this PDF are there in this PDF. Don't worry. कुछ extra ही होगा, कम नहीं होगा. Don't worry. So let's have a break till 14:50. At 50, we will be back with this chapter, with this last remaining portion, and then we will wrap up the class. Have a break.
Okay, so am I audible and visible clearly? Okay. So how do we approach this part? Is see, we have to learn all the reactions. इतना तो clear होना चाहिए. And the thing is, I have already written everything. Okay, your reaction, your example, everything is written. So I'll just go through them, है ना, quickly overview. ठीक है, उसके ऊपर. And जहाँ पे बहुत सिंपल है रिएक्शन, वहां पे मैं स्क्रीन नहीं करूंगा, जस्ट आई गो थ्रू. एंड जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जैसे अल्डोल आएगा, कानिजारो आएगा, वहां पे आई एक्सप्लेन. ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी एज इट इज. यू विल लर्न इट. हाउ टू लर्न फॉर रिएक्शन. बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हाउ टू लर्न ऑर्गेनिक रिएक्शन. सो राइटिंग इज द की. आपको लिखना पड़ेगा. आप बस देखोगे तो देख के नहीं होता है. पेन उठाइए और ट्राई करिए कि हैव अ ब्लैक बोर्ड. और हाँ, ब्लैक बोर्ड तो नहीं होगा, व्हाइट बोर्ड अगर है आपके पास, या फिर आईपैड है अगर. ठीक है, कोई टैब है आपके पास. हाँ, तो आप उस पर बार बार लिखो. 5 रिएक्शन याद कर लिया आपने पीडीएफ से, लिख लिख कर, फिर उसको छुपा दो पीडीएफ को. फिर वहां से अपना खुद लिख. ट्राई करो कि एज इट इज आप लिख पाओ. नहीं हो पा रहा है, देन गो बैक. कहाँ पे दिक्कत है उसको देख. ऐसे करना होता है रिएक्शन के. फर्स्ट वी हैव द फिंकलस्टीन रिएक्शन. फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स दोनों को बोलते हैं हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली हैलोजन एक्सचेंज होता है. Rx goes to Ri. X can be Cl और Br. ठीक है, मतलब कि आपके पास या तो Rx यानी कि RCl होगा. R is basically nothing but अल्काइल ग्रुप. ठीक है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब. ठीक है, तो R is that. तो Rx यानी RCl जो भी है आपका, RCl या RBr, मान लो CH3Br, CH3Cl, वो सब. एंड यू टेक NaI ओवर एसीटोन. और एसीटोन CH3 COCH3, इसको बोलते हैं एसीटोन. और DMSO. DMSO में क्या होगा, इन प्लेस ऑफ दिस C यू विल हैव S, बोलते हैं DMSO. ठीक है, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड. तो यहाँ पे X विल बी रिप्लेस्ड बाय I. X को I रिप्लेस करेगा. यहाँ पे देखिए आप, whatever species you have, just remove the Cl, add I. When you add NaI over dry, ये हो गया आपका फिंकलस्टीन. अब आ जाइए स्वार्ट्स के ऊपर. स्वार्ट्स में इसे यहाँ पे आयोडाइड बन रहा है. If you see closely here, you are getting iodide. In case of Swartz, you are getting fluoride. So take Rx. Now X here can be Cl, Br or I. ठीक है, तो take any inorganic fluoride, AgF, SbF3, CuF3, Hg2F2. इनको ले लो, कोई भी एक ले सकते हैं आप. ले लोगे तो this X will be replaced by F. Basically, one halogen is going, another one is coming. So इसीलिए the Finkelstein and Swartz reaction are also known as आपका halogen exchange reactions. यहाँ लिखा भी हुआ, I को AgF लगा दिया तो I has been removed और यहाँ पे F आ गया. 1 and 2 are called halogen exchange reaction. Next we have Itard reaction. Itard में क्या होगा, take toluene, take CrO2Cl2 in presence of CH2. ठीक है, ये लिया आपने, you will get this complex. इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. एंड देन यू एसिडिफाई दिस. अब एरो पे H+ लिखा होगा या HCO+ लिखा होगा, या फिर आपका H2O विद एसिड लिखा होगा, या तो ये लिखा होगा, या फिर आपका H2O विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 या H2SO4 लिखा होगा. मतलब बेसिकली या तो H+ लिखा होगा या HCO+ लिखा होगा या H2O along with any dilute acid लिखा होगा. तो आपको क्या करना है, you have to acidify this, remove everything else, पूरा रिमूव कर देना है. जस्ट ऐड 1 O, you will get this and this is called benzaldehyde. ये पूरा रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वुड्स रिएक्शन. हम ध्यान देना इसके ऊपर. Rx, ठीक है, यू हैव अल्काइल हैलाइड, साथ में Na ओवर ड्राई ईथर लगा दोगे, यू विल गेट अल्केन. कैसे होता है सर ये काम, आपको लेना होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Rx. यहाँ Rx लगा दिया, एक Rx यहाँ लगा दिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na लगा दिया. Now this Na will take the X with itself, 2 NaX बना देगा साइड में, और R और R जुड़ के they will become RR अल्केन बन जाएगा. क्लियर है बात? एग्जांपल देखो आप, क्वेश्चन में आपको 2 मॉलिक्यूल नहीं देगा. नोट दिस, आपको सिंपली ऐसे दे देगा, ये दे देगा और पूछेगा कि व्हाट इज द आंसर.
आपको ये देकर बोलेगा व्हाट इज द आंसर, तो कुछ नहीं करना है, इनको लेकर जोड़ दो, आर आर कर दो, आर आर कर दो, आंसर। क्लियर। अगला है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग में वुड जैसा ही होता है, बट यहाँ पे यू आर यूजिंग रिंग इंस्टेड ऑफ आर। तो ये क्या है, अराइल हलाइड। क्या है, अराइल। वहां कहता है अल्काइल था, जब सिंपल चेन होता है ना उसको बोलते हैं अल्काइल हलाइड। ठीक है, ये क्या है, अराइल हलाइड। ठीक है, रिंग है बेसिकली। तो रिंग लिखा होगा या फिर पीएच लिखा होता है, पीएच इज बेसिकली फिनाइल ग्रुप। ये रिंग को फिनाइल भी बोलते हैं, रिंग को फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, CH3X भी बोलते हैं उसको, C6H5, इसको फिनाइल बोला जाता है या अराइल बोला जाता है, AR, दोनों एक ही बात है। ये आपके पास होगा। अलॉन्ग विद दैट अगेन Na ओवर ड्राई ईथर सेम काम करेगा, दो रिंग को जोड़ देगा, दो रिंग को जोड़ देगा। तो मेथड क्या होगा, वैसा ही जो प्रीवियस मेथड था वैसा ही यहाँ भी काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पे वुड्स और फिटिंग का कॉम्बिनेशन, वुड्स में क्या था, अल्काइल हैलाइड था, फिटिंग में क्या था, अराइल हैलाइड था, दोनों को जोड़ देना है। तो Na आएगा बीच में, 2Na आएगा बीच में, 2X निकाल के ले जाएगा यहाँ से, एंड यू विल गेट दिस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यू विल गेट अल्काइल बेंजीन। इतना क्लियर है सबको अब तक? डोंट वरी, अभी नोट करने का हड़बड़ी मत लो, है ना, सब नोट मिल जाएगा, समझो बस ऐसे। अगला है कोलब्रुक रिएक्शन, वेरी फेमस, वेरी कॉमनली आस्क्ड। इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली लेना है फिनॉल। व्हाट इज फिनॉल सर? बेंजीन रिंग पे OH लगा होता है। नाउ दिस OH ब्रेक्स इनटू O- and H+. व्हाई? बिकॉज ऑफ NaOH, NaOH साथ में लगा होता है, NaOH साथ में देना होता है, इसमें फिनॉल के साथ NaOH डालना पड़ता है। ठीक है, तो दिस NaOH ब्रेक्स इनटू Na plus OH- and this break। ठीक गाइस, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट? ऑल्सो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन एड। आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you go. into O- H+. सिंपल है, H+ and OH- मिलकर बनाएंगे वाटर, एंड दिस Na+ will attach to O-। ये बन गया सोडियम फेनॉक्साइड आयन। क्या बन गया? सोडियम फेनॉक्साइड आयन। नाउ आप CO2 एंड H+, पहला स्टेप में CO2 ऐड करोगे, दूसरे स्टेप में एसिडिफाई करोगे। जब भी लिखा हो H+, मतलब कि एसिडिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एसिडिफाई। तो H+ दे दिया हमने, यू आर गेटिंग दिस। इसको बोलते हैं O सैलिसिलिक एसिड। O क्यों बोला सर? O मतलब ऑर्थो। व्हाट इज ऑर्थो? मेन ग्रुप यहाँ पे COOH है। ठीक है, मेन ग्रुप COOH है, आप लिस्ट चेक कर लो। COOH इज द प्राइमरी, सबसे ऊपर है ना, OH तो बहुत नीचे आ रहा है, अल्कोहल तो बहुत नीचे आ रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में दीज टू पोजीशंस, जो मेन ग्रुप होता है ना, उसके रिस्पेक्ट में राइट एंड लेफ्ट पोजीशंस आर नोन एज ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद दो मेटा होते हैं, फिर एक पैरा होता है। क्लियर है? तो OH कहाँ लगा हुआ है? ऑर्थो पे लगा हुआ है, इसलिए वी कॉल इट ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ये बन गया आपका कोलब्रुक रिएक्शन। क्या हो गया? कोलब्रुक रिएक्शन। अगला है सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब सैंडमेयर के पहले वी हैव टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज डायअज़ोटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डायअज़ोटाइजेशन। उसके लिए वी नीड एनिलीन। व्हाट इज एनिलीन सर? आपको लेना है बेंजीन का रिंग, उस पे लगा हो NH2, तो उसको बोलते हैं एनिलीन, तो बोलते हैं एनिलीन। और इसके बाद आपको लेना है NaNO2 विद HCl। ठीक है, HCl लेना है। टेम्परेचर शुड बी, टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। टेम्परेचर शुड बी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और 273 to 278 केल्विन। उससे क्या होगा? यू विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स, ये मिलेगा। दिस इज नोन एज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अगर HCl लोगे तो यहाँ क्लोरीन होगा, HBr लोगे तो ब्रोमीन होगा, और I लोगे तो HI लोगे तो I होगा। बेसिकली ये जो फैमिली है इसको बोलते हैं डायअज़ोनियम सॉल्ट्स। अगर यहाँ पे मान लो ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो पूरा फैमिली बन जाएगा ना, ब्रोमीन भी होगा, आयोडीन भी होगा, क्लोरीन भी होगा, तो उनको एज अ फैमिली हम लोग रेफर करते हैं एज डायअज़ोनियम सॉल्ट्स। ये बन गया आपका BDC। क्या बन गया? BDC। दिस रिएक्शन, ये पूरा यहां से यहां तक, यहां से यहां, इट इज नोन एज डायअज़ोटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डायअज़ोटाइजेशन। ये वाला सैंडमेयर नहीं है, सैंडमेयर अब होगा, सैंडमेयर अब होगा। अब इसको, नाउ इफ यू टेक दिस एंड मेक इट रिएक्ट विद Cu2Cl2, you will get chlorobenzene। ये पूरा रिमूव हो जाएगा, you will get chlorobenzene। if you make it react with Cu2Br2, ये पूरा रिमूव हो जाएगा, you will get bromine।
you make it react with CuCN, you'll get Cn, साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल। एक ही बात का नाम क्या है, साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल। ये जो रिएक्शन हो रहा है आफ्टर दिस, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं हम लोग सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्लियर है बात? यहाँ पे दो रिएक्शन आपको मिल गए, जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राइमर टाइमर रिएक्शन, वेरी फेमस। फिनॉल लेना है, along with that take CHCl3, बेसिकली क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। और साथ में KOH लेना है। यू विल गेट टू थिंग्स, O salicylic और P salicylic। Now P1 is minor and O1 is major। इसका O क्यों मेजर होता है, ये बात आपको पता चलता है इन द मैकेनिज्म, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस याद कर लेते। ठीक है, इसका नाम क्या है, राइमर टाइमर रिएक्शन। अगला क्या है, रोजेनमंड रिडक्शन। तो आपको लेना है पहले कोई एसिड क्लोराइड। क्या है, एसिड क्लोराइड बोलते हैं इसको। आप एसिड लो, ठीक है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लो, उसमें से आप OH निकाल दो और कोई हैलोजन लगा दो, कोई हैलोजन लगा दो, उसको बोलेंगे आपका एसिड हलाइड्स। ठीक है, और अगर वो हैलोजन Cl हो, क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड बोलेंगे। एसिड क्लोराइड ले लिया आपने, and add H2 in presence of PD over BSO4। Now PD over BSO4 is a very strong reducing agent। क्या है ये, strong reducing agent। तो क्या करेगा ये, इसको रिड्यूस कर देगा from acid chloride to aldehyde। You can even check the list here। कहाँ चला गया, कहां से कहां आ गए हम लोग आ गए हैं एसिड हलाइड से लेकर के कहां पर हम लोग आ गए हैं आपका, एल्डिहाइड। यहां से सीधा सीधा यहां नीचे आ चुके हैं, मतलब रिडक्शन। इस लिस्ट में नीचे आने का मतलब है रिडक्शन, ऊपर जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन। इस लिस्ट में नीचे आने का मतलब है रिडक्शन, ऊपर जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे रिडक्शन। तो क्या बोलेंगे इसको, रोजेनमंड रिडक्शन बोलते हैं। अगला है गैटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें लेंगे बेंजीन रिंग और साथ में लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड अलॉन्ग विद HCl गैस एंड एनहाइड्रस AlCl3। अब ध्यान रखिएगा, जब भी एनहाइड्रस AlCl3 होगा, यू शुड नोट दिस दैट दिस विल ऑलवेज ऐड समथिंग, कुछ ना कुछ ऐड कराता है। ठीक है, तो इस बार क्या ऐड कराएगा, इस बार इस रिंग में CHO ऐड करा देगा। एंड वी नो जब CHO ऐड होता है बेंजीन में तो बेंजल्डिहाइड, इसको बोलेंगे गैटरमैन कोच रिएक्शन। अगला है स्टीफेंस रिडक्शन। तो आपको लेना है नाइट्राइल RCN, साथ में लेना है SnCl2 प्लस HCl इन स्टीम मीडियम, स्टीम में होगा ये रिएक्शन। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू RCHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। कैन चेक द लिस्ट आल्सो। कहां से आ रहे हैं हम लोग आ रहे हैं साइनाइड से, मतलब नाइट्राइल से। नाइट्राइल से कहां आए हम लोग, नाइट्राइल से आ गए एल्डिहाइड। तो ये भी क्या है, नीचे आ रहे हैं लिस्ट में, नीचे आ रहे हैं तो रिडक्शन। नेक्स्ट वी हैव क्लेमेंसन रिडक्शन। अब देखो क्लेमेंसन एंड योर नेक्स्ट है वुल्फ किश्नर, दोनों में सेम काम होगा। योर कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, ये आइदर एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अगर दोनों तरफ R लगा होगा तो कीटोन होगा, एक तरफ R एक तरफ H लगा होगा तो एल्डिहाइड होगा। क्लियर है? आपका कार्बोनिल ग्रुप को इट विल कन्वर्ट इनटू अल्केन, बोथ द केसेस, क्लेमेंसन में भी और वुल्फ किश्नर में। क्लेमेंसन में भी, क्लेमेंसन देखिए, क्लेमेंसन में भी सेम काम होगा, ये यहां से यहां जा रहा है, और ये यहां भी सेम काम होगा, वुल्फ किश्नर में सेम काम होगा यहां से। फर्क क्या है सर, फर्क है इसके जो आपका कैटलिस्ट है, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, जो इसमें है ना रिएजेंट्स आप यूज कर रहे हो, उसमें फर्क। ये है जिंक अमलगम। अमलगम क्या होता है, अमलगम इज एन अलॉय ऑफ डिफरेंट मेटल विथ मरकरी। तो मरकरी के साथ अलग मेटल्स का अलॉय होता है आपका अमलगम, जिंक अमलगम है ये, अलॉन्ग विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बेसिकली मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम, क्योंकि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन कंसंट्रेटेड HCl। तो कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। यू टेक दिस एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू अल्केन, सिंपल। ये O निकल जाएगा यहां से, 2 H आके लग जाएंगे, 2 H आके लग जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पेंटेन 2 लिया मैंने, जिंक अमलगम, कॉन्क HCl, ये पूरा हट जाएगा यहाँ से, 2 H आके लग जाएंगे,
सिंपल पेंटेन बन जाएगा, एन पेंटेन। सेम काम होगा वुल्फ किश्नर में, बट यहाँ पे क्या है आपका जो चीजें हैं, जो रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट। बेसिकली आप लेंगे हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है? NH2 या फिर N2O4 भी लिखते हैं, N2H4, सॉरी O4 बोल रहा हूँ। NH2 बोलते हैं हाइड्राजीन। अलॉन्ग विद दैट इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, क्या होता है इथिलीन ग्लाइकॉल? CH2OH, CH2OH, इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। उसके साथ में एक बेस लेना पड़ेगा, जनरली NaOH या KOH लेते हैं, और हीट होगा। मतलब ओवरऑल ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, यही मेन फर्क है दोनों में। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाना है आपको, देन यूज क्लेमेंसन रिडक्शन, एंड इफ द रिएक्शन इज टू बी टेकन प्लेस इन बेसिक मीडियम, देन यू हैव टू यूज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, अगेन सेम पेंटेन टू ओन लेंगे आप, टेक हाइड्रोजीन, टेक इथिलीन ग्लाइकॉल, सिंपली ग्लाइकॉल भी लिखा रहता है बहुत बार, एंड NaOH along with heat, any base along with heat, this will go away and आपका सिंपल 2H आके लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड द वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लियर है बात? आ जाइए अब अगला हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखिए हैलोफॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म। CHX3 को बोलते हैं हैलोफॉर्म। अगर CHX3 है मतलब हैलोफॉर्म, CH और S की जगह पे यहाँ पे Br लगा दो तो बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म, Cl लगा देंगे बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, I लगा देंगे बन जाएगा आइडोफॉर्म। ठीक है, तो ये ग्रुप, ये रिएक्शन जो है तभी होगा जब ये ग्रुप होगा COCH3, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, एसी ग्रुप बोलते हैं। ये रहेगा तभी ये रिएक्शन होगा। ये टेस्ट रिएक्शन इज अ टेस्ट। रिएक्शन क्या है? टेस्ट है फॉर टेस्टिंग दी एसिटाइल ग्रुप। COCH3 को टेस्ट करने का काम आता है। ठीक है, तो वट एवर कंपाउंड यू हैव, यू वांट टू टेस्ट, add X2 in presence of base NaOH, you will get this, but ये मैटर नहीं है हमारा, मैटर है ये अगर बनता है, it confirms that the whatever compound you had, it contained this group, and this is called the haloform reaction. ठीक है, समझ गए बात? अगला है आपका बाल-स्कीमन रिएक्शन। बाल-स्कीमन, इसमें क्या होगा देखो, एक आपका ये है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, BDC, इसमें डालेंगे HbF4। ठीक है, क्या होगा? बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर एक F जाके यहाँ लगा देना है, यहाँ एक F सिंपली यहाँ पे लगा देना, इसको सबको रिमूव कर दो। यू नीड नॉट लर्न दिस, इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। पास में क्या होता है, जस्ट टेक द BDC, add HbF4 in presence of heat, you will get fluorobenzene, that's it, ये हो गया, बाल्स की मैनेज डन। क्लियर है बात? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, अल्डोल रिएक्शन, कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा। पहला तो कंडीशन होना चाहिए, पहला बात देयर शुड बी कार्बोनिल कंपाउंड, और उसके बाद देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा मतलब जो C डबल बॉन्ड O है ना, उसके बगल वाले कार्बन के पास देयर शुड बी हाइड्रोजन। के बगल में जो कार्बन होगा ना, उनके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये क्या है? अल्फा कार्बन। मेन ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इनके पास हाइड्रोजन जो होता है, दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। So for aldol condensation, there should be alpha hydrogen. And एक और कंडीशन है, there should be dilute base along with heat. There should be dilute base, base होना चाहिए, dilute होना चाहिए along with heat. इसको बोलते हैं आपका, these are the conditions required for aldol condensation. अब कैसे होता है ये? This one is a very बहुत ही साफ नहीं है खाने के लिए। Let me show you in a different way. Aldol condensation. Just give me a moment.
यस। सो देखो क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, देखो यू विल हैव क्वेश्चन बनेगा क्या कि भाई लेट्स से वी हैव दिस CH3CHO और दे देगा आपको डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH along with heat, बोलेगा गिव मी द प्रोडक्ट्स। सिंपल, क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, 1 मॉलिक्यूल राइट इट लाइक दिस। पहला बात तो चेक कर लेना कि जो आप अल्डोल करवाना चाहते हो वो होगा भी कि नहीं। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वी हैव अल्फा हाइड्रोजन, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड देयर आर अल्फा हाइड्रोजन एंड देयर इज डाइल्यूट बेस, तो यहाँ पर हीट भी है तो साथ में, तो ये होगा अल्डोल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो होगा तो ड्रॉ 1 मॉलिक्यूल लाइक दिस एंड द अदर वन लाइक दिस। ठीक है, और क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, वाटर रिमूव कराना है, सिंपली वाटर रिमूव करवा दो। क्या बनेगा देखो, देखो बनाओ CH3, मैं बना रहा हूँ उसको, CH3CH हो गया, डबल बॉन्ड CH बन गया आपका, ये आंसर है। क्लियर है, बहुत लंबा प्रोसेस है PDF में जो मैंने पहले करा रखा है, अभी के लिए बस ये तरीका याद रखना चाहिए। जो भी गिवन है उसको एक को ऐसे बनाओ, एक को ऐसे बनाओ, वाटर रिमूव कराओ, ये बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। देखो ये कार्बन अल्फा है, ये वाला बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। हो गया, तो ये हो गया आपका अल्डोल कम्युनिकेशन, ये हो गया, आप पढ़ सकते हो इसको आराम से। नेक्स्ट वी हैव गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन में क्या होगा, अगेन आपको लेना है BTC, CuHBr करोगे, डालोगे इसमें तो पूरा हट जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। CuHCl डालोगे तो पूरा हट जाएगा, क्लोरोबेंजीन। नो रॉकेट साइंस। नेक्स्ट वी हैव कांजाओ रिएक्शन, ये वाला बढ़िया है फिर से। ठीक है, ये वाला में क्या होता है देखो, द कार्बोनिक कंपाउंड शुड कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन एंड द बेस शुड बी कंसंट्रेटेड 50% 60%, ऐसे बेस होने चाहिए। ये उल्टा है अल्डोल के, अल्डोल में क्या था, देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन एंड देयर शुड बी डाइल्यूट बेस, यहाँ पे क्या है, देयर शुड बी नो अल्फा हाइड्रोजन एंड देयर शुड बी कंसंट्रेटेड बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ऐसा क्वेश्चन गिवन है आपको कि ये मेरा कंपाउंड है एंड आई हैव एडेड कंसंट्रेटेड बेस, तो आपको अगेन 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इसके, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। तो एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज हो गया, अब चेक कर लो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी है, यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, विदाउट अल्फा कार्बन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ, समझ गए। तो ये देखो, एक मॉलिक्यूल लिया आपने, उसको ऑक्सीडाइज करोगे, वो बनाएगा आपका, चाहता तो है कि वो ऑक्सीडाइज होके एसिड बने, बट एसिड बन नहीं पाएगा बिकॉज मीडियम इज बेसिक इन नेचर, तो इसको बनना पड़ेगा सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट। अगर NaOH होगा तो HCOO Na बनता, क्योंकि KOH है तो K बनेगा। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और वो बनाएगा अल्कोहल। क्या बनाएगा वो, एक बनाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड, एक बनाएगा अल्कोहल। बेसिकली और कहानी जा रहा हूं, चेक करना है कि क्या अल्फा हाइड्रोजन है, अगर नहीं है और कंसंट्रेटेड बेस, तब एक मॉलिक्यूल उठा के उसको कर दो ऑक्सीडाइज, कन्वर्ट इट टू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक को कर दो रिड्यूस, कन्वर्ट इट टू अल्कोहल। अच्छा, अगर एक खास केस है, नोट करो इसको, अगर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ही, है ना, 2 ग्रुप प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है, एंड देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, देन एक ही मॉलिक्यूल में दोनों काम हो जाएगा, एक ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा ग्रुप जो है वो रिड्यूस, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सर। अगला भी है फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, इनमें क्या होगा देखो, पहला है अल्काइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू अ रिंग, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग लेंगे, RCl लेंगे,
जो ऐड करना है उसका उसका क्या बोलते हैं, क्लोराइड ले लो। जो ऐड करना है आपको उसका क्लोराइड ले लो। एंड टेक एनहाइड्रस CL बताया था मैंने आपको, जहां भी होगा ये भाई ऐड ही करवाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको इस आर को यहाँ पे ऐड करवा के आपको ये। अगला क्या है, असाइलेशन। अब देखो आरसीओ इस ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, असाइल। जो भी ऐड करवाना है उसका क्लोराइड, इसको ऐड करवाना है तो इसका क्लोराइड ले लो। जो भी ऐड करवाना है उसका क्लोराइड लो। क्लोराइड ले लिया आपने। एंड टेक एनहाइड्रस CL ये ले लेंगे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक आपका FeCl3 एनहाइड्रस FeCl3 का भी ले सकते हैं, नोट कर लो उसका। FeCl3 भी ले सकते हैं आप, FeBr3 भी ले सकते हैं। बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर लुईस एसिड्स, मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या करते हैं ये दूसरों को जहां जहां ऐड करना होता है ऐड करते हैं, ऐड करने का ये पूरा उठा के यहाँ पे अटैच कर देगा। तो चूंकि आपने असाइल ग्रुप ऐड किया है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्राफ्ट असाइलेशन। नेक्स्ट वी हैव ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। अब ये RMGX होता है, इसको बोलते हैं आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको बनाते कैसे हैं, आप लेंगे RX, साथ में लेंगे Mg ओवर ड्राई ईथर, और आप इसको सिंपली रिएक्शन करवा देंगे, ये बन जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Mg पे +2 चार्ज है, R पे नेगेटिव। इसको अगर आप एसिडिफाई, अच्छा ये हो गया, रिएक्शन हो चुका है। अगर आप इसमें और है ना जाना चाहते हो, तो इफ यू वांट टू एसिडिफाई दिस यू विल गेट अल्केन। ये पूरा हट जाएगा, पूरा चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, यू विल गेट योर। अगला है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अगला क्या है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बनता है, एस्टर बनता है बेसिकली। व्हाट इज एस्टर सर, आपने मान लो अल्कोहल है आपके पास, एसिड है, इसमें से H निकाल के यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप ऐड कर दोगे तो ये एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्टर। क्या करना पड़ेगा इसके लिए सर, इसके लिए आप लोगे एसिड और लोगे अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल, और साथ में उसमें डालोगे कोई मिनरल एसिड, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ा सा, और उसके बाद आप रिएक्ट करने दो, वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, दोनों जुड़ जाएंगे, आपको एस्टर, उसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। अगला क्या है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। अब यहाँ थोड़ा हॉटपॉच हो गया, तो लेट मी टेक अ सेपरेट पेज फॉर दिस। यहाँ पे आ जाता है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ईथर क्या होता है सर, इट इज ROR तो बोलते हैं। तो कैसे बनेगा सर ये, देखो यहाँ पे दो चीजें चाहिए आपको। पहला है एक, बेसिकली एक आपको चाहिए हलाइड, अल्काइल हलाइड, और साथ में you will need salt. Okay, you will need a salt like this. यहाँ से Na and X will combine to form NaX, and R and ROR will join together, साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका ईथर बन जाएगा, बट एक इसमें कैच है। द कैच इज कि दिस अल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री ओनली। मतलब 1 डिग्री क्या होता है अल्काइल हैलाइड, जब भी आपका अल्काइल हैलाइड में जो X है वो उस कार्बन से जुड़ा है जो आगे बस एक ही कार्बन जुड़ा है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। अगर ऐसा है मान लो, इसको बोलेंगे 2 डिग्री, इसको बोलते हैं 3 डिग्री। तो दिस शुड बी 1 डिग्री ओनली। ये 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं हो सकता। दिस कैन बी 2 डिग्री 3 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री ऑल्सो, बट इसको 1 डिग्री होना कंपल्सरी, ठीक है। तो मान लो कि इफ यू वांट दिस ईथर टू बी फॉर्म, आपको चाहिए दिस ईथर, ये ईथर, सो दो पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हो उसको बनाने का। एक तो है कि आई टेक दिस CH3Cl या CH3X कर लेते हैं, ठीक है, प्लस आपका दूसरा ये पार्ट यहां से मिल जाएगा, ये वाला पार्ट यहां से मिल जाएगा। तो ये एक रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ तक आने का। एक और रास्ता क्या सोच सकते हैं आप,
कि भाई मैं इस पार्ट को यहां से ले लूं और दूसरे पार्ट को यहां से करूं। तो सोचने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन बात क्या है कि ये वाला अलाउ नहीं होता। ये जो रास्ता है ना, ये अलाउ नहीं होता। भाई बिकॉज इसको कोई दिक्कत नहीं है टू बी 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, बट इसको दिक्कत है और ये 3 डिग्री है यहाँ पर, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये आपको मिलेगा ही नहीं, ये वाला मिलेगा ही नहीं। इस रूट से ये आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ये केवल और केवल इस रूट से मिल जाएगा। Why? बिकॉज यहाँ पे 1 डिग्री है ये, सो हालाइट ओनली बी 1 डिग्री, दिस कैन बी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एज पर रिक्वायरमेंट, बट इसको 1 डिग्री होना कंपल्सरी। क्लियर है बात, ध्यान रखिएगा इन केस ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट वी हैव द हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, एसवीजेड बोलते हैं शॉर्ट में इसको, क्या बोलते हैं, एचवीजेड। तो एसिड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो एसिड है इसके पास अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो साथ में लगाएंगे रेड पी ओवर X2, एक्स कैन बी ClBr, तो ये एक्स जाके यहाँ पे लग जाएगा, अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। कोई खास रिएक्शन ये नहीं। अगला है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है, ये ओनली वर्क्स फॉर 1 डिग्री अमाइन, ये होगा 1 डिग्री अमाइन, जहाँ NH2 जो N है वो जुड़ा है एक कार्बन से तो 1 डिग्री, N जुड़ा है 2 कार्बन से 2 डिग्री, N जुड़ा है 3 कार्बन से तो 3 डिग्री। ये रिएक्शन ओनली 1 डिग्री अमाइन विल गिव, नॉट 2 डिग्री नॉट 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अमाइन विल रिएक्ट विद CH3 chloroform and KO to give you RNC, ये R नहीं है RNC, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड एंड इट हैज अ वेरी फाउल स्मेल, तो इसका स्मेल बहुत खराब होता है। एंड टू मिक्स, लेट्स से यू हैव amine, you mix chloroform and KOH and you get a very foul smell, then confirm that it is a primary amine, primary मतलब 1 डिग्री amine, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करते। नेक्स्ट वी हैव decarboxylation reaction. Let's say you have this carboxylic acid and you want to convert it to this alkane. So what you can do here, you can remove, you need to remove this COOH basically. You need to remove this COO. You need to remove the carboxy group. Okay. So basically we need to decarboxylate this molecule. We need to decarboxylate this molecule. So for that we will use two things, NaOH and CaO. NaOH is also called caustic soda and CaO is also called quicklime. That's why they are, we call this soda lime decarboxylation. So either you take any carboxylic acid or you can take its salt. You can also take the salt. Salt भी ले सकते हैं, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड लो या उसका कोई सॉल्ट लो, आप उसमें डालोगे caustic soda and quicklime, तो ये क्या करेगा, it will remove the CO2 and you will get the alkene. That's why it is called soda lime decarboxylation. Next we have Hoffman bromamide degradation. Basically we need amide. Amide क्या होता है, take acid, okay, and remove the OH, add NH2. We got acid amide or simply amide. Okay. Now amide, bromine, bromamide is clear. Bromine KOH. It basically it will remove this CO group. पूरा इसको निकाल देगा। One carbon is getting decreased, hence it is called a degradation or step down reaction. When the number of carbon is decreased in a reaction, it is called a step down reaction. You can check it here also. One carbon is getting decreased, this entire group will go away. This is called the Hoffman bromide degradation. Next we have the Gabriel thalamide reaction. This is called the thalamide. थाला वो थाला नहीं है, चलिए चाहे थाला, थैलामाइड। तो एक नंबर पे KOH, पहले KOH रिएक्ट कराएंगे, सेकंड नंबर पे RX. नाउ रिमेंबर दिस, R शुड बी 1 डिग्री ओनली, तभी रिएक्शन होगा, RX शुड बी 1 डिग्री, ठीक है। क्या होगा, यू विल गेट प्राइमरी अमीन, गेट प्राइमरी अमीन 1 डिग्री आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव हैलोजिनेशन, ठीक है। सो टेक एनी अल्केन लाइक दिस, add H2
in presence of either heat or UV light. This X will replace the H, and the remaining H will react with the remaining X. This is the byproduct. This is the main product. You can check the example here. CH4 Cl2, they are reacting in presence of UV light. Either UV light लिखा होगा, UV लिखा होता है या H mu लिखा होता है. बताया मैंने आपको, energy of any electromagnetic wave is H mu. ठीक है. So one Cl will replace one H. Get this. Now this reaction will not stop if you don't want it to stop. ठीक है. और Cl2 ऐड करोगे और रिएक्शन आगे बढ़ेगा. एक और H रिमूव होगा, ये मिलेगा. एक और Cl2, एक और H रिमूव होगा, ये मिलेगा. एक और H रिमूव करोगे तो एक और ऐड होगा. जब तक आप CH वहां रिमूव होने लायक होगा, वो रिमूव होते रहेगा. जब तक वहां पे H रिमूव होने लायक होगा तो वो रिमूव होते रहेगा. ठीक है. It will continue. It is known as halogenation. Next we have ozonolysis. Basically क्या है? Adding of ozone. Adding of ozone. So first step में, ठीक है. Let me take another page for this. बेसिकली क्या करना है आपको? क्वेश्चन क्या गिवन होता है? ये आपको दे देगा, एक कोई अल्कीन दे देगा और एक बार होगा O3 को ऐड करना है प्रेजेंस ऑफ CCl4. या तो सिंपली O3 लिखा होगा या O3 इन प्रेजेंस CCl4 लिखा होगा, एक ही बात होता है. एंड सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको? सेकंड स्टेप में जिंक ओवर H2 ऐसे. तो अगर डायरेक्टली आंसर निकालना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा. जस्ट डू दिस, ब्रेक दिस, give one O here, give one O here. आंसर मिल गया. CH3 CHO and plus आपका HCH. ओके, आंसर डन. बट अगर स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, यू कैन डू स्टेप बाय स्टेप आल्सो. तो अगर फर्स्ट स्टेप पहले करो, O3 केवल ऐड करना है. कैसे ऐड होगा? ऐसे ऐड होगा. डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है. ये ऐड करना है. ऐसे हो गया. ये फर्स्ट स्टेप है. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में आप जब जिंक वाटर ऐड करते हो, क्या करना है? इसको तोड़ देना है. कैसे? वही मिलेगा जो मिलना. वही मिलेगा जो मिलना. ये आंसर. अदर यू कैन गो डायरेक्टली, अगर दोनों साथ में दिए हुए हैं, यू कैन गो डायरेक्टली, ब्रेक द बॉन्ड, give two oxygens to each, get the answer. Or you can go step by step also. This is called ozonoid development. ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बीच में बनता है थोड़ी देर के लिए. ठीक है, चलो. नेक्स्ट वी हैव cold base electrolysis. Basically you are electrolyzing a salt of carboxylic acid. ठीक है. इसमें you get alkane. alkane मिलता है आपको. CO2 निकलता है एनोड पे एंड H2 निकलता है कैथोड पे. ध्यान रखो, CO2 कहां बनता है? एनोड पे. H2 कहां बनता है? कैथोड पे. How to judge that the gas is CO2? CO2 will turn lime water milky. CO2 क्या करता है? लाइम वाटर को, लाइम वाटर इज स्लेक्ट लाइम बेसिकली, इसको ये मिल्की कर देता है. इसको ये मिल्की. Why milky, sir? Because when the CaOH hold twice, the slaked lime reacts with CO2, it will give you CaCO3, and CaCO3 is milky in color. So basically CO2 will turn lime water milky. ये होता है आपका a test for CO2. CO2 का टेस्ट है. And how to judge how to test H2? H2 will burn with a pop sound. Whenever आप H2 को burn करोगे तो पटाखा पट पट फूटता है. ठीक है, तो H2 burns with a pop sound. ऐसे you can confirm कि the bubbles forming at anode and cathode are CO2 and H2 respectively. Next we have Lindlar's catalyst and Birch reduction. दोनों में सेम काम होगा. यहां भी इफ यू सी अल्काइन से अल्कीन बनेगा, यहां भी अल्काइन से अल्कीन बनेगा. फर्क क्या है सर दोनों में? अगेन कैटलिस्ट का फर्क होगा. लिंडार कैटलिस्ट में लिंडार कैटलिस्ट होगा. क्या होता है लिंडार कैटलिस्ट? PDBSO4 होगा या PDCaCO3 होगा. दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. क्या
इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन, व्हाट इज क्यूनोलिन, ये होता है क्यूनोलिन, और सल्फर, तो इनमें से दो में से एक, इनमें से एक या इनमें से एक कॉम्बिनेशन करेंगे, दैट इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। इनको क्यों लिया सर, इनको क्यों लिया, बिकॉज दे आर नोन एज कैटालिटिक पॉइजन्स। होता क्या है कि PDBSO4 and PDCOCO3, they are very strong reducing agents, so they will convert the alkyne to alkane directly। alkyne को डायरेक्टली क्या करेंगे, अल्केन बना देंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, बट आई डोंट वांट alkane, I want alkene, so I need to stop their activity in between, okay? For that I will need this catalytic poison quinoline या sulfur। क्या करना है आपको, just take this। अच्छा, one more thing, for this reaction and for Birch reduction you need to take non-terminal alkyne, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है आपका, इट शुड नॉट बी एट द एंड, वो एंड पे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन टर्मिनल, मतलब ट्रिपल बॉन्ड शुड बी इन द मिडिल। You apply Lindlar catalyst, you will get this alkene here. Get this alkene. In case of Birch reduction, again non-terminal alkyne you will take. Apply, add lithium or sodium in presence of liquid NH3 or alcohol. Basically, any proton donor, anything that can donate a proton, H+. Again, you will get alkene. Sir, why two different reactions? See, the difference is that in case of Lindlar catalyst, you will get a cis alkene. जो यहाँ जो बन रहा है ये cis बनेगा ऐसा, और यहाँ जो बनेगा वो ट्रांस बनेगा, यहाँ कैसा बनेगा, ट्रांस बनेगा, क्रॉस होगा। ये फर्क है, इसलिए दो अलग अलग रिएक्शंस। Next we have Lucas test. Okay. For this test, basically we use this test to differentiate between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. What is 1 degree alcohol? जब OH जो है वो OH जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे एक कार्बन से लगा है डायरेक्टली, तो बोलेंगे 1 डिग्री। ये कार्बन, और जब दो कार्बन से लगा डायरेक्टली तो 2 डिग्री, 3 से लगाया तो डायरेक्टली 3 डिग्री। ये why do we use this test? To differentiate between 1 degree, 2 degree and 3 degree. Okay. So for this test we use Lucas reagent. क्या होता है Lucas reagent? Concentrated HCl with anhydrous zinc chloride, इन दोनों को साथ में मिलाकर के we use as Lucas reagent। क्या होता है इनमें, देखो अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल और आपने Lucas reagent मिला दिया तो एक व्हाइट precipitate बनता है इमीडिएटली, तुरंत बन जाए। अगर 2 डिग्री अल्कोहल आपने Lucas reagent मिलाया है तो व्हाइट precipitate बनता है बट इट टेक्स 5-10 मिनट्स। एंड अगर 1 डिग्री अल्कोहल और आपने Lucas reagent मिला दिया तो उसमें क्या होगा, आपका व्हाइट precipitate जो है कभी नहीं बनेगा, इट विल टेक इन्फिनिट टाइम। इफ यू आर एडिंग Lucas reagent और अगर वो तुरंत व्हाइट precipitate बनता है देन 3 डिग्री अल्कोहल। अगर व्हाइट precipitate बनने में 5 मिनट टाइम लगता है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर नहीं बनता है जल्दी 1 डिग्री। ये हो गया आपका Lucas test। अगला है हाइड्रोक्सिलेशन। For this, basically you are adding hydroxyl group. What is hydroxyl group? OH को बोलते हैं hydroxyl group। तो take any non-terminal alkyne or alkene you can do. Take cold dilute KMnO4 with water, known as Beer's reagent। क्या बोलते हैं इसको? Beer's reagent। इसको अगर बोल क्या बोलते हैं, Beer's reagent। क्या करता है ये, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर 2 OH लगा देगा। क्या लगा देगा? 2 OH। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको तोड़कर 2 OH लगा देता है, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड डाइऑल्स, इनको क्या बोलते हैं, डाइऑल्स। 2 अल्कोहल तो क्या बोलेंगे इनको, डाइऑल्स। एंड डाइऑल्स आर ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। क्या है ये, ब्राउन प्रेसिपिटेट। सो दिस कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगर आपने बेयर्स रिएजेंट ऐड किया और अगर यू आर गेटिंग ब्राउन प्रेसिपिटेट्स, it means that your compound in the beginning was unsaturated, और अगर brown नहीं हुआ मतलब it was saturated। Next we have acidic hydration। यहाँ पे we are adding water to alkenes, तो water को add करेंगे तो there are 2 possibilities। यहाँ पे water break होगा H+ and OH-।
अब कहाँ पे H डालोगे, कहाँ पे OH? देखो यहाँ पे दोनों अलग है ना, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है, समझे बात, सिमेट्रिकल मतलब ऐसा CH2 CH2 सिमेट्रिकल, इससे ब्रेक करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम। अगर आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हो और दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम चीजें हैं, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होगा तो सिंपल है, आप कहीं भी कुछ भी ऐड कर दो, H कहीं ऐड कर दो, OH कहीं ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ फर्क पड़ेगा। तो ये एसिडिक हाइड्रेशन है, पानी ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो या तो H2O H+ लिखा होगा, या H2O डाइल्यूट H2SO4 लिखा होगा ऐसे करके, या सिंपली H3O+ लिखा होगा। इन ऑल केसेस आपको वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। वाटर कैसे ऐड होगा? इन केस ऑफ एसिडिक हाइड्रेशन आपको फॉलो करना है मार्कोवनिकोव एडिशन। क्या फॉलो करना है? मार्कोवनिकोव। क्या बोलता है मार्कोवनिकोव रूल? ये बोलता है कि H2 ऐड करते वक्त गिव H to that carbon of C double bond C which already has more hydrogen. H उसको दो जिसके पास अधिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास एक है, इसके पास दो है, तो H उसको दिया, H उसको दिया, तो OH कहाँ दोगे? यहाँ दो, तो क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा आपको। ध्यान रखना है, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स ऑलवेज फॉलो मार्कोवनिकोव एडिशन। क्या फॉलो करते हैं वो? मार्कोवनिकोव एडिशन। ठीक है, अगला क्या है आपका? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां भी एट द एंड वाटर ही ऐड होंगे। क्या होता है यहाँ पर? देखो, ये अल्कीन लिखा होगा ऐसे करके, नंबर 1 BH3 THF। THF क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, फ्यूरान क्या होता है सर? फ्यूरान इज दिस, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगा देंगे तो डबल बॉन्ड दोनों गायब हो जाएगा, तो ये बन गया आपका THF। क्या बन गया? ये बन गया THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो BH3 लगा दिया THF के प्रेजेंस में, और साथ में H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH। इससे करना कुछ नहीं है, इसमें करना ये है कि एड वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अब ये रूल क्या बोलता है कि उल्टा, मार्कोवनिकोव को उल्टा, गिव H to that हाइड्रोकार्बन ऑफ C double bond C which has less hydrogen। तो वाटर का H वहां दो जहां, उस कार्बन को दो जहां पे H कम है। यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 1 H, एक H यहाँ पे दिया, OH कहाँ दो? तो गेटिंग का 1 डिग्री अल्फा। ध्यान रखना है कि एसिडिक हाइड्रेशन में मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ वाटर होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ वाटर। अगला है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पे आपका 3 स्टेप में होता है रिएक्शन। बेसिकली वाटर को ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ, इन अकॉर्डेंस ऑफ द मार्कोवनिकोव रूल। तो क्या होगा? एरो पे ये लिखा होगा CH3CO होल ट्वाइस, Ag होगा या Hg होगा, या तो Ag होगा या Hg होगा, फर्स्ट नंबर। नंबर 2 वाटर होगा, नंबर 3 NaBF4 होगा इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, OH मतलब बेस होगा। तो ये 3 स्टेप होगा, करना कुछ नहीं है इसमें, करना ये है कि वाटर को ऐड कर देना। और कैसे? मार्कोवनिकोव रूल से। ध्यान रखिए, कहाँ मार्कोवनिकोव, कहाँ एंटी मार्कोवनिकोव, ध्यान रखिए। तो मार्कोवनिकोव रूल से H वहां, OH यहाँ, आपका 2 डिग्री अल्फा बन के तैयार हो जाए। हाँ, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये जो चीज पूरा लिखा है इसको ऐसे भी पूरा ओपन करोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा। एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप, बताया था मैंने। शॉर्ट में AC भी लिखते हैं इसे, तो ACO होल ट्वाइस Ag, ऐसे भी लिखा हो सकता है। हर बार जरूरी नहीं कि ऐसे पूरा लिखा हो, ACO होल ट्वाइस Ag भी लिखा हो सकता है। अगला है रीड्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा? आपको लेना है कोई अल्केन, साथ में SO2Cl2, आपको RCl SO2 and HCl गैस बनेगा, SO2 and HCl गैस बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ RCl। इसमें जो RCl बनता है बहुत ही हाई यील्ड में बनता है। कैसे बनता है? बहुत ही हाई यील्ड में। व्हाई? बिकॉज SO2 HCl बोथ बाय प्रोडक्ट्स आर गैसियस इन नेचर, अपने आप उड़ जाते हैं बाहर, उनको निकालना नहीं पड़ता है। जो RCl बना है बहुत ही हाई यील्ड में। अगला क्या है आपका? साइनाइड। ठीक है, इसको रिएक्ट कराएंगे विद LiLH4। LiLH4 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट विल एंड वाटर ऐड करोगे, इट विल कन्वर्ट दिस टू 1 डिग्री। नोट दिस, LiLH4 NaBH4 PH3 SnH, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड। 3 फिनाइल लगा होता है, 3 हाइड्राइड होता है। ठीक है,
H2 और Ni, H2 और Pd, ये सब क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। बट कोई स्ट्रॉन्ग तो है सब, लेकिन कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग सब इतना रेड पीओ और HI, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सब पहले वाले जो स्ट्रॉन्ग भी हैं, ठीक है, लेकिन इसका इतना औकात नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को छू पाए, कार्बोक्सिलिक एसिड को छू पाए, इतना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं। ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा सीधा अल्केन में सीधा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई सॉल्ट हो, कोई डेरिवेटिव हो, एसिड अमाइड हो, हैलाइड हो, एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, कुछ भी हो, उसमें लगाओ रेड पी ओवर HI, सीधा बनाओ अल्केन। कुछ भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसका सॉल्ट हो, कोई डेरिवेटिव हो, अमाइड, हैलाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, सब में सीधा अल्केन में, तो क्या बनाएगा, अल्केन। लास्ट है टोलेंस टेस्ट, एक सेकंड में। ओके, नेक्स्ट वी हैव टोलेंस टेस्ट, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। कौन देता है इसको, एल्डिहाइड्स विल गिव दिस टेस्ट, कीटोन्स विल नॉट गिव दिस टेस्ट। ध्यान देना, एल्डिहाइड देंगे टेस्ट को, कीटोन नहीं देंगे टेस्ट। ऑल काइंड ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है, सारे एल्डिहाइड्स आपके एलिफैटिक हो, मतलब चेन वाले हो, या एरोमेटिक हो, रिंग वाले, बोथ विल गिव दिस। इसके लिए भी यूज टोलेंस रिएजेंट व्हिच इज नथिंग बट अमोनिकल सिल्वर मिरर। ऐसे बनता है ये, देखो ऐसे बनता है। AgNO3 लेना है, NH4OH से मिलाना है, ये बन जाएगा, PPT बनेगा, और फिर PPT बनने के बाद तुरंत इट विल रीडिसॉल्व, मतलब ऑक्सीजन सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। ऐड मोर NH4OH एंड यू विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको बोलते हैं आपका टोलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर मिरर। बेसिकली आपका एल्डिहाइड जो होगा, इट विल ऑक्सीडाइज इनटू this Ag from +1 will convert to Ag0, एंड ये हुआ रिडक्शन। बेसिक मीडियम में होता है ये टेस्ट पूरा, बेसिक मीडियम में ही आपका बनता है ये अमोनिकल सिल्वर मिरर। बेसिकली क्या होगा, अगर आपके पास एल्डिहाइड है कोई टाइप का हो, इफ यू ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड टोलेंस रिएजेंट यू विल गेट सिल्वर मिरर। आपका टेस्ट ट्यूब है वो चमक जाएगा पूरा सिल्वर से। तो ये आपका हो गया सिल्वर मिरर टेस्ट। अगला है फेलिंग्स टेस्ट। अगेन कीटोन्स इस टेस्ट को नहीं देंगे, बट इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देंगे इस टेस्ट, केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड, रिंग वाले, केवल चेन वाले एल्डिहाइड, रिंग वाले नहीं देंगे, चेन वाले देंगे। फॉर दिस टेस्ट वी नीड टू सॉल्यूशंस, फेलिन सॉल्यूशन A एंड फेलिन सॉल्यूशन B। ए वाला जो होता है इट इज एक्वस कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 पानी है इसलिए 5 H2 इसलिए। सोल्यूशन बी क्या होता है, इट इज सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, बेसिकली इट इज फाउंड बाय टार्टारिक एसिड। उसमें आप Na और K लगा देते हो, यहाँ पे H होता ना, यहाँ पे H होता है ऐसा करके, तो बोलते आपका ये सोडियम क्या है, ये आपका टार्टारिक एसिड है। बट क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट बन चुका है इसका, तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, ऑल्सो नोन एज रुक्साइल सॉल्ट। ये 2 सोल्यूशन होते हैं इन फेलिन सोल्यूशन। बेसिकली जब आप कोई भी एलिफैटिक एल्डिहाइड लोगे, तो ये जो है सोल्यूशन ए का कॉपर 2 प्लस जो ब्लू होता है इन कलर, इट विल रिड्यूस इनटू कॉपर Cu2O। तो +2 से इट इज गोइंग फ्रॉम +2 टू +1, तो रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर। तो सोल्यूशन का ब्लू कलर विल डिसिपेट एंड रेडिश ब्राउन कलर विल बी ऑब्टेन्ड। तो हेंस इट विल कंफर्म कि जो हमारा एल्डिहाइड था इट वाज एलिफैटिक एल्डिहाइड। लास्ट at the second last we have Skiff's test. For this we have Skiff's reagent. कैसा होता है ये, ऐसा होता है, इतना कॉम्प्लेक्स याद करने की कोई जरूरत नहीं। Aldehydes will give this test. When you react aldehydes with Skiff's reagent, you will get a magenta colored complex. Basically आपका test tube will turn magenta, ठीक है, मतलब कि your whatever compound you have it is aldehyde. At the end we have Benedict's test. Again it has 2 solutions, solution A and solution B. A is copper sulfate, aqueous copper sulfate, and B is copper sodium citrate. Again यहाँ भी same reaction होगा like Pelling solution. यहाँ पर your aldehyde will give the test,
copper 2 plus will lose the blue color and copper Cu2O will be found, which is reddish brown in color. So this is the final answer, final reaction. And last we have the 7 reactions of diazoxide salt. ये आपका होगा CuCl मिला दोगे, this entire thing will go away and you will get chlorobenzene. CuBr के लिए bromobenzene, CuCN के लिए cyanobenzene, Ti के लिए आपका आइडोबेंजीन, H2SO4 H2O हीट दोगे फिनॉल बन जाएगा, HBF4 और हीट दोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा. इसका नाम है डायस्टीमिन रिएक्शन भी है, पढ़ाया था मैंने. और ये वाला आपका H3PO2 लोगे, इट विल रिड्यूस, एवरीथिंग विल गो अवे, यहाँ पे H लग जाएगा, यू विल गेट बेंजीन. क्या मिलेगा आपको? बेंजीन मिल जाए. ये आपका सारे रिएक्शन होगा डन. क्लास भी हो गया हमारा पौने 6 घंटे का. ठीक है, अब क्या करना है? अब रिवाइज करना है. आप लोगों को सारा मिल जाएगा, सारा कंटेंट मिल जाएगा, सारा जो मैंने लिखा है, सारे पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा. बी पेशेंट, आसाम तक मिल जाना चाहिए आप लोगों को. क्लियर है? तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस. और जो लोग बच्चे एंड तक बचे हुए हैं 76 + 8 84 बच्चे जो एंड तक बचे हुए हैं, कांग्रेट्स. ठीक है, आप लोगों के पास गॉट दिस. चलिए फिर, है ना, आप भी जाओ. लंच वंच नहीं किया तो करो, मैंने तो नहीं किया भाई. ना तो लंच करेंगे, अब पढ़ाई करते रहिए. Class has ended, you can leave the class. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCET and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.